President, Hockey Andhra Pradesh. She will be escorted by Mr. Ravi Kumar of Hockey Andhra Pradesh. Both the teams will be introduced and with the blessings and wishes of the guest of honor, today morning, match will commence. Srimati C. Jalija, Vice President, Hockey Andhra Pradesh, escorted by Mr. Ravi Kumar, Hockey Andhra Pradesh. Now we'll be having national anthem. I request everybody to stand up to respect our national anthem. National anthem, please. Thank you, everyone. Thank you, Srimati C. Jalja, for sparing your time and Championship 2025 at Kakinada, Andhra Pradesh, under the banner and auspicious of Hockey Andhra Pradesh. Good morning, hello, and a very warm welcome to everyone who is joining us for the live broadcast of this all important. Technical officer for this match, ANDHRA, and we have technical delegate for this national championship, Bala Renu. Welcoming you all to the first quarter final of this 15th Hockey India Junior Women National Championship 2025 being played at Kakinada in Andhra Pradesh. Behind the mic, I'm a host commentator in English, Mayur Barwa, and I'll be joined by Mr. Shami Malam and Mr. Vikas Kumar in the commentary panel. And with the pushback, the match starts. The first quarterfinal, Haryana versus Hockey Orissa. This will be going to be some gruesome battle for sure. It's early morning, not even 6 o'clock by the watch, and we have already having a very nice, fierceful pushback, isn't it, from both the teams? They have to go by the stats. Haryana has been much more in the front with 7-1 victory scoreline versus Bengal to open up the championship. Then 1-1 versus Uttar Pradesh, they drew. And for Orissa, it was 3-1 versus the home team, Andhra Pradesh. And then they lost 1-2 versus Maharashtra. But here we go, the knockout phase. It's going to be so good, isn't it, for all the girls here? It's going to be some fierceful, gruesome, as I've mentioned before. But it's all for everyone to play for. It's good, nice attacks and counter-attacks going on at the moment from both the teams as they're trying and vying for the top honors here. Knockouts, get a win, get your ticket to the semi-finals, and then the final for the COVID trophy, isn't it? Look at how Haryana racing the gear already, trying to put through the forwards back past the center line. It will be very important. And a picture, that's Ritik Aman, such an important player inside the striking circle. Could be dangerous here for Orissa. So much inside, and there we go. We start off with a goal from Haryana. They make it one.
None for Risa. That's Mr. Azad Singh Malik, the coach of Haryana. And team behind was Miss Preeti, the team manager. But here we go. Haryana have already started off in the striking circle. What a lovely assist. What a brilliant pass this was. And with the reverse, she puts it, the ball gets locked in on to the goalkeeper. But again, with the slightest of the angle, good game awareness as the ball lodges down. She flicks it back inside the goal post for the first goal for Haryana in this first quarter final of the 15th Hockey India Junior Women National Championship 2025. Again, very dangerously close. They are surely getting it going here, and you can see not allowing Urisa to come even remotely closer inside the striking circle again. The pass was not good enough. Urisa did very well, probably a little slower. They passed the center line. Now it might just be a chance for Urisa. She's carrying it all along, and that is Lugu. That is Lugun Shivani for you. And again, they lose control as they're trying to just mitigate the line right from the corner. Man to man, good marking from Haryana. Now from the left flank. Oh, she falls down. She only falls down, or else she could have probably given it a very nice reverse back pass and then could have cleared the line inside the striking circle within 1 minute. I think both the teams were there, but more for Haryana. You can see that's Visajat Singh Malik, the coach. And for Hockey Association of Orissa, it's Mr. Karyappa Joyappa Polepanda. With him, team manager Ms. Neha Singh. It's just early morning, but it feels like the day has already gone fast because there's so much of noises and voices coming all across, isn't it? You can feel the surge. You can feel how it is now going at the moment. Rihanna facing concerns from the left flank, right between the defenders. In fact, three of them. The ball goes out of the playing area. But Haryana is proving dangerous. Haryana is having probably one leg little ahead than Orissa at the moment as they're trying to prove a point here. They've already proved a point, Haryana, after getting that goal. And now they will press it even more as they get this first penalty corner here. The first penalty corner for Haryana. Would be just be very dangerous. The blow of the whistle. The injection has been done. The drag straight into the body of the goalkeeper. And he is frustrated. Azad Singh Malik. He knew how a close chance could have easily converted the first penalty itself into a goal. But the chance has gone by for Haryana. But well and truly, these girls are now putting, probably proving the best of the money that you can put on the first quarterfinal. What a nice aerial angle of the camera also. You can see like an eagle's eye view. As the girls again, Bengal wanted to give a nice reverse diagonal along the surface pass. That's in Malik. You'll feel him more and more agitated on his picture because he knows how important this match is, isn't it? We know how important this is. The what to say about the umpires? Oh, what a good one! She's mitigating, she's dribbling. It's still there. Oh, she wanted to give a reverse back pass, only to find the stick of Orissa. Still there at the corner. Orissa does really well, to be honest, to keep the zone alive and to keep the ball so much away. That's the dugout of Orissa, and that's the coach, Mr. Karyappa Joyappa Bolepanda. Standing on to him right is the team manager, Ms. Neha Singh. They will feel the pressure. They are definitely going to feel the pressure. You did see Mr. Bolepanda. It is serious look. Generally, where is the goggles? Today, not, of course, the sun is not there. The sun, the goggles will be out.
His peculiar round head should be there, and that's the highlight of Mr. Bole Panda. He might be a serious man, but he's a nice human being behind the heart. But again, this is the quarterfinal. This is the ticket to the semi-final. So you really have to play the best of your abilities. One flip up, one mistake, and it's all going out of your hands. 8.5 minutes remaining in the first half. And there you go. Underneath of you is our commentary panel, Mr. Shami Malam, me, Mr. Mayur Borwa right behind the mic, and then will be Mr. Vikas Kumar also. That's the commentary panel for you for this championship. This 15th Hockey India Junior Women National Championship 2025. And what a wonderful venue to play this tournament at Kakinada in Andhra Pradesh. And everyone looking in one direction as they hear the name being called out, isn't it? They know this is going to be so good, isn't it? So Orissa, the goalkeeper is Pavitra Hodam. The captain is Drupadi Naik. What good names, isn't it? What strong names you have. And now they have the penalty corner advantage. First penalty corner at the other side, it was from Haryana. They couldn't take the chance to conversion into goal. Chance for Orissa already within 7 minutes to make it 1-1. Blow the whistle. The injection has been done. It's a nice pass. It's a slap across the surface. Where's the ball gone? Well done from the goalkeeper. Absolutely one chance. Waits the goal. And again, Bole Panda. He is curious what is happening here. Ishika, the goalkeeper from Haryana, does really well. It's a nice aerial good shot. One bounce across to the captain, Sashi Kasha. She has got good number of goals across her name. The umpires for today's match, Miss Ruchika Wankere and Miss Arati S. Unni. And the reserve umpire for today's match is Miss Gitanjali Nirmalkar. So those are the names for the match officials for today's match. The has been ticked by. We have some good lineups for the quarterfinals. We'll get back to that. This is Haryana Orissa going on the first quarterfinal. And then we'll have the second quarterfinal. Madhya Pradesh versus Chhattisgarh. Madhya Pradesh, a superbly strong team. 5-0, 4-0 victory scorelines. The only team in the championship who has a very clean record versus Chhattisgarh. Defeat of 1-7 versus Jharkhand, 6-1 versus Karnataka. And then we'll have the third quarterfinal, Jharkhand versus Punjab. Jharkhand 2-0, 7-1 victory scoreline. Punjab 0-4 and 1-1. And then the fourth quarterfinal will be Hockey Maharashtra versus Uttar Pradesh Hockey. What a game that would be, actually. And there we go, inside the striking circle for Bengal. Curves the ball away from the danger scoreline, but lovely pass. This is just near the striking circle. 5.5 minutes remaining for the blow of the whistle of the first quarter. They can see it on the big LED screen, isn't it? It will be interesting to see how many of the stands of the will be filled up for the quarterfinal. The home team has not qualified. I'm sure despite that, there will be some good spectators coming in to support the girls here. Use the hashtag #IndiaKaGame and get right behind all the pictures of this Hockey India. Get into the social media, get onto Instagram, Facebook, Twitter, and support the girls. And also, don't forget to download the mobile application of Hockey India. So download the app now and get all your pictures, statistics, highlights, insights, your favorite players, pictures, games, everything will be there on the one platform at the palm of your hand. So download the mobile application of Hockey India. We'd also like to thank the Sports Authority of India, the Ministry of Youth Affairs and Sports,
and also the host association, the Hockey Association of Andhra Pradesh, for their indeligable and remarkable support for the championship, for this 15th Hockey India Junior Women National Championship being played here in Kakinada in Andhra Pradesh. Among our other sponsors and stakeholders for their continued support and their patronage as Hockey India celebrates 100 glorious years of their existence. So, congratulations to everyone. This has been a superb journey for the girls in this championship. I'm sure there will be lots and lots of memories to take forward. And taking forward another memory is Hockey Haryana inside the striking circle. Ball goes out, but still there from the corner is number 10, Shasi Khasa, the captain. She also has some handful of goals from the reverse strike. She falls down. She will be squandering a chance here. I know she's rubbing her face, almost trying to hide her face in disappointment. 3.5 minutes remaining. We see a substitution. Jersey number 6, Kushi, now walking out, in fact, running out to the middle to join her colleagues. The first substitution that you see for Hockey Haryana from the corner dribbles. It's a nice pass. Bengal gets it. It's to number 3, Lugun Sibani. Such a wonderful name. She has been in the setup and also for the national colors. And I believe there are two of them waiting there. Just in number 10, Boy Doli. And also I see Lugun Sibani in there. And now we see Deepika Barwa not there in the initial playing 11, but she has joined there. So probably some handful of substitutions which have come in for Bengal. Bengal there now. And initially, beg your pardon for Orissa. Initially it was for Haryana. And now number 15, that's Sonia Minch for Orissa. Oh, there's some substitutions coming in already. That's why we see 3 of them just standing right there in the corner. So 2 substitutions which have come in for Orissa. We've already seen 1 coming in from Haryana. It should be very interesting to go by of how they can now press the advantage home. But still the scoreline says 1 for Haryana, none for Orissa. Near the center line, gives a diagonal pass towards the important forwards. And that's Sonia Min, who just got substituted a while back, less than 2 minutes before. Gives a nice pass to Priyanka Kuzur. And we did hear for a long while calling up Priyanka Kuzur. It's a nice pass, back pass the center forwards now. Carrying there. That's Ramba Kuzur. Ramba Kuzur putting it to Azita Ekka in towards Orissa. Very nicely done there. What a good start to this quarterfinal. It's a wonderful setup. That pass, now less than a minute remaining in this quarterfinal. Number 1 back into this center line. There's very much playing among in the center line. And Orissa will do a whole lot of good if they can just get it going, if they can just pinch the beat now for Orissa. Right from the corner, flicks it by with a stick. Oh, almost like a jigsaw puzzle to solve, but couldn't do that. Gives a nice diagonal pass again. It's a nice slab in the pyramid structure there, but from the right to the left, the left to the right is where actually they are going to attack. It's a good one from Haryana at the corner. We're just now counting in a single digit seconds before the whistle will be blown up. And it is the hooter which has come in to signal the end of the second quarter. In fact, the first quarter of the first quarter final. So here you come, Haryana and Orissa battling it out. But I think this might not be a fair scoreline, probably.
Orissa might have hoped to get more, but it is Haryana who have done really well at the moment to get a goal. And as we now head off for some cool off for the second quarterfinal, it will be the voice of one and only our senior most commentator, whom I call the encyclopedia of hockey. I'll welcome to the commentary panel Mr. Shami Malam. Welcome, sir. नमस्कार। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के खूबसूरत एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम से मैं शमीम आलम अपने साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ और विकास कुमार के साथ आपका स्वागत करता हूं, ये बताते हुए कि आज यहां पर सुबह के सत्र का पहला क्वार्टर फाइनल शुरू हो गया है। हरियाणा और उड़ीसा के बीच इस वक्त आप देख सकते हैं हरियाणा की टीम एक गोल से आगे चल रही है, उड़ीसा की टीम एक गोल से पीछे हुई है। मैं शशि खासा ने हरियाणा के लिए पहला गोल डाला आज। मैं बता दूं खेल की शुरुआत में ही लगभग दूसरा मिनट में ही गोल डाल दिया गया शशि खासा के द्वारा। इस खिलाड़ी को याद रखिएगा, जैसी नंबर 10 खसीसा खासा, ये बहुत ही उभरती हुई खिलाड़ी है हरियाणा की। दूसरा क्वार्टर का खेल शुरू होने की स्थिति में है। चलिए ले चलता हूं मैं आपको यहाँ पर हॉकी की दुनिया में और आंध्र प्रदेश का खूबसूरत स्टेडियम काकीनाडा। चलते हैं काकीनाडा। उड़ीसा के खिलाड़ी पीछे सरका दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, एक और गेंद पीछे। इस वक्त उड़ीसा की टीम को यहाँ पर बराबरी पर आने के लिए एक गोल की जरूरत है। उड़ीसा के खिलाड़ी सोनाली एक्का के पास है बॉल। सोनाली एक्का अभी भी बॉल को रखे अपने पास नियंत्रण किए हुए हैं, लेकिन उनके साथ साथ चल रही थी। यहाँ पर हरियाणा के खिलाड़ी इंफ्रीमेंट हुआ, फ्री हिट मिलता हुआ उड़ीसा को। उड़ीसा 0 हरियाणा 1। लंबा हिट लगाया यहाँ पर सोनाली एक्का ने। गेंद गई बाहर, टच लेने के बाहर। बॉल को देना चाहती है अपनी साथी खाती प्रियंका को, लिए बॉल को बढ़ाने के लिए चाहती थी। मध्य रेखा के पास यहाँ पे फ्री हिट मिलता हुआ उड़ीसा को। उड़ीसा 0 हरियाणा 1। दूसरा क्वार्टर का खेल शुरू हो गया है। यहाँ पर मैं बता दूं ये पहला क्वार्टर फाइनल का खेल आप देख रहे हैं हरियाणा और उड़ीसा के बीच। हरियाणा की टीम पूल सी से आती है, जबकि यहाँ पर उड़ीसा की टीम ये पूल डी से आती है। हरियाणा की टीम अपने पूल में टॉप पर थी, जबकि उड़ीसा की टीम अपने पूल डी में दूसरे स्थान पर थी। तो पूल सी का टॉप की टीम पूल डी के दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम से मुकाबला चल रहा है। इसके बाद मैं बता दूं आज का शेड्यूल जो है, एमपी के से भिड़ेगी छत्तीसगढ़ की टीम। उसके बाद अपराह्न में 1 बजे झारखंड का मुकाबला होगा पंजाब से, और उसके बाद फिर 3 बजे महाराष्ट्र का मुकाबला यूपी से होगा। शून्य 1 की स्थिति, हरियाणा 1। शशि खासा ने खेल के दूसरे ही मिनट में गोल डालकर यहाँ पर उम्मीदें जगा दी है अपनी टीम के लिए। यहाँ पर ये हैं पूजा मल्लिक बात कर रही हैं। शशि खासा आज के कप्तान है। आज के 2 अंपायर हैं रुचिका बांखेड़े और आर्थी एस पुन्नी। 2 अंपायर आज मुकाबले को संचालित कर रही हैं। ये है आर्थी एस पुन्नी है, ये केरला से आती है। यहाँ पर देखिए बॉल लेके निकल रही है उड़ीसा की खिलाड़ी, पीछे सरका दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। स्टैकिंग सर्किल के ऊपर खेल चल रहा है इस वक्त, हरियाणा के स्टैकिंग सर्किल के ऊपर। एक मौका को तलाश रही है और ये पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा यहाँ पर। उड़ीसा के लिए अच्छी खबर। तो 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का पहला क्वार्टर फाइनल यहाँ पर अब शुरू हो गया है सुबह के सत्र का, उड़ीसा और हरियाणा के बीच। देखिए इस कारण से इस एक्शन के लिए यहाँ पर जो फॉल्ट हुआ उसके लिए यहाँ पर पेनल्टी कॉर्नर को अवार्ड किया था अंपायर आर्थी एस पुन्नी ने। मैं बता दूं आर्थी एस पुन्नी मैदान के एक छोर में मैच को संचालित कर रही हैं, जबकि दूसरी तरफ से रुचिका बांखेड़े मध्य प्रदेश से आते हैं, जबकि आर्थी केरला से आती है।
यहाँ पर उड़ीसा के लिए एक मौका है। लाइव एक्शन आप देख रहे हैं काकीनाडा से, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से। होस्ट है आंध्र प्रदेश। इस मुकाबले का 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, 14वीं महिला हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो हुआ था वो रांची में हुआ था पिछले वर्ष, जहां पर फाइनल में झारखंड ने मध्य प्रदेश को एक मुकाबले 3 गोल से पराजित किया था। स्वीटी डुन्निंग, नीरू कुल्लू, शांति कुमारी ने झारखंड की तरफ से गोल किया था, लेकिन मध्य प्रदेश की तरफ से एकमात्र गोल काजल ने किया था। हरियाणा रही थी वहां पे, ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, कांस्य पदक जीती थी हरियाणा की टीम। देखते हैं कि हरियाणा की टीम इस वक्त क्या कर पाती है इस मुकाबले में। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का एक पहला क्वार्टर फाइनल, सुबह के सत्र का सुहावना मौसम है। यहाँ पर हल्की ठंडी हवा चल रही है। खूबसूरत स्टेडियम है। मैदान की चारों तरफ रंग बिरंग पताके आकाश में लहरा रहे हैं। मैदान के एक छोर में आप देख सकते हैं हरे हरे पेड़, लंबे हरे पेड़ आकाश से बातें करते हुए। बहुत विहंगम दृश्य है इस मैदान का। प्राकृतिक छटा काफी निराली, और ये हरे हरे पेड़ इस मैदान की शोभा में 4 चांद लगाते हैं। हेलो हेलो, हाँ। और यहाँ पर ये पेनल्टी कॉर्नर बेकार गया। मैं बता दूं, माफ कीजिएगा, गोल शशि खासा ने बहुत तेज गोल जो हुआ था वो काजल ने किया था अपनी टीम की तरफ से। तो स्थिति यहाँ पर 0-1, लेकिन होशियार रहने पड़ेगा शशि खासा है, क्योंकि शशि खासा बहुत ही तेज तर्रार जो कप्तान है। इनका खेल मैंने देखा था, रांची में देखा था। गजब की खिलाड़ी है शशि खासा, बहुत तेज अटैक करती है। खास करके शशि खासा, पूजा मल्लिक, काजल, साक्षी, सावी, इन खिलाड़ियों से सतर्क रहना पड़ेगा उड़ीसा को। रेड मिलता हुआ यहाँ पर ऋतिका मान के पास है बॉल। ऋतिका मान में बता दूं ये रीढ़ की हड्डी है, बहुत बेहतरीन डिफेंस की खिलाड़ी है ये हरियाणा की। अच्छा बॉल को बढ़ाने की कोशिश से बढ़िया बेहतरीन पास, अधिकतर समय तक बॉल को लंबा हिट यहाँ पर बॉल मारने की कोशिश। इस वक्त यहाँ पर एक और अटैक करती हुई हरियाणा की टीम, मौका बनता हुआ हरियाणा के लिए, बॉल को निकाल दिया और गेंद गई बाहर। इस वक्त लंबा हिट कर यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर खेल करता हुआ उड़ीसा के स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर बॉल को नियंत्रण करने की कोशिश यहाँ पर हरियाणा के खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन बॉल लेके निकल पड़े वहां बहुत तेजी के साथ उड़ीसा के खिलाड़ी। गेंद एक बार फिर यहाँ पीछे सरका दिया हरियाणा के खिलाड़ी ने। तो हरियाणा 1 उड़ीसा 0। हरियाणा के खिलाड़ी के पास बॉल, तेज हिट, सीधा पास, लेकिन पीछे से निकल गया है वहां पर उड़ीसा के खिलाड़ी। बॉल को कलेक्ट किया है, बॉल को भेज दिया बहुत नपतला पास प्रियंका के लिए। प्रियंका बॉल लेकर आगे बढ़ती हुई उड़ीसा की तरफ से पीछे सरकाया, लंबा पास यहाँ पर बहुत बेहतरीन पास बढ़ा दिया है ध्रुपति नायक के लिए। ध्रुपति नायक ने पीछे सरकाया। एक बार फिर गेंद यहाँ पर रामछुरिया के लिए है, पूजा रामछुरिया बॉल लेके निकलती हुई बहुत बेहतरीन पास से खेल रही है। कुछ समय से यहाँ पर गेंद चली आई सोनाली एक्का के पास, राइट फ्लैंक से बहुत छोटे छोटे पास से खेल रही है यहाँ पर उड़ीसा की टीम। मध्य रेखा से राइट फ्लैंक से बढ़ने के लिए चाह रही है यहाँ पर हरियाणा के क्षेत्र में। स्थिति 0-1, हरियाणा 1 उड़ीसा 0। तो परिस्थिति को अपने पक्ष में करके रखा इस वक्त हरियाणा की टीम। दूसरा क्वार्टर का खेल यहाँ पर चल रहा है। आज का सुबह के सत्र का पहला क्वार्टर फाइनल का
यहाँ पर दूसरा क्वार्टर फाइनल, दूसरा क्वार्टर। आज जो मुकाबले आज जो शेड्यूल है मैं बता दूं, इसके बाद मध्य प्रदेश की टीम भिड़ेगी छत्तीसगढ़ से और दोपहर 1 बजे मुकाबला होगा। तीसरा क्वार्टर फाइनल झारखंड के सामने होगी पंजाब की टीम, जब तक चौथा क्वार्टर फाइनल महाराष्ट्र और यूपी के बीच होगा। कल सब जूनियर पुरुष हॉकी में पंजाब ने मध्य झारखंड को 3 के मुकाबले 4 गोल से पराजित कर यहाँ पर चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। कल बहुत जबरदस्त खेल हुआ था चेन्नई में। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर मुकाबला में पंजाब ने कल बेहतरीन धमाकेदार जीत की झारखंड के ऊपर। जबकि झारखंड की टीम आगे चल रही थी, लेकिन पंजाब झारखंड की टीम गोल करती गई, पंजाब वापसी करते गई, अंततः 3 के मुकाबले 4 गोल से पराजित कर दिया। 4-3 का रिजल्ट रहा। कल पंजाब ने पराजित किया झारखंड को। इस वक्त यहाँ पर सीजल बढ़ी हुई है, इंजेक्शन और बॉल को बढ़ा दिया गया साथी खिलाड़ी के लिए, लंबा हिट और यहाँ पर गेंद गई बाहर। शशि खासा ने यहाँ पर देखे किस तरह से ही है। आजाद मलिक मुख्य कोच है ये हरियाणा के, अपने खिलाड़ियों के ऊपर काफी गुस्सा नजर आ रहे हैं कि ये पेनल्टी कॉर्नर को क्यों नहीं गोल में तब्दील किया गया। आजाद मलिक बहुत तेज तर्रार, बहुत बेहतरीन कोच है यहाँ पर। ये हरियाणा के कोच हैं, काफी लंबे समय से ये हरियाणा की सेवा दे रहे हैं और न सिर्फ सेवा दे रहे हैं बल्कि एक से एक हॉकी के खिलाड़ी को इन्होंने सजाया है, संवारा है हरियाणा की तरफ से, जो आगे चल के सीनियर हॉकी खेलते हैं। इस पर शशि खासा के पास बॉल, इसी खिलाड़ी की मैं बात कर रहा था। बहुत तेज तर्रार है शशि खासा, बॉल को बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी के लिए, बॉल लेके निकलने की कोशिश यहाँ पर हरियाणा के खिलाड़ी डी के अंदर खेल चलता हुआ। गेंद है यहाँ पर वंशिका के पास, यहाँ पर बॉल को बाएं फ्रेंच से पास बढ़ाने की कोशिश, गेंद गई बाहर। इस वक्त टच लाइन की बाहर गई है, तो स्थिति 0-1। हरियाणा 1 उड़ीसा 0। सुबह के क्षेत्र का मुकाबला चल रहा है यहाँ पर। हिटिंग लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा यहाँ पर खेल के नायक का हरियाणा के लिए। पहले ही क्वार्टर में लगभग खेल के दूसरा मिनट में ही काजल ने गोल डाल दिया था हरियाणा के लिए। लंबा हिट यहाँ पर स्टैकिंग सर्किल के अंदर, गेंद गई बाहर। लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा। हरियाणा कुछ समय से यहाँ पर अटैक कर रही है उड़ीसा के ऊपर। लाइव एक्शन आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से। बॉल एक आगे बढ़ती हुई इस वक्त यहाँ पर हरियाणा के खिलाड़ी स्टैकिंग सर्किल के अंदर पहुंचते हुए बॉल निकालने की कोशिश और यहाँ पर बाहर जाती हुई। एक बार फिर यहाँ पर उड़ीसा के खिलाड़ी बॉल को कलेक्ट करते हुए लेफ्ट फ्रंट से गेंद इस वक्त उड़ीसा के खिलाड़ी सोनाली एक्का के पास और ये है हरियाणा के कोच आजाद सिंह मलिक। ट्रीटमेंट हुआ तो 0-1 की स्थिति, हरियाणा 1 और उड़ीसा 0। लगभग आधे समय का खेल हो चुका है यहाँ पर। उड़ीसा के खिलाड़ी सोनाली एक्का के पास है बॉल। सोनाली एक्का साथी खिलाड़ी की तलाश, उचटती हुई नजर डालते हुए पीछे सरका दिया अपने रक्षापंथी के खिलाड़ी के लिए। यहाँ पर गेंद एक बार फिर यहाँ उड़ीसा के खिलाड़ी लंबा हिट थ्रू पास बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, गेंद गई बाहर। टच लाइन का फ्री हिट मिलता हुआ सुरेखा बाहर। इस वक्त सुरेखा स्कूप किया, ऊंची उड़ती हुई गेंद हेड फ्लैग में बॉल को बढ़ाने की कोशिश की गई थी करुणा मिंज के लिए, करुणा मिंज बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाई। सफलता में यह इंफ्रीमेंट हुआ, फ्री हिट मिलता हुआ अपने क्षेत्र से यहाँ पर हरियाणा को पीछे सरका दिया है डिफेंडर के लिए। गेंद एक बार फिर हरियाणा के खिलाड़ी से यहाँ पर रितिका मान के पास, रितिका मान ने लंबा हिट लगाया, गेंद यहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश अस्मिता एक्का के द्वारा, गेंद उनसे छीन गई। गेंद चली है इस बार हरियाणा के खिलाड़ी के पास, मदरेका के पास बढ़ती हुई हरियाणा के खिलाड़ी को डील करती हुई साथी खिलाड़ी की तलाश, डायगोनल पास अपने दाएं तरफ, बॉल को बढ़ा दिया है यहाँ पर रितिका मान के लिए। रितिका मान ने बॉल को स्कूप किया है राइट विंगर के लिए, बॉल यहाँ पर शावी के लिए। शावी बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है, ये बहुत बेहतरीन खेलती हैं हॉकी हरियाणा की तरफ से शावी। गेंद यहाँ पर
उड़ीसा के खिलाड़ी कलेक्ट करने की कोशिश, अस्मिता एक्का इंक्रीमेंट हुआ, फ्री हिट मिलता हुआ अपने क्षेत्र से डॉक्टर लाइन के पास यहाँ पर उड़ीसा को समांतर पास, यहाँ पर बॉल को बढ़ा दिया गया अजीता एक्का के लिए अश्रिता एक्का बॉल को पीछे सरकाया, गेंद एक बार फिर यहाँ पर अश्रिता एक्का के पास, अश्रिता एक्का ने और पीछे सरका दिया डिफेंडर के पास, अच्छा पंथी के खिलाड़ी के पास। उड़ीसा 0 हरियाणा 1। बहुत तेज हॉकी चल रहा है लेकिन किसी भी टीम को कोई सफलता नहीं मिली है। प्रियंका बॉल लेकर आगे बढ़ती हुई उड़ीसा की तरफ से, बॉल को यहाँ पर अच्छा पास, स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचने की कोशिश इस वक्त यहाँ पर उड़ीसा की टीम अटैक करती हुई, लेकिन काउंटर अटैक यहाँ पर हरियाणा के द्वारा। हरियाणा 1 उड़ीसा 0। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का पहला, आज सुबह के क्षेत्र का पहला मुकाबला, अब पहले मुकाबले का दूसरा क्वार्टर का खेल चल रहा है। यहाँ पर बाजी मार रखी इस वक्त हरियाणा की टीम ने, हरियाणा 1 उड़ीसा 0। खेल के लगभग दूसरा मिनट में काजल ने गोल करके अपनी टीम को 1 गोल की बढ़त दिला दी है यहाँ पर हरियाणा के लिए। उड़ीसा के खिलाड़ी के पास बॉल, सोनाली एक्का के पास बॉल, सोनाली एक्का ने 2 खिलाड़ियों के झुंड में से बॉल को निकाल दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए। यहाँ पर गेंद इस वक्त है द्रुपति नायक के पास, बहुत तेज हिट लेफ्ट विंगर के लिए द्रुपति नायक के द्वारा, लेकिन उनकी खिलाड़ी पीछे रह गई और गेंद गई बाहर गोल लाइन का। 16 गज का हिटिंग यहाँ पर हरियाणा के खिलाड़ी के पास बॉल, हरियाणा के खिलाड़ी बॉल लेके निकलते हुए यहाँ पर आजाद सिंह मल्लिक आप देख सकते हैं, कोच काफी ये बहुत ही अनुशासन डिसिप्लिन्ड कोच है ये, और कहा जाए हरियाणा को बहुत लंबे समय आजाद सिंह मल्लिक। गेंद इस वक्त खुशी के पास, हरियाणा बार बार फॉक्सिंग की जा रही है आजाद सिंह मल्लिक कोच के ऊपर। गेंद इस वक्त ये दीक्षा के पास, दीक्षा स्टार्टिंग सर्किल के अंदर पहुंच गई यहाँ पर हरियाणा की टीम, खतरा बनता हुआ उत्तर प्रदेश के ऊपर, और यहाँ पर लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा खेल के नायक का। तो स्थिति 0-1। दूसरा क्वार्टर का खेल बहुत लंबे समय का चला गया, 3 मिनट 50 सेकंड का समय बाकी है। यह है रुचिका वानखेड़े, इस वक्त यहाँ पर मदद मांगी है रुचिका ने वीडियो अंपायर से। देखिए बॉल लेके बढ़ रही थी दीक्षा यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंच गई उड़ीसा, और उन्होंने वहां पर बॉल को सेंटर किया था, यहाँ इंप्लीमेंट हुआ और यहाँ पर पेनल्टी स्टॉक का इशारा। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है यहाँ पर उड़ीसा के लिए। ये यहाँ पर स्थिति यहाँ पर 0-1, क्या डिसीजन आता है देखना पड़ेगा। हरियाणा 1 उड़ीसा 0। उड़ीसा के खिलाड़ी इस वक्त बॉल लेके आगे बढ़ते हुए, वैसे ही उड़ीसा 1 गोल से पिछड़ रही है, लेकिन हरियाणा को ये पेनल्टी स्टॉक मिल गया, ये काफी खतरनाक स्थिति हो सकती है उड़ीसा के लिए, और हरियाणा का स्कोरिंग का ग्राफ यहाँ से बढ़ जाएगा। ये हैं रुचिका वानखेड़े, ये बहुत ही ये पेनल्टी स्टॉक, इस पेनल्टी स्टॉक के डिसीजन को कायम रखा गया, और यहाँ से मुश्किलें बढ़ती हुई उड़ीसा के लिए। यहाँ पर पेनल्टी स्टॉक इस वक्त हरियाणा की तरफ से, और ये हुआ गोल। दूसरा गोल करती हुई पेनल्टी स्टॉक को गोल में डाला हरियाणा की खिलाड़ी ने, तो इस तरह से दूसरा गोल हुआ हरियाणा की तरफ से। और यहाँ पेनल्टी स्टॉक दिया है सुप्रिया ने, जर्सी नंबर 2 सुप्रिया ने पेनल्टी स्टॉक को गोल में तब्दील किया। तो यहाँ पर
पहला क्वार्टर का लगभग दूसरा मिनट में, यह है प्रिया, इस वक्त देख सकते हैं ये प्रिया है जो टीम मैनेजर है हरियाणा की। तो पहला गोल खेल के लगभग दूसरा मिनट में डाला था काजल ने, और यहाँ पर लगभग 3 मिनट 30 सेकंड का समय बाकी है दूसरा क्वार्टर का। यहाँ पर पेनाल्टी स्टॉक को गोल में डाल करके हरियाणा अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर लिया है, सुदृढ़ कर लिया है। लगभग खेल के 26वां मिनट में यहाँ पर गोल किया गया। हरियाणा ने पेनाल्टी स्टॉक को गोल में डाल करके अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है, सुदृढ़ कर लिया है। से बॉल लेकर आगे बढ़ती इस वक्त यहाँ पर हरियाणा के खिलाड़ी, यहाँ पर उनके टीम मैनेजर ने सब्स्टिट्यूट किया, बॉल लेके तमन्ना लेके आगे बढ़ती हुई इस वक्त हरियाणा की तरफ से। वहां पे तैयार हैं जानवी, उड़ीसा बॉल को क्लियर किया। तो 0-2 की स्थिति, हरियाणा 2 और उड़ीसा 0। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आप लाइव एक्शन देख रहे हैं आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में, और मैं शमीम आलम अपने साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ और विकास कुमार के साथ आपको मैच का एक पल की जानकारी दिए चलूंगा। हमारे साथ जुड़ेंगे विकास कुमार मैच के तीसरे क्वार्टर फाइनल में, और इस वक्त हमारे साथ हैं अंग्रेजी के एक बहुत धुएंधार कमेंटेटर मयूर बरुआ। आपको अपने कमेंट्री से आपके आंखों आपके तक पहुंच रहे हैं, आंखों देखा विवरण से हम आप तक हॉकी इंडिया मीडिया यूट्यूब चैनल से आप तक पहुंच रहे हैं। लाइव प्रसारण जो हो रहा है हॉकी इंडिया मीडिया यूट्यूब चैनल के द्वारा, और पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लंबा हिट यहाँ पर सेंटर किया है हरियाणा के खिलाड़ी ने, लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट। इस वक्त सोनिया मींज के पास बॉल, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ तो स्थिति 0-2, और यह ग्रीन कार्ड रुचिका वांगखड़े के द्वारा ग्रीन कार्ड 2 मिनट के लिए बाहर जाना पड़ेगा। हरियाणा के खिलाड़ी बाहर गए। यहाँ पर हरियाणा के खिलाड़ी इस वक्त मैदान से बाहर जाते हुए, तो स्थिति 0-2। 10 खिलाड़ी से खेलेगी हरियाणा की टीम। अपने क्षेत्र से बॉल को निकाल दिया, डायगोनल पास, धीरे धीरे लंबा हिट लगाने की कोशिश, और यहाँ पर एक बार फिर यहाँ स्टैकिंग सर्किल के अंदर घुसने की कोशिश। हरियाणा के लिए एक मौका यहाँ पर है, अच्छा मौका, लेकिन पीछे से आए वहां पर अश्रिता एक्का ने बॉल को बाहर किया। अच्छा बचाव किया यहाँ पर अश्रिता ने अपनी टीम के लिए, उड़ीसा के लिए। तो स्थिति 0-2, खेल अपने आखिरी मिनट में चला गया है। उम्मीदें इस वक्त उड़ीसा का दूर होती हुई, जबकि हरियाणा की उम्मीदें प्रज्वलित करते हुए उनके पहला गोल काजल, दूसरा गोल इस वक्त किया है सुप्रिया ने पेनाल्टी स्टॉक से। तो इस तरह से स्थिति यहाँ पर हरियाणा के पक्ष में है। हरियाणा 2 उड़ीसा 0। बहुत शानदार कवरेज हमारी प्रोडक्शन टीम के द्वारा, और लाइव एक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर काकीनाडा से। दूसरा क्वार्टर का खेल लगभग अब अंतिम चरण में चल रहा है, अंतिम सांसें ले रहा है, हुडर बजने की तैयारी, और यहाँ पर हरियाणा ने इस वक्त बाजी मार रखी है। उड़ीसा को 0 के मुकाबले 2 गोल से पराजित किया। मैं बता दूं इसके पहले जो रांची में हुआ था 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, उस पे बाजी मारी थी झारखंड ने मध्य प्रदेश को 1 के मुकाबले 3 गोल से पराजित किया था। ब्रॉन्ज मेडल जीता थी हरियाणा की टीम ने, लेकिन इस वक्त हरियाणा की टीम अपनी दावेदारी पेश करती हुई, और यहाँ पर दूसरा क्वार्टर का खेल खत्म हुआ। स्थिति हरियाणा 2 उड़ीसा 0। उड़ीसा की टीम कोई भी गोल नहीं कर पाई है। मध्यांतर का समय हुआ, दोनों टीम के खिलाड़ियां इस वक्त अपने अपने शिविर में वापस लौटती हुई। लेकिन चलिए चलेंगे फिर हम तीसरे क्वार्टर में, इस समाप्ति के बाद मध्यांतर के बाद तीसरे क्वार्टर में चलेंगे, और तीसरे क्वार्टर में क्या उड़ीसा की टीम वापसी कर पाएगी। 2 गोल के अंतर से इस वक्त पीछे है उड़ीसा की टीम, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। सफलता अभी उड़ीसा
के लिए भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन क्या होगा तीसरे क्वार्टर में, इसके लिए हम आपको लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ के पास अंग्रेजी में विवरण देने के लिए। नाउ ओवर टू मयूर बरुआ। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। ये वादा है इस मिट्टी से, इस मिट्टी की संतानों का। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं ये हौसला नौजवानों का। हॉकी हॉकी जन जन के सपनों की, भारत के सम्मान की। जय जय हो, जय जय हो, जय हो हिंदुस्तान की। सीना चौड़ा किया है तूने अपनी मेहनत कौशल से। रण विजयी होना है तुमको निश्चय और मनोबल से। युगों युगों तक आगे ही इतिहास रचाया जाएगा, 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 जाएगा। हॉकी की रणभूमि पे तिरंगा ही लहराएगा। तिरंगा ही लहराएगा। फिर गूंज उठा है शंखनाद, पाना है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझ
Welcome back to everyone for the next second half. That's a quarter number 3 of this first quarter final of this 15th Hockey India Junior Women National Championship 2025 being played at Kakinada in the state of Andhra Pradesh. Behind the mic, I'm your host, commentator in English, Mayur Barwa. Thank you so much, Mr. Shami Malam. Samim sir has been the backbone of our commentary panel. I always know when he's there, he'll give you tips or two. He'll have the stats right by his fingertips, and that's the reason why we have been blessed to have Samim sir. But can Orissa bless themselves by getting a goal? Because they are 2 goals behind Haryana in this first quarter final, and so much of pressure it remains, isn't it? But Haryana have done very well. First from the blade of Kajal in the 2nd minute, and via Supriya in the 27th minute, in the just dying minutes of the second quarter. First it was 1-0 to end up the first quarter, and then became 2-0. How close was that one? Now the sides will change from left to the right of the picture. That's where Orissa will be scoring. To the right, from the right to the left is where Haryana will be scoring, will be attacking. Now just giving just nice flyby, some good passes. You can definitely feel the energy now passing on very quickly for Haryana, because they know they need to put that strangulation, that the hold in this quarter number 3, just to keep the pressure on. And slowly, if they can trash in more goals, they can put it like a pressure cooker situation. They pass the center line through the center forwards carrying on, and Orissa does so well to the ball, taps on the ball. That is Amisha Eka right to the corner that you have seen right now. Amisha Eka, she also has goals under her kitty in this championship. It's going to be some fascinating day, to be honest. It's little gloomy there, but from here in Haryana, I'm also sitting here in Haryana as the girls are playing. It's getting very cloudy. It's very overcast. Just expecting a huge torrential rain coming in, but thankfully, where we are playing, it's much good there in Andhra Pradesh. We having 3 more quarterfinals today. Andhra Pradesh versus Chhattisgarh will be the upcoming 2nd quarterfinal, and then you have Jharkhand versus Punjab, the 3rd quarterfinal, and the 4th will be Maharashtra versus Uttar Pradesh. So some great games lined up. And at the moment, lining up is Haryana for the 3rd one. Can they make the insertion via the stick? Failing it. I think Orissa is doing really good. They're putting the counter attack going, and also you can see the running with the ball along with the stick has been very good for Orissa. They know they cannot afford to make any more mistakes, because Haryana is really on the top of the game, not because of the kind, not because they have scored 2 goals, but also they can trick you very easily. They've been very fast on their feet, and that's why Orissa at the moment are doing much more better in the kind of possession of the ball, and the kind of treatment they're getting and they're giving on the ball. I think that is nice to see. There has been a certain planning which has gone in that 10 minutes break that they have got between both the half time, and this has been clearly seen. Good man-to-man marking, that the long passes has been good, so it clearly shows that it has been well compiled by the coach of Orissa. The coach is Mr. Karyappa Zoyappa Bolepanda. What a huge figure! He's tall, and he's competing with his other coach, Mr. Azad Singh Malik. He's also such a nice gentleman, and also has huge responsibilities, and also knows how this game
he really has been playing so close to his heart for several years. And now at this level, being chosen to put up the affairs of women's hockey for the state, it's a huge responsibility because Haryana is such a huge state, and some very good players from the left. Tomahawk being tried, gets into the goal post, and what a lovely assist! The small bit of scoop in the end. And I'm sure that's Mr. Azad Singh Malik, the coach. He will be happy, he will be relaxed. The way it just ends in there, I'm sure he is getting his nerves little settled. But there you go, goal number 3. First, the Tomahawk reverse on to the padding of the goalkeeper, but the ball keeps circulating in there, and then the small bit of chance being created. There you go, the reverse lap, the ball gets spangled, rebounded, assisted, again given back to the center, and finally a just small loop up into the goal post. So 3 for Hockey Haryana, and no goals yet to show up for Haryana, for Hockey Orissa. So concerns again. 1 goal in the first half, second goal in the second quarter, and now to start off with 8.5 minutes remaining in the ninth minute, in goal number 3. So a stupendous performance this is from Haryana at the moment. This is a slap from Orissa, and again near the striking circle, getting into it. It's a very nice dribble. This was really good from Priyanka Kuzur. So good to see. And unfortunately, again, Haryana has been too strong. Look at Savi going and moving so ahead with the ball. This is lovely pass from the corner. From the corner, the goalkeeper is way ahead. Oh my goodness, that was Shashi Khasha, the captain. She has 2 goals under her kitty in this championship. Could have been the 3rd goal for the captain, Shashi Khasha. Where was the goalkeeper? The vacant region. Only the whistle of the umpire saved the Blues for the goalkeeper. So another chance goes down begging here for Haryana. But within a minute or so, they could have got the 2nd goal. But 3 goals ahead. Slaps from the far corner. Orissa, now they'll feel agitated. You can feel the frustration coming out. So and again, versus Haryana, you need to be on your A game, because Haryana is a side which will not let you sleep by easily. And coming at a stage in the quarterfinal, in the knockouts, when it's a ticket for the semi-finals, don't expect anything easy. Don't you dare think anything easy. And they are proving a point. 3 goals already. Huge pressure on Orissa now. The ball trying to scoop it up. Well handled by Shashi Khasha. Inside the striking circle. Ball goes out of bounds. 6.5 minutes remaining in the 3rd quarter. As mentioned by Mr. Shami Malam. Getting inside the striking circle again. A reverse angle along the surface. But as mentioned by Mr. Shami Malam, this is our commentary at the moment, me and Mr. Shami Malam. So the second match will again be taken over by me, myself, Mayur Barwa, and Mr. Shami Malam. And from the 3rd match, it will be me and Vikas Kumar. And again, finally, to end up the proceeding for the 4th quarterfinal, it will be again myself and Vikas Kumar to get ahead with the proceedings to finish the 4th quarterfinal. So last match, Maharashtra versus Uttar Pradesh. That will be a very good one, to be honest. And then it will be good to see how Madhya Pradesh and Jharkhand also faces it up. 2 teams were loaded with talent, some good numbers in there. And also, congratulations to Punjab men's team, the sub-junior men's team yesterday. Mr. Shami Malam was right behind the mic to end of quarter number 4, the final of the quarter number 4, back at the Mayor Radhakrishnan Stadium in Chennai, in Tamil Nadu.
So what a close game that was. Inside the striking circle. This could be close also. Could be for Orissa. But the whistle came up even if it was inside the box. Penalty corner being given, as I was mentioning about Punjab boys. But before I close it up, I would like to extend my massive congratulations to Punjab, the sub-junior champion, sub-junior men's national championship winners, Punjab from yesterday. Very close game that was. Like they are in Chennai. With less than 5 minutes remaining now, penalty corner back here at Kakinada, Andhra Pradesh. Chance for Orissa to open up their account. Waiting for the injection. There you come. Stops, traps, and the drag is there. Can they get it? Well done from Bengal. Well done from Haryana, I would say. And an animated, frustrated coach, Karyappa, Joyappa, Bolepanda, again getting his colors wrong. And why not? Because his players should have had that penalty corner going, but they get a chance, they get a reprieve. He puts out the finer points in the air. It will not be easy, isn't it? He knows which are the mistakes clearly from a distance. Injection has been done. The drag is also there. The trap. And where's the ball gone? It has got rebounded. And there you go. It was very close. So finally they couldn't do it. They got a second chance. So it still remains 3 for Haryana, 0 for Orissa. He will be shouting out his lungs out. But that will only remain a very sad story. It's still the quarter number 3 in this first quarterfinal. Some way to go. 4 minutes remaining in this quarter number 3, and then another quarter of 15 minutes. So we'll have to just check how the girls will be performing from there on, especially Orissa. Not easy going again, and the weightage. And the weightage of being playing at the quarterfinal is always very huge. You need to put that on the back. You need to droop that. Again, you will always mentally, you'll be facing up a very tough opposition, a tough opponent. And here you are facing Haryana with 3 goals behind inside the tough striking circle where so much of commotion happens. Relatively, it has been not been an accumulation of a journey which they've been hoping for. A trap there. So, and can you just build up the frustration even more? So the first goal was scored by Kajal in the 2nd minute, the second by Supriya in the 27th minute, and the last goal here at the quarter number 3 in the 36th minute by the captain Shashi Khasa inside the striking circle. Pull-ups it all the way, and the paving control was not there. Getting bisected at the edge of the goal post. That's the coach Adat Singh Malik watching from the sideline. He knows his girls have done a good job. They want to continue this good job even further. How many teams? 5 teams to pass? Correct. You will do 6 teams if you have to pass. 10 teams maximum. Yes. Now. Doctor will show you how to do a beam. Nice wind blowing. Also, I can see across the venue. With 2 minutes now remaining. So gentle breeze blowing. Seriously, this will help you so much with the kind of effort that everyone does, isn't it? It will only
make you plan your substances very well. With just a minute remaining, we are in quarter number 3 in the first quarter final. I think Haryana is really there, commandable, dependable, and they are going in a very adventurous fashion now. Number 10, reverse tomahawk. The ball gets stopped after touching the pads of the goalkeeper. Remains 3. That's Ajat Singh Malik again. Ask him and he will say, yes, that should have been a goal. Should have been the field goal. Number 4. Anxious and a very curious look. How tough on your face he would be, but that's how soft he's also from inside. He's been one of the best coaches, I'm sure, in the circuit. Oh, could have been such wonderful from the right flank for Orissa. I'm sure the goalkeeper must have seen it just like a streak of light passing across. But how close was this one to get it and make it 3-1? And could have gone so nicely to quarter number 4 for the last quarter of this first quarter final. Unfortunately, it will remain 3-0 for Orissa. So the blow of the hooter to signal the end of quarter number 3. Another quarter where I'm sure both the girls have played really well. Orissa needs to be patted on the back because just one goal now in every quarter. As you can see, both the coaches joining their respective girls there. We'll also take a breather here. We'll be moving up to the last quarter very soon. And for the last quarter proceedings, it will be the wonderful running commentary voice in Hindi, Mr. Shami Malam. Welcome, sir. शुक्रिया मयूर। तो इस तरह से यहाँ पर हरियाणा ने अपने शिकंजे को और मजबूत कर लिया है, कस दिया है। 3 गोल खेल के 36वां मिनट में कप्तान शशि खासा ने जो गोल किया, इससे और यहाँ पर हरियाणा की टीम मजबूत स्थिति में चले आई। बता दूं, पहला गोल काजल के द्वारा खेल के 2 मिनट में, दूसरा गोल सुप्रिया कुमारी ने किया था यहाँ पर खेल के 27वां मिनट में पेनाल्टी स्टॉक के द्वारा, लेकिन रही कुछ बची जो कसर है उसको निकाल दिया कप्तान शशि खासा ने तीसरा गोल डाल करके खेल के 36वां मिनट में। लेकिन अभी एक बहुत बेहतरीन मूव बना था उड़ीसा की तरफ से, लेकिन उड़ीसा की टीम नाकाम रही, गोल को जाल नहीं पाई यहाँ पर गोल पोस्ट के अंदर। अन्यथा यह पहला गोल होता उड़ीसा की तरफ से श्रीगणेश होता, लेकिन उड़ीसा की टीम अभी पिछड़ रही है। और अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आजाद सिंह मल्लिक जो कोच है अपने खिलाड़ियों को दिशा निर्देश देते हुए, शिखा गोलकीपर, सुप्रिया, कीर्ति, सावी, कीर्ति, पूजा, शशि खासा कप्तान। बता दूं, शशि खासा और काजल, दीक्षा, शावी, इन खिलाड़ियों से सतर्क रहना पड़ेगा उड़ीसा को। याद रखिएगा, जर्सी नंबर 10 शशि खासा को, पूजा मल्लिक 9 नंबर और कीर्ति खास करके सावी जो है जर्सी नंबर 7 से जो खेल रही हैं, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं, बहुत बेहतरीन अटैक करती हैं, स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर गजब का फुर्ती दिखाती हैं। बात अगर हम किया जाए कप्तान शशि खासा की और सावी की, काजल की, इन खिलाड़ियों का जो संगम है, जब बढ़ते हैं ये लोग मध्य रेखा से स्ट्राइकिंग सर्किल की तरफ बढ़ते हैं तो बिल्कुल हिरन की गति से बढ़ती है ये झारखंड। यहाँ पर ये हरियाणा की जो शेरनी कहा जाए, ये हरियाणा की शेरनी है हॉकी में, क्योंकि सामने वाली टीम को जब ये अटैक करना शुरू करती हैं तो बिल्कुल यहाँ पर रक्षा पंक्ति को भेद के रख देती है ऑपोजिशन टीम को। चलिए चलते हैं चौथा क्वार्टर में, क्या कर पाती है हरियाणा की टीम। यहाँ उड़ीसा के लिए राहें दूर जाती हुई, खेल हाथ से निकलता हुआ क्वार्टर फाइनल, यहाँ से रास्ता तय होगा सेमीफाइनल के लिए। लेकिन रोड टू सेमीफाइनल में क्या कर पाती है उड़ीसा की टीम। उड़ीसा की टीम में बता दूं, जो रांची में हुआ था 2024 में मुकाबला, तीसरा और चौथा पोजीशन के लिए इन्हीं 2 टीमों के बीच मुकाबला हुआ था उड़ीसा, और यहाँ पर पहला उड़ीसा गोल करती हुई, जैसा मैं बता रहा था, तीसरा और चौथा पोजीशन के लिए उड़ीसा का मुकाबला हुआ था हरियाणा से ये रांची में, जहाँ पर 2-2 के मुकाबले पर बराबरी पर छूटा था टीम, और उसके बाद पेनाल्टी शूटआउट में पराजित किया था हरियाणा ने उड़ीसा को 2-1 से। तो लेकिन यहाँ पर स्थिति, यहाँ पर ये करियप्पा है कोच, ये भी करियप्पा कोच हैं, ये हैं उड़ीसा के बहुत ही अनुभवी कोच हैं। तो ये मौका बेकार हाथ से निकला उड़ीसा के हाथ से। तो उड़ीसा यहाँ पर
स्कोरिंग का ग्राफ अभी तो 0 हरियाणा 3। इस वक्त उड़ीसा के खिलाड़ी के पास बॉल, गेंद इस वक्त उड़ीसा के खिलाड़ी यहाँ पर प्रियंका बॉल लेकर आगे बढ़ रही हैं। तीसरा और ये सॉरी ये गोल हो गया था जैसा कि बताया गया था, लेकिन स्कोरिंग का ग्राफिंग हमारे बहुत तेज से यहाँ पर देर से आती है, इसलिए हमें भी भ्रम हो जाता है। तो चलिए 3-1 की स्थिति उड़ीसा ने श्री गणेश किया। 3-1 की स्थिति, हरियाणा 3 उड़ीसा 1। उड़ीसा ने श्री गणेश तो किया, एक चिर प्रतिद्वंदी टीम सामने है हरियाणा और उड़ीसा। जो जैसा मैं बता रहा था पिछला साल 2024 में जो 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का जो मुकाबला रांची के मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चला था, वहां पर तीसरा और चौथा पोजीशन के लिए यही दोनों टीमें आमने सामने थी। यहाँ पर उस मुकाबले में उड़ीसा ने जबरदस्त मुकाबला किया था हरियाणा का, 2-2 की बराबरी पर मुकाबला छूटा था और अंततः पेनल्टी शूटआउट में हरियाणा ने पराजित किया उड़ीसा को 1 के मुकाबले 2 गोल से। तो यहाँ पर अब उड़ीसा को यहाँ वापसी कितना देर के बाद, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, चौथा क्वार्टर का अंतिम क्वार्टर का खेल चल रहा है, 11 लगभग 12 मिनट का समय बचा हुआ है उड़ीसा के लिए। उड़ीसा के लिए करो या मरो की स्थिति है यहाँ पर। इस वक्त यहाँ पर बॉल सुप्रिया के पास बॉल है, सुप्रिया हरियाणा के खिलाड़ी सुप्रिया, गेंद एक बार फिर यहाँ पर सुप्रिया के पास, साथी खिलाड़ी की तलाश, बॉल को बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी के लिए, लंबा हिट, यहाँ पर गेंद गई बाहर गोल लाइन का, कोई खिलाड़ी बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाई यहाँ पर हरियाणा की खिलाड़ी। तो फिर हिट मिलता हुआ यहाँ पर 16 गज का हिटिंग इस वक्त यहाँ पर उड़ीसा के लिए, डायगोनल पास खिलाड़ी के लिए, बेहतरीन नपातुला पास बढ़ाने की कोशिश, यहाँ पर एक बार फिर यहाँ पर उड़ीसा के खिलाड़ी बॉल को नियंत्रण करने की कोशिश, करुणा मीन ने बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी के लिए, एक मौका बनता हुआ उड़ीसा के लिए, यहाँ पर गेंद गई बाहर। अवसर को भुनाना पड़ेगा उड़ीसा को, तभी कुछ बात बन सकती है, क्योंकि 2 गोल से आगे है, 2 गोल के अंतर से आगे है इस वक्त हरियाणा की टीम। 3-1 की स्थिति, हरियाणा 3 उड़ीसा 1। फिर मिलता हुआ इस वक्त हरियाणा को। उड़ीसा की भी टीम मजबूत टीम है, काफी जुझारू टीम है, मेहनती टीम है, लेकिन आज एक मजबूत टीम हरियाणा का कहां तक मुकाबला कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। हरियाणा के खिलाड़ी के पास लंबा हिट, यहाँ पर दीक्षा ने बॉल को बढ़ाया है मध्य रेखा के पास, बहुत ही जोरदार हिट लगाया, लेकिन गेंद चलाई उड़ीसा के खिलाड़ी के पास, बॉल मध्य रेखा से उड़ीसा के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए 2 खिलाड़ियों को डिफीट करते हुए बॉल को द्रुति नायक बॉल लेकर आगे बढ़ रही है। द्रुति नायक ने अपने बाएं तरफ बॉल को सरका दिया है, एक लंबा अच्छा नबातुला पास सुरेखा बहाल के लिए, सुरेखा बॉल लेकर आगे बढ़ती हुई स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पास, बहुत अच्छा मौका निकाल रही थी उड़ीसा के खिलाड़ी, बाएं फ्लैंक से बहुत अच्छा अटैक बना था, ये मूव बना था, लेकिन फिर भी बेकार गया। हिटिंग यहाँ पर हरियाणा 3 उड़ीसा 1। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025, और यहाँ से जो टीम हारेगी उसका अभियान खत्म हो जाएगा, जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। शशि खासा के पास बॉल पीछे सरका दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, और यहाँ पर एक बार फिर बॉल लेके निकालने की कोशिश। तो स्थिति 3-1, दोनों टीमों की तरफ से जबरदस्त कोशिश हो रही है। शशि खासा को अपने गोल जो है जो जीत रही है 3-1 से, इसकी रक्षा करनी पड़ेगी इस वक्त शशि खासा के पास। गेंद इस वक्त यहाँ पूजा मल्लिक के पास बॉल है, लंबी कद की खिलाड़ी पूजा मल्लिक, इसे सरकाया, क्योंकि कहा जाता है कि जीत की रक्षा नहीं करने वाला हार की गुलामी में कैद हो जाता है। यहाँ पर 2 गोल की जो बढ़त है यहाँ पर हरियाणा के पास, उसको कायम रखना पड़ेगा, और इसके लिए जो बढ़ते कदम है उड़ीसा का जो ऑफेंस है उसको रोकना पड़ेगा हरियाणा को। हरियाणा के खिलाड़ी के पास बॉल इस वक्त गेंद चली है उड़ीसा के खिलाड़ी के पास, बढ़िया पास स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचते हुए एक मौका है यहाँ पर उड़ीसा के लिए, हिट यहाँ पर, और गोलकीपर ने बहुत अच्छा बचाव किया यहाँ पर। इस वक्त इशिका ने, जो गोलकीपर है हरियाणा की गोलकीपर ने, बहुत तेज हिट लगाया गया था उड़ीसा के खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन बहुत चतुराई के साथ हरियाणा की गोलकीपर इशिका ने वहां पे इस हमले को बेकार किया, निरस्त किया हमले को। सुप्रिया के पास बॉल, सुप्रिया ने अपने पीछे से कर दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, गेंद एक बार फिर सुप्रिया के पास, मदरेका के पास, इस वक्त
23 मीटर रेखा के पास खेल होता हुआ बॉल को इस वक्त बॉल लेकर बढ़ाने की कोशिश, सेजल के पास बॉल है, सेजल बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, लेफ्ट लाइन में बॉल को बढ़ाया, गलत पास दे बैठी, वहां पर गेंद चली आई उड़ीसा के खिलाड़ी के पास, यहाँ पर अस्मिता एक्का के पास, अस्मिता एक्का ने लेफ्ट लाइन में बॉल को बढ़ा दिया, समांतर पास बॉल लेकर आगे बढ़ती हुई उड़ीसा के खिलाड़ी 3 खिलाड़ियों के धुरमुटे से बॉल को निकाल दिया है, लेकिन वहां सामने पहुंच गई हरियाणा की खिलाड़ी और इस मूव को बेकार किया। जो बढ़ते हुए कदम है, पूजा मल्लिक वहां पर पहुंच गई थी कि बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है पूजा मल्लिक हरियाणा की। गेंद इस वक्त है हरियाणा की कीर्ति के पास बॉल, कीर्ति ये रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी है कीर्ति, ये डिफेंस लाइन से खेलती हैं रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी। बहुत देर कीर्ति बॉल को ड्रिबल करने के लिए सोच रही है, समय बिता रही है वहां पर, उनका पहुंच गई वहां पर अस्मिता का उनके साथ, फिर हिट मिलता हुआ इस बार यहाँ पर बॉल को कीर्ति ने हिट किया है, साथी खिलाड़ी को बॉल को बढ़ा दिया है सुप्रिया के लिए, सुप्रिया ने राइट फ्लाइंग में बॉल को बढ़ाया, एक अच्छा नपतुला पास यहाँ रीतिका मान के लिए, रीतिका मान ने सीधा पास बढ़ाने की कोशिश, गलत पास दे बैठी, गेंद चली यहाँ पर उड़ीसा के खिलाड़ी के पास, उड़ीसा का काउंटर अटैक होता हुआ अस्मिता एक्का के पास बॉल स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर, लेकिन 2 खिलाड़ी वहां पर हरियाणा का मौजूद, सफलता मिली हरियाणा के खिलाड़ी को, बॉल को संभाल लिया है हरियाणा के खिलाड़ी ने, यहाँ बॉल कीर्ति बॉल को निकालने की कोशिश, चतुराई के साथ वहां पहुंच गई अस्मिता एक्का, हरियाणा के क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश, फ्री हिट मिलता हुआ उड़ीसा को, स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर राइट फ्लैंक से इस वक्त हमला बनता हुआ उड़ीसा को, द्रुपति नायक के पास है बॉल उड़ीसा, द्रुपति नायक, लेकिन कीर्ति उनके साथ साथ चल रही है, फ्री सफलता मिली कीर्ति को, हरियाणा लेफ्ट फ्लैंक से पास बढ़ाने की कोशिश, बिल्कुल हरियाणा और यहाँ उड़ीसा के खिलाड़ी एक दूसरे को मार्क करके रखा है, बिल्कुल क्लोज मार्किंग करके रखा है, कोई भी टीम के खिलाड़ी बॉल लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस बीच यहाँ पर यह कोच आजाद सिंह मल्लिक, बहुत ही अनुभवी कोच हैं आजाद सिंह मल्लिक, ये हरियाणा के कोच हैं, बहुत लंबे समय से ये हरियाणा का सेवा दे रहे हैं और एक से एक हॉकी खिलाड़ी के इन्होंने पैदा किया है यहाँ पर हरियाणा की तरफ से, बहुत अच्छा काफी लंबा अनुभव है इनका। इस बीच यहाँ पर उड़ीसा के खिलाड़ी बॉल एक आगे बढ़ते हुए, द्रुपति नायक के पास बॉल राइट फ्लाइंग में बॉल है डीप की स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर और ये पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा, यहाँ पर उड़ीसा के लिए अच्छी खबर, मौका है उड़ीसा को यहाँ पर, ये आजाद सिंह मल्लिक के काफी गुस्सा में नजर आ रहे हैं, तो दूर से साथी खिलाड़ियों को अपनी टीम के खिलाड़ियों को दिशा निर्देश देते हुए, ये देखिए किस तरह से बॉल लेके बढ़ रही थी द्रुपति नायक के देखिए बॉल लेके बढ़ रही थी, डॉटेड लाइन के पास पहुंच गई थी, वहां पर पास बढ़ाया था साथी खिलाड़ी के लिए, अच्छा पास बढ़ा दिया था दीपिका के लिए और गलत तरीके से रोका गया, इंजेक्शन की तैयारी यहाँ पर उड़ीसा की तरफ से इंजेक्ट किया गया, बॉल को बढ़ा दिया गया ड्राइव के लिए और ये गेंद गई बाहर। तो ये यहाँ पर मौका हाथ से निकला उड़ीसा के हाथ से, मौके को तो भुनाना पड़ेगा, अवसर को यहाँ पर बदलना पड़ेगा, जीत के अंदर बदलना पड़ेगा तभी बात बनेगी, नहीं तो अगर आप अवसर गंवा दीजिएगा तो फिर मुकाबले को भी आप मैच को भी आप गंवा बचिएगा, क्योंकि वक्त की रफ्तार के साथ जो भी टीम चलेगी मौका उनसे ही मिलेगा, सेमीफाइनल के लिए वही टीम क्वालिफाई करेगी, क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल का खेल है, नॉकआउट यहाँ से जो टीम हारेगी वो बाहर हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर एक बार फिर गेंद बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए शावी के पास बॉल है, अच्छा अनुभव शावी के, बॉल को बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी के लिए, अच्छा मौका है यहाँ पर, फिर एक बार निकालने की कोशिश हरियाणा के खिलाड़ी के द्वारा, कीर्ति के लिए बॉल को बढ़ाया था, लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट बेहतरीन टैकलमेंट, वहां बॉल को बेहतरीन क्लियरेंस कर दिया उड़ीसा के खिलाड़ियों ने। ये एक बार फिर मदरेखा से बॉल लेकर आगे बढ़ती हुई कीर्ति के पास बॉल लेकर आगे बढ़ती हुई, यहाँ पर गेंद बढ़ा दिया था पूजा मल्लिक के लिए, तो स्थिति 1-3, हरियाणा 3 उड़ीसा 1। हरियाणा के लिए काजल ने गोल डाला, उसके बाद पेनल्टी स्टॉप से सुप्रिया ने, फिर कप्तान शशि खासा ने गोल डाला, 3-1 की स्थिति। उड़ीसा की टीम एक गोल के बाद आगे नहीं बढ़ पाई है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर खेल सिर्फ 4 मिनट का लगभग बचा हुआ है। गेंद यहाँ पर कीर्ति के पास बॉल लेके निकलने की कोशिश, गेंद बढ़ा दिया है यहाँ पर खुशी के लिए, हरियाणा
किसी ने पीछे छोड़ दिया साथी खिलाड़ी के लिए, यहाँ पर कीर्ति के लिए धीरे धीरे बॉल लेके आगे बढ़ने की कोशिश। बॉल गेंद चली है कीर्ति के पास। कीर्ति नाम की दो खिलाड़ी खेल रही हैं यहाँ पर, मैं बता दूं आपको, हरियाणा की तरफ से। जर्सी नंबर 3 है कीर्ति और जर्सी नंबर 8 कीर्ति। तो यहाँ पर बॉल इस बीच यहाँ मध्यरेखा के पास उड़ीसा के खिलाड़ी के पास बॉल, तमाम पास गलत पास दे बैठी। गेंद चली यहाँ पर हरियाणा के खिलाड़ी के पास, बॉल पीछे सरका दिया। खिलाड़ी समांतर पास, बहुत सटीक पास से खेलती है हरियाणा की टीम। सिद्धिक्षा के पास बॉल, बेहतरीन नपातुला पास बढ़ा दिया है मनीषा के लिए। मनीषा बॉल लेकर आगे बढ़ती है हरियाणा की, सीधा पास थ्रू पास बढ़ाने की कोशिश, गलत तरीके से रोका गया यहाँ पर शावी को। बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है शावी, जैसी नंबर 7। इस बीच यहाँ गेंद चली है वंशिका के पास, जैसी नंबर 16 बाएं तरफ पास। बॉल को बढ़ाने की कोशिश, स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंच रही है यहाँ पर हरियाणा की टीम। और यहाँ पर पेनल्टी कॉर्नर का इशारा शायद, जो आर्थी एस पुन्नी है, लेकिन सॉरी ये लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा। यहाँ पर हरियाणा की खिलाड़ी डिमांड कर रही थी पेनल्टी कॉर्नर का, लेकिन ये लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा किया गया। स्टैकिंग सर्किल के ऊपर खेल होता हुआ हरियाणा के खिलाड़ी बॉल लेके निकलने की कोशिश। काजल जिन्होंने पहला गोल किया था खेल के दूसरा मिनट में, यहाँ पर पेनल्टी कॉर्नर का इशारा। हरियाणा के लिए एक और मौका मिलता हुआ यहाँ पर इंजेक्शन, बॉल को निकाल यहाँ पर ड्रैग और फिर पेनल्टी कॉर्नर का इशारा। और यहाँ पर एक बार फिर पेनल्टी कॉर्नर। तो स्थिति यहाँ पर 1-3, यहाँ पर दबाव बढ़ता हुआ कहा जाए तो उड़ीसा के ऊपर। इंजेक्शन और ये ड्रैग, अभी भी मौका है यहाँ पर हरियाणा के लिए। स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर खेल चलता हुआ, लेकिन गेंद हवा में उड़ी यहाँ पर और ये मौका हाथ से निकला। अच्छा बचाव किया यहाँ पे उड़ीसा के खिलाड़ियों ने। तो 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप सुबह के क्षेत्र का पहला मुकाबला चल रहा है यहाँ पर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। हरियाणा और उड़ीसा के बीच पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। चौथे क्वार्टर में हम इस वक्त चल रहे हैं, जबकि हरियाणा ने 3 गोल कर दिया है, उड़ीसा मात्र 1 गोल कर पाई है। 2 गोल से पीछे चल रही है यहाँ पर उड़ीसा की टीम। समय जैसे जैसे बीतेगा उड़ीसा के खिलाड़ियों के ऊपर मानसिक दबाव बढ़ेगा, क्योंकि खेल लगभग 1 मिनट का बचा हुआ है। लंबा हिट यहाँ पर, अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पे उड़ीसा के खिलाड़ी के द्वारा अपने यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल में बॉल को बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी के लिए। स्थिति 1-3 और यहाँ मुकाबला हाथ से निकलता हुआ उड़ीसा के हाथ से। ये दोनों टीमें यहाँ पर मैं बता दूं रांची में 2024 में तीसरे और चौथे स्थान के लिए भिड़ी थी, जहाँ पे सफलता मिली थी हरियाणा को। हरियाणा ने हालांकि मुकाबला 2-2 पे छूटा था, उसके बाद पेनल्टी शूट आउट में हरियाणा ने उड़ीसा को 1 के मुकाबले 2 गोल से पराजित किया था। उसके बाद 1 साल के बाद फिर यहाँ इस काकीनाडा में दोनों टीमें आमने सामने हैं। सोनाली एक्का के पास बॉल उड़ीसा। सोनाली एक्का, लगभग 1 मिनट का समय बचा हुआ है। वक्त बहुत तेजी के साथ निकल रहा है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, बल्कि वक्त के साथ आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पर हरियाणा के खिलाड़ी एक बार फिर अटैक करती हुई यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर आ रही है। चौथा गोल होता हुआ हरियाणा की तरफ से। इस चौथे क्वार्टर में एक और गोल डाल दिया हरियाणा ने। तो स्थिति 4-1। हरियाणा इस वक्त ये आजाद सिंह मल्लिक काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये है कोच जूनियर हरियाणा के कोच, तो बहुत अनुभवी कोच है आजाद सिंह मल्लिक। बहुत काफी अनुभव इनका है और काफी अभ्यास ये कराते हैं खिलाड़ियों को। जब भी प्रतियोगिता होनी होती है, हमारी इनसे खास मुलाकात है आजाद सिंह मल्लिक से, हमेशा बातचीत होती रहती है। बहुत कोशिश करते हैं हरियाणा के लिए, काफी लंबे समय से ये सेवा दे रहे हैं हरियाणा का। और निश्चित रूप से हरियाणा के एक से एक खिलाड़ी को इन्होंने दिया है भारतीय हॉकी टीम को हरियाणा की तरफ से।
हिट मिलता हुआ पर यहाँ पर सोनाली एक्का के पास है बॉल, उड़ीसा लंबा हिट लगाने की कोशिश, समय बहुत ही कम है, अब उड़ीसा के हाथ से खेल निकलता हुआ। सोनाली एक्का के पास है बॉल, इस वक्त मदरेका के पास दाएं फ्लेम में बढ़ाने की कोशिश, गलत पास दे बैठी, यहाँ पर गेंद चलेगी हरियाणा के खिलाड़ी के पास, बॉल को सरका दिया हरियाणा के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी कीर्ति के लिए, कीर्ति, और इसके बाद गेंद गई बाहर। कीर्ति इससे पहले 3 गोल कर चुकी है हरियाणा की तरफ से। एक बार फिर स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर खेल चलता हुआ, लेकिन वक्त की नजाकत है, यहाँ पर समय अपने अंतिम सांसें ले रहा है, और एक बार फिर अटैक करती हुई हरियाणा की टीम स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर, आखिरी समय में आखिरी कोशिश, और ये आखिरी गोल होता हुआ 5वां गोल। अंत भला तो सब भला, आखिरी में भी यहाँ पर हरियाणा की टीम बिल्कुल अपने दमखम को कायम रखी, अपने जो गतिशीलता है इसको कायम रखी, खेल के अंदर कहीं भी हरियाणा की टीम ने पीछे मुड़ने का देखा नहीं, और स्थिति यहाँ 5-1 हुई। 4-1 गोल बढ़त से हॉकी हरियाणा जीतकर तो इस तरह से चौथा क्वार्टर खत्म हुआ, और 2025 हरियाणा की टीम बहुत बेहतरीन गोल मार्जिन से जीत करके इस अपना वक्त स्थान बंद करके बैठा स्कोरिंग का ग्राफ कांग्रेचुलेशंस हॉकी 4-1 बतला रहा है। लेकिन देखिए किस तरह से ये आखिरी मौका को देखिए रिप्ले में, यहाँ बॉल को बढ़ाया गया खिलाड़ी के लिए स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर, साथी खिलाड़ी को पास, और गेंद गई यहाँ पर गोल पोस्ट के अंदर, निश्चित रूप से ये 5वां गोल होता हुआ। तो यहाँ पर बहुत बड़े गोल की मार्जिन से जीती है हरियाणा की टीम। देखिए रिप्ले में इसे बार-बार दिखलाया जा रहा है। तो यहाँ पर हरियाणा की टीम ने इस क्वार्टर फाइनल में जीत करके रोड टू फाइनल का अपने स्थान बना लिया। बहुत खुश नजर आ रहे हैं आजाशी मलिक जो कोच हैं। तो हरियाणा इस तरह से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई, और ये बताते हुए कि यहाँ पर निराशा हाथ लगी उड़ीसा का, कोई भी गोल फर्दर नहीं गोल कर पाई उड़ीसा की टीम। ये चौथा गोल, सॉरी चौथा गोल। तो 4-1 की स्थिति, और स्थिति यहाँ अपने पक्ष में कर लिया हरियाणा ने। हरियाणा का सेमीफाइनल में प्रवेश। मैं शमीम आलम इस वक्त आपसे विदा हो रहा हूँ। हम चलेंगे आज के दूसरे क्वार्टर फाइनल की तरफ, जबकि दूसरा क्वार्टर फाइनल का मैच शुरू होगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की टीम। मैं बता दूं छत्तीसगढ़ टीम मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ स्टेट अलग हुआ था, मुकाबला होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, थैंक यू। के अंदर और ये पेनल्टी कॉर्नर में जा रहा, यहाँ पर उड़ीसा के लिए अच्छी खबर, मौका है उड़ीसा को यहाँ पर Her wonderful performance. She has been adjudged as a player of the match. We have guest of honor, none other than Sri TV Gangaraju, high performance coach, retired from Sports Authority. Thank you, Peter Thomas, sir, for
making the arrangement of this player of the match award ceremony. Congratulations Ishika, you have put up a very good performance. बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन, आपको बधाई हो। तो मैच आपका करने टीम वाला को जितवाने में बीच वाला कैमरा आपका फोन चल बहुत रहा है, सहयोग, इधर का चलेगा साइड बड़ा सहयोग रहा, बधाई हो। और इसी जो लोग इरादों को अपने सपनों से ही रंग देते हैं, वो डरते नहीं मुश्किल से कभी, दम भर के दम कर देते हैं। मैदाने जंग में आते हैं जब रपट खिलाड़ी भारत के, फिर आसमान पे तिरंगा लहराते हैं, लहराते हैं। फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। ये वादा है इस मिट्टी से, इस मिट्टी की संतानों का। अब कुछ भी हो कब होगा नहीं, ये हौसला नौजवानों का। हॉकी हॉकी चल चलते सपनों की, भारत के सम्मान की। जय जय हो, जय जय हो, जय हो हिंदुस्तान की। सीना चौड़ा किया है तूने अपनी मेहनत कौशल से, रण विजयी होना है तुमको निश्चय और मनोबल से। युगों युगों तक आगे ही इतिहास रचाया जाएगा, 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 जाएगा। हॉकी की रणभूमि पे तिरंगा ही लहराएगा। तिरंगा ही लहराएगा। फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। अब कुछ भी हो कब होगा नहीं, ये हौसला नौजवानों का। हॉकी इंडिया, come on India, let's win this. जो लोग इरादों को अपने सपनों से ही रंग देते हैं, वो डरते नहीं मुश्किल से कभी, दम भर के दम कर देते
मैदाने जंग में आते हैं जब रपट खिलाड़ी भारत के, फिर आसमान पे तिरंगा लहराते हैं, लहराते हैं। फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। ये वादा है इस मिट्टी से, इस मिट्टी की संतानों का। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं ये हौसला नौजवानों का। हॉकी हॉकी जन जन के सपनों की, भारत के सम्मान की, जय जय हो, जय जय हो, जय हो हिंदुस्तान की। सीना चौड़ा किया है तूने अपनी मेहनत कौशल से, रण
who has produced many internationals who have played in Asia Cup, Asian Games, Commonwealth Games, World Cup, Olympics, and brought many medals for our country and raised the tricolor of India high and high at the international scenario. बलदेव सिंह के अंडर बहुत सारे भारतीय हॉकी खिलाड़ी को खेलने को मौका मिला एशियन गेम्स में, एशिया कप में, वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स, और भारत के लिए बहुत गर्व का बात है। और भारत तिरंगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका बहुत बहुत योगदान। इनके अंदर सविता सोनिका, रितु रानी, रानी रामपाल, सुरेंद्र कौर, ममता खरब, किरणदीप कौर और भी बहुत बहुत खिलाड़ी है। उनके साथ हर्षवर्धन escorted the chief guest on the feet. Now I request everybody to get up. National anthem will be played. I request everybody to get up. Good morning, hello, and a very warm welcome to everyone who's joining us again for the live broadcast of the second quarter final of this 15th Hockey India Junior Women National Championship 2025, live all the way from this gorgeous and a sun-kissed morning at the Kakinada here in the state of Andhra Pradesh. It is going to be hockey. Madhya Pradesh will be locking horns versus the Chhattisgarh hockey. Behind the mic, I'm your host commentator in English, Mayur Barua. And in our commentary panel, it will be Mr. Shami Malam and Mr. Vikas Kumar who will be joining with me. We're all ready for the pushback. What a first quarterfinal we've already seen, isn't it? 4-1 the scoreline. And it has been such a good match as Haryana have pushed into the semi-finals, defeating Orissa. So let's see. We'll be going here on paper. Hockey Madhya Pradesh seriously looks to be a very tougher opposition with scorelines of 5-0 versus Chhattisgarh and 4-0 versus Punjab. We're just waiting for the clock to tick exactly 8 o'clock. That's what the starting time is. But for Punjab, 0-4 versus Madhya Pradesh, 1-1 versus Chhattisgarh. Doesn't favor very heavily with them, but then again, it's a different day. It's the quarterfinals. It's the ticket for the semi-finals. So you have to give all you have and really make it a push against anything that have against your wall. So you really have to push it for one final time, probably until unless you edge yourself on the semi-finals, then give some further push. But from Madhya Pradesh, you can see all those girls there. They have done increasingly well with the clock ticking 8 o'clock. Here comes the pushback, and look at immediately the precision, the way they've been just venturing across. The girls from Madhya Pradesh, the girls in yellow from Madhya Pradesh, and wrapped in white and tinge of black are the girls from Chhattisgarh. And what a gorgeous morning. Seriously, look at the sun coming out. And it's a lovely, lovely venue, isn't it here? I'm sure the crowds will slowly build up. It's a Saturday. I'm sure most of the offices might be closed, some schools, institutions. So why not come here, enjoy this beautiful game of hockey as the girls are battling out here in the quarterfinals of this 15th Hockey India Junior Women National Championship 2025 here in Kakinada in Andhra Pradesh. The home team might not be there, but let me tell you, these girls in your picture, and also the others who will be there, Jharkhand, Punjab, Maharashtra, Uttar Pradesh, huge teams who have qualified from the league stages until now. And I'm sure they will be going great guns as a huge aerial scoop has come from Chhattisgarh right into the striking circle. But penalty corner
umpire. Umpire for today's match, Miss Shivani Sharma and Miss Gayatri Sanjay Lodha. That's Gayatri Sanjay Lodha. We'll have Miss Shivani Sharma probably at the other end. She's the tallest of the umpiring fraternity in women's. Let me tell you. But again, it won't be easy for neither for the players or the match officials or for the spectators, as it's going to be hot and it's going to be humid. It has already started off, as you can see, the sweat coming on the face, and not easy for the goalkeepers with all the accessories, the helmet, the gloves, the stick, the padding. So just check it out and we'll see the whole gamut of them. So for Madhya Pradesh, the goalkeeper is Miss Apurva Bundela and the captain is Palak Gupta and the coach is Miss Saroj Singh Rajput. The team manager is Mr. Rakesh Gadwal. For Chhattisgarh hockey, the coach is Miss Sanjana Sahu and is Mr. Ahmed Anish and team manager Miss Sanjana Sahu. The goalkeeper is Jyoti Rani and the captain Rukhamani. Here comes the injection. Chhattisgarh, the first penalty corner, traps, reverses, back flicks from the left. Can they get it? Oh, Chhattisgarh have started off in a fascinable manner. Who would have thought it would be Chhattisgarh to start off the honors early on and press it back versus Madhya Pradesh starts off with the first goal within 1.5 minutes of the start of the second quarterfinal. It's 1 for Chhattisgarh, 0 for Madhya Pradesh. Superbly done for them. The first penalty corner advantage they get and they convert it into a goal. Madhya Pradesh 1 goal behind. But let me tell you, this girl seriously knows. Palak Gupta, the captain, no goals as yet for her in this championship. But Krishna Sharma, the girl that I say is PT Usha of Madhya Pradesh hockey, the way she sweeps across the surface, she runs like a cheetah, and she'll tell you, I am the lioness of the jungle. She has 2 goals under her belt, a penalty corner and a field goal for Krishna Sharma, and which she had versus Chandigarh. And Kajal has 3 goals, including a penalty stroke, a penalty corner, and a field goal. And then Sneha Patel, she has 2 goals, including a penalty corner and a field goal. And then Ayushi Patel has 1 goal and 1 goal for Anu. So that's the breakup of all the goals that Madhya Pradesh have inserted against their opposition. They haven't conceded any goals as yet, but they have trotted 9 goals. So huge numbers for them in this championship. And I'm sure the girls and now have conceded a goal. So that's the first goal they've conceded actually. So 9 versus 1 now the numbers for them. So Chhattisgarh have started off seriously very well. Now from the corner again, it's a lovely pass right to the corner. They're going very much ahead. Can they match up versus Madhya Pradesh? The defenders going toe in toe. And the ball goes out of bounds. This is really a good surge of energy for Chhattisgarh. And why not? We're playing for a ticket to the semi-finals. Haryana already there, defeating Orissa. They pass the center line from the center forwards. Madhya Pradesh gaining momentum again, giving so small passes. Look at those. The way she has snatched the chocolate from the child, I would say. It's that kind of moment that happened actually. Piercing right between both the defenders from the far along corner, slaps it across the surface. Really nice. Madhya Pradesh really need to pull up the socks. They know with 1 goal behind, they need to play a very different brand of hockey now. This would be commendable if they can put it all the way through from the left flank, trying right into the middle. Chhattisgarh trying to reverse. It's a penalty corner. And the goalkeeper signals that we want to see it. We want to use the technology. Second penalty corner being given to Chhattisgarh. First has been converted into a goal. Let's see where the infringement has happened. Have to see it from far corner. From there. And that will be the one where probably... there we go. Just trying to
probably trying to pull inside the squeeze in the stick. That's where it is. So let's see what transpires from above. At the moment, with 10.5 minutes remaining in the first quarter of the second quarter final, it has started off in a dramatic fashion. Chhattisgarh 1, Hockey Madhya Pradesh 0. What a good, what a good referral this is. Seriously good referral. A penalty corner has been averted. So they keep the review, Madhya Pradesh. Oh, lovely. Seriously lovely this is. But this has just gone in a very, very delectable manner now. Let's see how they can just cruise on this review now. So it will be just one for Chhattisgarh, which has been converted into a goal. For Chhattisgarh, right at the top in individual category is Sidhar Madhu with 4 goals, 2 penalty corners, and 2 field goals. Then comes Sheetal Yadav with 1 goal. Then Chetna Ranidas 1 goal, and then Manisha Patil 1 goal. The figures are not huge because Chhattisgarh they lost versus Jharkhand. That was a trashing 1-7, and then versus Karnataka they gave the trashing back to them 6-1. So eventually, which actually helped them to get a place in the quarterfinals. And after this, we'll be having Jharkhand versus Punjab. At the moment, from the far corner, almost inside the striking circle, the struggle is there. The dribble is there. She's appealing for a foul play. And penalty corner again. Oh, what's happening here for Hockey Madhya Pradesh? Probably the pressure of the quarterfinal is weighing very heavily on their shoulders. They want to go for the second time. They want to see if the Lady Luck will again smile on them. They want to use the assistance of the TV umpire, who again needs to pierce through the technology to see if Madhya Pradesh again keeps the review. Could be frustratingly very close. Let's see what transpires from above. Less than 100 seconds, I would say, and we are again going upstairs. Walkie-talkie comes from right behind the umpire. Let's see what is there in store for us. That's umpire Miss Gayatri Sanjay Lodha. It's 1 for Chhattisgarh, none for Hockey Madhya Pradesh. And we do have a decision.
public coming in. And let's see what has happened here. It is just flipped by right from the corner. And so penalty corner again averted. Oh, this was frustration for Chhattisgarh, as it has been not been given a penalty corner. So that is a huge reprieve coming in for sure. Well done. Let's see if it can be just putting in a circle. But again, fantastic coverage, I'd say. The production has been absolutely clean and very nice. You are watching all this action live on the YouTube channel of Hockey India. And you can also go to the website. You can visit the website www.hockeyindia.org for all the upcoming fixtures. You follow your favorite players, the results, and everything is there. As there's huge commotion coming in. That's Krishna Sharma on your picture from the left. Just the way she gazelles through the air. Just believe that she is, or is it Sujata Jain? I couldn't figure out. It felt like that was Krishna Sharma. You'll see number 7 in there, right from the center. Flips it through. Let's plays it up. It's a bit of a tussle between the center forwards from the midfielders coming in, just trying to block the ball. Nice interception. Chhattisgarh gets it going, gives a nice aerial pass towards the left. Look at how she dribbles the ball and carries so far ahead. And she's almost getting it, Yashoda, and trying to block it off inside the striking circle from the left. Tomahawk attempted, but cannot. Ball goes out of bounds. Chhattisgarh really on the surge. They are rampaging it ahead, and they know they don't want this to slip by to Madhya Pradesh with 1 goal ahead, and they are giving some huge trusting in this quarterfinal for sure. Sure, now the heat with the natural heat coming in. That's Krishna Sharma, the PT Usha of Madhya Pradesh hockey, and I'm sure she also knows she has 2 goals under her kitty, a penalty corner and a field goal, as I mentioned before. And that's our umpire, Miss Shivani Sharma. Tall and a very good figure. And in the lady fraternity, she's the one who have been just putting all the honors ahead, but the honors will lie now again on Chhattisgarh. On the left, the ball has regained some pace. Well mitigated from the corner of the outer area to get the ball right onto her stick and trying to carry it all the way. Some sticking control as for the sticks from Chhattisgarh and Madhya Pradesh gets entangled. The whistle of Ms. Shivani Sharma will break the bondage. She was attempting jersey number 12, Chetna Rani Das, has a goal to her name, a field goal. Is almost shaping up to get the second one in the championship. Past the center line, getting forward with the center forward there. It's a nice back pass, gives a pyramid pass. Madhya Pradesh now, can she get it? That's a lovely pass again to Krishna Sharma from the far right. She slaps it, slapping it straight line, not in a diagonal line. Straight ball goes out of bounds. So it'll be a freebie to start off for a Chhattisgarh. Game now starting to get some huge momentum. Now probably Madhya Pradesh is getting in the groove, and you can see the ball possession percentage for Madhya Pradesh has now increased now versus Chhattisgarh. 5 minutes remaining on the clock. Chhattisgarh again. It is Chetna Rani Das from the corner, from the right flank. Ball cannot create the enough ripples or the velocity it needed to be. But Chetna Rani Das again, probably the third attempt from the left flank, now from the right flank. Now she is getting gorgeously on her opponent. So beware Madhya Pradesh for sure. Not because they are 1 goal behind, but because the way the momentum is now carrying forward, it's getting shifted. And you can see how they have been trying to go ahead with the ball. As I mentioned, that Madhya Pradesh gets control.
That's jersey number 14, Raj Rani, getting along with, there she is, Yasoda. I thought it was Rukamani, the captain, but it is Yasoda. Rukamani doesn't have a goal in her kitty in this championship, mind you. So while captain, so both the captains, Palak Gupta and Rukamani, both doesn't have any goals to their name. Interestingly, Palak Gupta has also represented in many natural clusters, in national clusters, I would say. See, he is a very good name coming up in the Madhya Pradesh hockey fraternity, and also for Hockey India in general. Chhattisgarh from the left to the right, that's where they are defending, mind you, for the girls in orange, already getting drabbed and sun-kissed early morning. They needs to now preserve it, go ahead. I'm sure it's going and moving at a very good pace. And in middle of this, it will be always fair to say a huge thank you. And there you go, inside the striking circle. She scoops it over the crossbar. Oh, yes, shoulder. See, did really well. This is really good thinking. If there are three defenders swamping across in front of you, why not do what best possible? Why not make it aerial with the goalkeeper also see underneath the ball and try and see if the ball can dip inside? That was good thinking from Yashoda. But normally what most of them would have done, they would have slapped it across the surface. But she did something probably unthinkable and did it really nice. But again, didn't choose to get inside the goal post. The scoreline still remains 0 for Madhya Pradesh, 1 for Chhattisgarh. 2.5 minutes remaining for the blow of the hooter to signal quarter number 1 in the second quarter final. And this has been really, really a good passage of play for the last, I think around 8 to 9 minutes. It has gone very even out. The balance has been maintained both between Chhattisgarh and Madhya Pradesh. So being one, there you can see was swapping it across, gets rebounded, but gets back to her hockey stick. This is such a nice angle of the camera. It's a nice eagle eye view. You can see the shadows, the hockey sticks. Now on to Krishna Sharma. She loops it, little bit in the air. Madhya Pradesh has the advantage. Oh, it's a penalty corner. First penalty corner. Big signal by umpire Ms. Shivani Sharma. And now it's for Madhya Pradesh to regroup in a huddle, strategize. Krishna Sharma looks back. Okay, are they going to use the technology? They have used it twice, and twice they won the review. Are Chhattisgarh going upstairs? And Shivani Sharma says, okay, I said that it's no use, but still, if you want, I can get it done. And now she does it. She does it really, really well. And there you go. Can it be done? Can it be done? Let's see. Right at the corner, she's putting it up. And there you go. Shivani Sharma signaling the penalty corner. Let's see how it now goes up. We'll be using the review. And so 1 for Chhattisgarh, 0 for Madhya Pradesh. Here is the penalty corner, which remains. The injection has been done. Krishna Sharma right behind the ball. Can she get it? It's a nice reverse angle back pass to jersey number 8. It is. It's a nice scoop up. Chhattisgarh does really well inside the striking circle. The ball goes out of bounds. So Madhya Pradesh cannot do anything in that penalty corner chance they got. So it remains frustratingly in the 0 column for Madhya Pradesh. But good fight this is from Chhattisgarh. And that's the coach, Ms. Sarod Singh Rajput.
for Madhya Pradesh. There you go. But this is been very eventful, close, and inside the striking circle again. So much of commotion happening. It will only been broken by the bondage of Miss Krishna with Shivani Sharma. So many Sharmas. One Krishna Sharma trying to get a goal, and other umpire Shivani Sharma busy doing the calculations, the permutations, and piercing like the eye of a hawk to give the penalty corner, second penalty corner within a minute for Madhya Pradesh. And now it will be Krishna Sharma, the PT Usha Madhya Pradesh hockey, to pull out the injection. She's ready. We are ready for the second injection. There we go. Grab stops. Can she get the drag? Put it up, and there you go! Right between everyone and through the goalkeeper. Gets the first goal. Just at the striking few seconds remaining, they get the goal, and the management is also very, very happy. Make it 1-1. Wonderful from the girls from Madhya Pradesh to now level up and to make it 1-1. Seriously good this is. Finally gets the conversion done. So both the teams gets 2 penalty corners, and one of them has been converted. Now this will be some contest going into the second quarter. Just milliseconds remaining. Blow off the hooters. So I would say it's more for Chhattisgarh to now get the pressure on them rather than Madhya Pradesh. Look at how the injection from Krishna Sharma stops and just manifesting whether it can be bisected. Then she slaps it, and there you go. Just in a diagonal straight line between the defenders and the goalkeeper, right behind the goalpost to get the equalizer at 1-1. So absolutely wonderful. Behind the mic, I'm Mayur Barwa, and we'll be back with the action, and it will be the voice of our dignified and senior most commentator, Mr. Shami Malam, right behind the mic. Welcome, sir. शुक्रिया मयूर। तो स्थिति यहाँ पर मैच का आखिरी सेकंड कहा जाए, कुछ ही सेकंड बाकी होगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश ने बाजी पलट के रख दिया और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करके स्थिति 1-1 पे लाके खड़ा किया। तो पहला क्वार्टर का यहाँ स्थिति 1, छत्तीसगढ़ ने पहले गोल किया। खेल के दूसरा मिनट में यशोदा ने गोल किया था अपनी टीम के लिए, लेकिन उसके बाद खेल का आखिरी कुछ सेकंड बाकी था, वहां पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ने बाजी पलट के रख दिया। तो इरादे हो जवान जिनके, वही बाजी पलटते हैं। अगर आपका इरादा जवान है, इरादे के अंदर मजबूती है, तो निश्चित रूप से बाजी आप पलट के रख दीजिएगा, और वही चीज यहाँ पे मध्य प्रदेश ने करके दिखलाया। तो एक बार फिर नमस्कार, मैं आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से टर्फ हॉकी स्टेडियम से मैं शमीम आलम अपने साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ और विकास कुमार के साथ आपका स्वागत करता हूं। और स्वागत है आपके हॉकी इंडिया मीडिया यूट्यूब चैनल के पर, जहां से आप मुकाबले का सीधा प्रसारण देख रहते हैं। अभी आप अंग्रेजी में हमारे साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ से हाल सुन रहे थे, यहाँ पर मुकाबले का एक पल की जानकारी दिए जा रहे थे। और चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ एक बार फिर यहाँ पर काकीनाडा का खूबसूरत स्टेडियम। बहुत ही मनोहर दृश्य है इस मैदान का। मैदान की चारों तरफ हरे भरे पेड़ आकाश से लहराते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि विहंगम दृश्य कहा जाएगा। मनोहर छटा काफी निराली है यहाँ पर इस मैदान की। मन को हरने वाला दृश्य इस मैदान का है। खूबसूरत स्टेडियम। छत्तीसगढ़ में बता दूं, ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को, और भारत का 26वां राज्य का निर्माण हुआ था इस राज्य के रूप में। तो इस तरह से ये मध्य प्रदेश का समझे कि छोटा ही भाई है। इसी मध्य प्रदेश से निकल के अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को। लगभग 25 साल छत्तीसगढ़ को अलग हुए हो गया है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त आंखें से आंखें मिलाकर हॉकी में देखता हुआ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से। तो पीली रंग की जर्सी में है यहाँ पर मध्य प्रदेश की टीम, जबकि सफेद और काली रंग का मिश्रण ये है छत्तीसगढ़ की टीम। छत्तीसगढ़ की टीम की तरफ से खेल का दूसरा मिनट में ही छत्तीसगढ़ ने बढ़त प्राप्त कर लिया था यशोदा के द्वारा डाले गए एक गोल की बदौलत, लेकिन
मैच के आखिरी कुछ ही सेकंड बाकी हो गए, 4-5 सेकंड बाकी होगा। पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करके मध्य प्रदेश ने यहाँ पर अपने आशाओं को जीवित रखा है। 1-1 की स्थिति और फिलहाल यहाँ पर पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई मध्य प्रदेश की टीम एक बार फिर खतरे का बादल मंडराता हुआ यहाँ पर छत्तीसगढ़ को इस पेनाल्टी कॉर्नर के रूप में जो प्रहार आने वाला है, इस प्रहार को रोकना पड़ेगा छत्तीसगढ़ को। फिलहाल इंजेक्शन की तैयारी यहाँ पर मध्य प्रदेश की तरफ से। जयंत सुजाता इस वक्त पहुंची हुई हैं इंजेक्शन के लिए एमपी की तरफ से। इंजेक्शन बढ़ा दिया है ड्रैग के लिए एक मौका यहाँ पर, और यहाँ ये मौका हाथ से निकला। ये कोच सरोज सिंह राजपूत नाखुश नजर आ रही हैं, जबकि उनके साथ है राकेश गढ़वाल। ये सरोज सिंह राजपूत कोच हैं मध्य प्रदेश का। इस वक्त कुछ नाराज दिख रही हैं क्योंकि पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में नहीं तब्दील पाई मध्य प्रदेश की टीम। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल, इस वक्त हुदा खान के पास बॉल। हुदा खान ने पीछे सरका दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। यहाँ पर अच्छा पास, गेंद डीप डिफेंडर को बॉल भेज दिया गया है मध्य प्रदेश के डीप डिफेंडर के लिए। अभी भी मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल, ऊंची उड़ती गेंद, स्कूप किया, बॉल लेकर आगे बढ़ने की कोशिश। अच्छा यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर खेल होता हुआ, लेकिन बहुत ही बढ़िया इंटरसेप्ट यहाँ पर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी के द्वारा। लेकिन एक बार फिर इंफ्रीमेंट फ्रीट मिलता हुआ, पलक गुप्ता इस वक्त फ्रीट लेते हुए स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचने की कोशिश मध्य प्रदेश के द्वारा, लेकिन वहां बहुत तैयार थी, सतर्क थी वहां पर छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी, बॉल को क्लियर किया। तो स्थिति 1-1, दूसरा क्वार्टर का खेल चल रहा है इस वक्त। यहाँ पर मैं बता दूं 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में शुरू हुआ था 1 तारीख को, आज क्वार्टर फाइनल का दूसरा मुकाबला हो रहा है। 9वां दिन है मुकाबले का, और ये मुकाबले का ये 43वां मुकाबला है। 43वां मुकाबला इस पूरी प्रतियोगिता का आज आप देख रहे हैं। दूसरा सेकंड क्वार्टर फाइनल। पहले क्वार्टर फाइनल में आपने देखा था यहाँ पर किस तरह से हरियाणा ने पराजित किया उड़ीसा को। तो इस तरह से एक के मुकाबले 4 गोल से पराजित कर दिया था हरियाणा ने। तो उड़ीसा को यहाँ पर निराशा हाथ लगी और उड़ीसा मुकाबले से बाहर हो गई। हरियाणा का सेमीफाइनल में प्रवेश। यहाँ देखते हैं इस दूसरे क्वार्टर फाइनल में किस टीम को सफलता मिलती है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी बॉल को निकालने की कोशिश कर रही थी, यशोदा बढ़ रही थी आगे। यशोदा जिन्होंने दूसरा मिनट में गोल किया था छत्तीसगढ़ की तरफ से। तो स्थिति 1-1, दूसरा क्वार्टर का लगभग 4 मिनट का खेल हो चुका है। मौसम शांत, खुला हुआ मौसम है। इस सुखद मौसम का एहसास करा रहा है ये काकीनाडा का टफ हॉकी स्टेडियम। 23 मीटर रेखा के बाद फ्रीट मिलता हुआ यहाँ पर छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ के दामिनी खुसरो के पास है बॉल। दामिनी बॉल लेके निकलने की कोशिश, इंक्रीमेंट फ्रीट मिलता हुआ छत्तीसगढ़ को। स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर पहुंचती हुई छत्तीसगढ़ की टीम मध्य प्रदेश के स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर बाएं फ्लैंक से ये टॉमहॉक यहाँ पर, लेकिन बहुत अच्छा रिसेप्ट वहां पर किया है और बॉल को अच्छा रिसीव करने के बाद बॉल लेके आगे बढ़ती हुई फ्रीट मिलता हुआ यहाँ पर 16 का हेडिंग मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश 1 और छत्तीसगढ़ 1। करो या मरो की स्थिति है यहाँ पे। रोड टू सेमीफाइनल, जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। इसलिए यहाँ पर दोनों के लिए बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है। यहाँ पर जहां तक जितना तनाव है, प्रेशर है मध्य प्रदेश के ऊपर, उतनी ही प्रेशर है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के ऊपर भी। दोनों इस वक्त बराबरी मानसिक प्रेशर से गुजरती हुई दोनों टीमें। यहाँ पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल, सीधा पास, लेकिन गेंद चलेगी छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी के पास। बॉल लेके भूमिका धनकर बॉल ले बढ़ रही है, बढ़ा दिया बेहतरीन अपने साथी खिलाड़ी को यहाँ पर मानसी उमरे के लिए। मानसी उमरे ने सीधा पास बढ़ा दिया, बॉल लेके आगे बढ़ती हुई मानसी उमरे यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर, लेकिन बहुत चतुर थी वहां पर रौनक परमार, बॉल को बाहर किया मध्य प्रदेश। इस बीच इस बात मध्य प्रदेश काउंटर अटैक करने की बुरी आंख में, लेकिन बहुत अच्छा इंटरसेप्ट वहां पर, बॉल को बढ़ा दिया दामिनी खुसरो ने साथी खिलाड़ी के लिए। बहुत बेहतरीन पास भूमिका धनकर के लिए, इसको पूछी उड़ती हुई गेंद, रेडियल पास बनाने की कोशिश। बहुत तेज हॉकी चलता हुआ यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच। दोनों टीमें यहाँ पर अपना सर्वस्व निछावर करती हुई। छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से निकला हुआ राज्य 9 नवंबर 2000 को निकला था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया था और भारत का 26वां राज्य बना था।
इस बीच यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच मुकाबला चलता हुआ जसोदा बॉल लेके आगे बढ़ रही है। यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचती हुई लंबा हिट किया यहाँ, और गेंद ये बाहर, एक हमला टला जो मूव बना था छत्तीसगढ़ की तरफ से। छत्तीसगढ़ 1 मध्य प्रदेश 1। कल आपने देखा था कल किस तरह जो बॉयज का मुकाबला होता, सब जूनियर बॉयज का, उसमें बहुत कांटे की टक्कर में कल चेन्नई में जो मुकाबला हुआ था, वहां पर बाजी मारी थी पंजाब की टीम ने। 3 के मुकाबले 4 गोल से पराजित कर दिया झारखंड को। बहुत ही वहां पर पल पल में स्थिति बदल रही थी। काफी हॉकी के अंदर एक गजब का माहौल था कल चेन्नई का। वहां पर मेयर राधा कृष्ण स्टेडियम में गजब का कल हॉकी चला था पंजाब और झारखंड के बीच, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। आखिरी पंजाब ने चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया, झारखंड को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। यूपी की टीम रही तीसरे स्थान पे, मध्य प्रदेश चली गई चौथे स्थान पे। वहां पर भी मध्य प्रदेश की टीम जीत रही थी, लेकिन यूपी ने आखिरी समय में वहां पर बाजी पलट के रख दिया। तो इस बीच यहाँ पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल को पीछे सरका दिया, हुदा खान ने पीछे सरकाया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए, वहां पर आयुषी पटेल के लिए। गेंद एक बार फिर बाएं तरफ, एक अच्छा पास मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के पास, मध्य रेखा के पास बॉल लेके आगे बढ़ती हुई इस वक्त यहाँ पर आयुषी पटेल, जर्सी नंबर 10 बॉल लेके आगे बढ़ रही है। सीधा पास, थ्रू पास बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचती हुई मध्य प्रदेश की टीम, एक अच्छा मौका है यहाँ पर एमपी के लिए, लेकिन उतना ही अच्छा बचाव पूर्वानुमान के साथ बॉल को निकाल दिया खतरे के क्षेत्र से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ने। स्थिति 1-1। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय बड़ा बलवान होता है। वक्त के साथ आपको चलना पड़ेगा, वक्त की रफ्तार को समझना पड़ेगा। फ्री हिट मिलता हुआ 23 मीटर रेखा के पास इस वक्त छत्तीसगढ़ को। रूखा मनी जो कप्तान है, उन्होंने फ्री हिट लिया, गलत पास दे बैठी। यहाँ पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल, यहाँ पर 23 मीटर की रेखा के ऊपर पहुंचते हुए मध्य प्रदेश की टीम लेफ्ट फ्लैंक से अटैक करने के लिए चाह रही है, लेकिन वहां बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल दिया, बॉल के कब्जे में जमाया है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ने। राइट फ्लैंक से काउंटर अटैक, बहुत तेज हमला बनते हुआ छत्तीसगढ़ की तरफ से, वहां स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचने की कोशिश, और अभी भी छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी के पास बॉल है। हमला बनता हुआ यहाँ पर एमपी के ऊपर, और यहाँ पर अंपायर का इशारा, फ्री हिट मिलता हुआ यहाँ पर। तो स्थिति यहाँ 1-1। तो 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का एक बहुत ही कांटे की टक्कर, दूसरा क्वार्टर फाइनल का सुबह का सत्र का मुकाबला हो रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच। यहाँ छत्तीसगढ़ बिल्कुल आंखें से आंखें मिलाकर मध्य प्रदेश से खेलता हुआ हॉकी, जो क्योंकि मध्य प्रदेश का ही छोटा भाई है छत्तीसगढ़। यहाँ पर एक स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर बहुत तेज हॉकी की चल रही थी। यहाँ पर मध्य प्रदेश की टीम पहुंची हुई, अभी भी खतरा टला नहीं छत्तीसगढ़ के ऊपर। स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर खेल होता हुआ बॉल लेकर आगे बढ़ने की कोशिश मनीषा पटेल के द्वारा, और यहाँ लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा, शायद हाँ इस लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा। बॉल लेके बढ़ के हुए हुदा खान, बॉल को बढ़ाने की कोशिश मध्य प्रदेश की तरफ से, लेकिन वहां पे चतुर है बहुत छत्तीसगढ़ के रक्षा पंक्ति के भी खिलाड़ी, बिल्कुल मैन टू मैन मार्क करके रखा है। जो मध्य प्रदेश के ऑफेंस के खिलाड़ी है, उनको रोक के रखा है। बॉल लेके आगे बढ़ते हुए लेफ्ट लाइन से जसोदा जिसने खेल के दूसरा मिनट में गोल किया था छत्तीसगढ़ की तरफ से, और फ्री हिट मिलता हुआ यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर। गेंद है इस वक्त यहाँ पर मधुसीधर के पास। मधुसीधर मैं बता दूं अभी तक 4 गोल कर चुकी है छत्तीसगढ़ की तरफ से। जर्सी नंबर 9 इस खिलाड़ी को याद रखिएगा, जर्सी नंबर 9 को याद रखिएगा। मधुसीधर 6 गोल कर चुकी है, 4 गोल कर चुकी है अभी तक यहाँ पर छत्तीसगढ़ की तरफ से। तो इस तरह से यहाँ पर एक बार फिर छत्तीसगढ़ की टीम बॉल लेके आगे बढ़ती हुई 23 मीटर रेखा के पास, सीधा पास, डायगोनल पास, कदम बढ़ाते हुए यहाँ पर शीतल यादव के पास बॉल है। बहुत ही काउंटर अटैक इस वक्त, बॉल को बढ़ा दिया है चेतना के लिए। चेतना बॉल लेकर आगे बढ़ती हुई स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचने की कोशिश, बहुत तेज अटैक करती है छत्तीसगढ़ की भी टीम। राइट फ्लैंक से जो हमला बन रहा है, काबिल दर्शनीय हमला कर रही है छत्तीसगढ़ की टीम।
एक एक की स्थिति। यहाँ पर छत्तीसगढ़ एक, मध्य प्रदेश एक। पहले छत्तीसगढ़ की टीम ने यहाँ पर गोल किया, उसके बाद मध्य प्रदेश की टीम ने वापसी की। लंबा पास यहाँ पर मध्य रेखा के पास से बॉल लेके आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी कृष्णा शर्मा बॉल लेके आगे बढ़ रही हैं। अभी भी कृष्णा शर्मा के पास बॉल, कृष्णा शर्मा बॉल लेके दाएं फ्लैंक से बढ़ती हुई यहाँ पर एक मौका निकालने की कोशिश। लेकिन मैं बता रहा था कि जैसे ऑफेंस के जो खिलाड़ी हैं, आक्रमण पंक्ति के खिलाड़ी मध्य प्रदेश के, उनको छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी जो रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी है बिल्कुल बढ़ने नहीं दे रहे हैं, रोक के रखा है उन्हें, मैन टू मैन मार्क करके रखा है, या यूं कहा जाए कड़ी पेट्रोलिंग की जा रही है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी बाएं फ्लैंक से इस वक्त स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर, लंबा हिट, लेकिन अच्छा बचाव। यहाँ पर 16 स्थिति 1-1, 3 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 3.5 मिनट का समय बचा हुआ है दूसरा क्वार्टर का। यहाँ आधे समय का खेल खत्म होने में, लेकिन परिस्थिति बिल्कुल किसी भी टीम के पक्ष में नहीं है अभी। यहाँ पर छत्तीसगढ़ एक, और यह कोच अनीश अहमद को आप देख सकते हैं। अनीश अहमद ये छत्तीसगढ़ के कोच हैं, जबकि उनके साथ हैं टीम मैनेजर संजना साहू। तो इस तरह से यहाँ पर चिंता की लकीरें इस वक्त अनीश अहमद के चेहरे के ऊपर साफ नजर आ रही है। अपने बहुत दूर से अपने साथी खिलाड़ी को इस वक्त संकेत देते हुए अनीश अहमद को आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये कोच हैं, छत्तीसगढ़ के कोच अनीश अहमद। उनके सामने हैं, पीछे संजना साहू थी टीम मैनेजर। क्रिकेट मिलता हुआ यहाँ पर अपने क्षेत्र से खेलते हुए मध्य प्रदेश की टीम, मध्य प्रदेश एक छत्तीसगढ़ एक। खेल के दूसरा मिनट में यहाँ पर छत्तीसगढ़ की तरफ से जशोदा ने गोल कर दिया, लेकिन मध्य प्रदेश ने वापसी की। पहला क्वार्टर का लगभग 2-3 सेकंड समय बचा हुआ है, आखिरी सेकंड में कहा जाए, एकदम आखिरी लम्हे में वापसी किया मध्य प्रदेश की टीम ने। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 1 अगस्त से शुरू हुआ, आज मुकाबले का 9वां दिन, और मुकाबला 43वां मुकाबला चल रहा है। 43 इस वक्त मुकाबला चल रहा है। इस 43वां मुकाबला में दूसरा क्वार्टर फाइनल में जो है आमने सामने है दो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की टीम। इसको पूछी होती हुई गेंद लेफ्ट लाइन में एरियल पास बढ़ाने की कोशिश, यहाँ पर समय 1 मिनट 44 सेकंड का बचा हुआ है। तो परिस्थिति इस वक्त 1-1 है। मुकाबला कौन से ऊंट किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल, क्योंकि कभी अटैक करती है छत्तीसगढ़ की टीम तो काउंटर अटैक करती है मध्य प्रदेश की टीम। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी शीतल यादव के पास बॉल, शीतल यादव ने साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिया, मौका यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लिए, अभी भी मौका, लेकिन बेहतरीन वहां से इंटरसेप्ट किया गया मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के द्वारा, बॉल को बाहर किया। और यहाँ पर लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा छत्तीसगढ़ के लिए, दामनी खुसरू इस वक्त तैयार हो रही है, छोड़ दिया साथी खिलाड़ी के लिए, यहाँ पर केशरानी शाहू के लिए छत्तीसगढ़, और ये पेनल्टी कॉर्नर का इशारा। इस वक्त यहाँ पर लगभग 1 मिनट खेल बाकी है दूसरा क्वार्टर का, छत्तीसगढ़ की टीम पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई। और यहाँ पर आर्गुमेंट कर रहे थे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी, फलतक खेल के निर्णायक यहाँ पर गायत्री संजय लोधा ने मदद मांगी है यहाँ पर वीडियो अंपायर से।
और अंततः यहाँ पर पेनाल्टी कॉर्नर का निर्णय लिया गया। पेनाल्टी कॉर्नर जो दिया था यहाँ पर गायत्री संजय लोधा ने, उस पर कायम रही। छत्तीसगढ़ के लिए एक मौका है यहाँ पर। दामिनी खुसरू इस वक्त अपने कदमों को आगे बढ़ाती हुई इंजेक्शन के लिए तैयार। पेनाल्टी कॉर्नर लेती हुई इस वक्त छत्तीसगढ़ की टीम निगाहें गोल पोस्ट को निहारती हुई। 29 अगस्त से 7 सितंबर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर ज्वाइन अस थ्रिलिंग के लिए बोलता है कि यहाँ पर एशिया कप हॉकी जो राजगीर में हो रहा है उसका काफी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पूरे मैदान के चारों तरफ बैनर दर्शाता हुआ कि हीरो एशिया कप राजगीर बिहार में आप जुड़िए। एक रोमांचक खेल जो एशिया कप हॉकी हो रहा है, जिसमें एशिया की धुरंधर टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। फिर मिलता हुआ यहाँ पर बॉल को दामिनी खुसरू ने फिर किया अपने साथी खिलाड़ी को मधुसीधर के लिए बढ़ा दिया। मधुसीधर बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है। बॉल को वहां पर सेंटर किया। एक मौका है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लिए, बेहतरीन मौका, लेकिन बॉल को लेटते हुए जरूर फ्लिक किया था, हल्का फ्लिक, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और फिलहाल फिर मिलता हुआ यहाँ पर मध्य प्रदेश को खेल अपने अंतिम सेकंड में जाता हुआ। यहाँ पर वक्त अंतिम सांसें ले रहा है, धड़कनें तेज हो रही है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भी दर्शकों का और मध्य प्रदेश के भी दर्शकों का, क्योंकि दूसरा क्वार्टर का समय बिल्कुल खत्म हुआ। यहाँ हूटर बजता हुआ मध्य प्रदेश 1, छत्तीसगढ़ के द्वारा पहला गोल किया गया था जसोदा ने खेल के दूसरा मिनट में, लेकिन यहाँ पर खेल का पहला मिनट लगभग खत्म होने की थी, तब तक यहाँ पर मध्य प्रदेश ने गोल करके अपनी उम्मीदों को जगाए रखा है। और स्थिति यहाँ पर दूसरा क्वार्टर का खेल खत्म हुआ, मध्य प्रदेश 1, छत्तीसगढ़ 1। और यह विहंगम दृश्य देख रहे हैं, काफी ऊंचाई से जो ड्रोन के द्वारा यहाँ छायांकन किया जा रहा है, जो फोटोग्राफी ली जा रही है। क्या बेहतरीन दृश्य है इस मैदान का, स्टेडियम का, आप देख सकते। सपनों से ही रंग देते हैं, वो डरते नहीं मुश्किल से कभी, दम भर के दम कर देते हैं, मैदाने जंग में आते हैं, जब रपट खिलाड़ी भारत के, फिर आसमान पे तिरंगा लहराते हैं, लहराते हैं। फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। ये वादा है इस मिट्टी से, इस मिट्टी की संतानों का। अब कुछ भी हो, कम होगा नहीं, ये हौसला नौजवानों का। हॉकी हॉकी
सीना चौड़ा किया है तूने अपनी मेहनत कौशल से, रण विजयी होना है तुमको निश्चय और मनोबल से। युगों युगों तक आगे ही इतिहास रचाया जाएगा, 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 जाएगा। हॉकी की रणभूमि में तिरंगा ही लहराएगा।
Third quarter started. Madhya Pradesh will be pressing the accelerator now, and because now Chhattisgarh is under pressure. These girls know the pressure is now back on the girls from on white and black. So don't be surprised if probably it changes to 2 to MP, because now they have got a goal. It really surges it inside the striking circle, frustratingly again reversed from MB. Shivani Sharma, the umpire, taking a very close look. Eyes of a hawk. Look at the dribbles. Look at how he intercepts it. So left to right, and how much wrist work it goes right behind. So every nitty gritties of all those you can find when the camera angle is so close, it gives you such a nice feeling. So someone watching on the YouTube channel of Hockey India, that's how we do it, isn't it? And you learn from the best, and they have the best of the infrastructure. To be honest, Hockey Madhya Pradesh, these girls are truly blessed to be in that part of region where there are some great coaches. The backbone is wonderfully placed, and wonderfully placed might be the ball strategically at a position where Chhattisgarh was trying to be little meaningful. But Madhya Pradesh defenders does really well to squeeze the ball out and make it go out of bounds. Remains 1-1, 1.5 minutes remaining by the clock. It's huge. Thank you again to all the sponsors, stakeholders, as Hockey India just passes 100 glorious years. A huge thank you to the Sports Authority of India, the Ministry of Youth Affairs and Sports, and also to the host association, the Hockey Association of Andhra Pradesh. And I also like to put your eardrums on one name on the. I'll get back to that after this. As Madhya Pradesh squaring up from the left flank, from the right, she's trying. It's rebounded from the footing of one of the players. Looks like it's jersey number 6. And umpire immediately signaling the penalty corner. An advantage for Madhya Pradesh in 2.5 minutes of the third quarter. Looks like it's Rukhamani, the captain, whose foot just came on the way. And umpire Gayatri Sanjay Lodha, she says, just wait a while. I know you have your questions. It gets really into the toughest of the zones. It will pierce you, it will stick you. But you'll have to take that wound out of you and just get it going. It's Sujata Jain for Hockey Madhya Pradesh who will be putting the injection, and hopefully to make it back-to-back goals for them. Last goal came in the first quarter. Dying seconds. Here comes the injection. Stops. And wow, in those important mitigated smallest of the minuscule seconds, they had to do it, but they couldn't do it. Right at the corner, Chhattisgarh is doing the job. And that's Mr. Rakesh Gadwal along, standing there, just looking what's actually going around. Mr. Saroj Singh Rajput is the coach of Hockey Madhya Pradesh. We didn't see her in the picture. That's she is there actually on the left on the picture. That's Mr. Rakesh Gadwal facing the camera towards. Both of them have done really well, been there with the girls. I know there have been so much help for the technologies. There have been so many inputs coming from all across of how to go ahead from here on. But I like to put again on Mr. Piyush Kumar Dubey, who was the former Indian team coach, who also won the bronze medal in Tokyo Olympics 2020. And he is currently the High Performance Director of Sports Authority of India and Khelo India. So huge kudos goes to Mr. Piyush Kumar Dubey. He has done so well at the moment. There are 10 NCOE running in the current setup, which is international setup for all the current players coming in and getting all accreditation running in India under those huge academies coming under the banner of Sports Authority of India. There are a total of 11 Khelo India accredited centers running across in India. And majorly thanks to the efforts of Mr. Piyush Kumar Dubey, who is the High Performance Director of Sports Authority of India and Khelo India. And
the process, how it goes. It's been all in major competitions across nationals, Khelo India games, Khelo India leagues, university games. So the whole process gets very much imbibed into the culture. That's where you find the cream of the players coming in. So for both the dangers, be it for the boys or the girls, as you look at how it has actually come up. And then you have the other programs like the talent identification and development committee, where all the programs comes in, all the best of the brains from sports authority that's peers into it to get it. We'll get more on that. Before that, Chhattisgarh gets the injection done. Where is the stop? Where is the drag coming in? Yep, it has gone so well done, I would say, Madhya Pradesh. And those are the management from Chhattisgarh. They are little curious to understand that why it didn't get the goal. Coach is Ahmed Anish, team manager Miss Sanjana Sahu. From the left to the right of a picture, that's Miss Sanjana Sahu. Back on the right of her is Anish Ahmed. So both the games are actually a little more curious to understand the frustration behind. You can understand because it's 1-1 locked at quarter number 3 with 10.5 minutes remaining by the clock. And this is the quarter final. This is quarter number 3, quarter final number 2. It's a ticket for the semi-finals of this 15 Hockey India Junior Women National Championship 2025. In the commentary panel, this is Mayur Barua. I'll be there. And for the fourth quarter, it will be Mr. Shami Malam. And for the Rex 2 matches, it will be also Mr. Vikas Kumar joining me for Jharkhand versus Punjab, the third quarter final. And the last quarter final of the day, Maharashtra versus Uttar Pradesh. And Uttar means answer, almost getting answer. That was from Madhya Pradesh. Can they get back-to-back goals? They've got one in the dying seconds of quarter number 1. No goals in quarter number 2. And now this is quarter number 3. Now in the single digits, the minutes getting counted. And you can feel you can feel the dying out of the soul sometimes also because it's hot and humid. It's not the usual there. That Sujata Giant. Just getting it very close. Sujata. She's also been a very good performer. Not among the goal scorers. If I have to again repeat, Palak Gupta, the captain, no goals. Krishna Sharma, 2 goals, including a penalty corner and a field goal. And then Kajal has 3 goals, including a penalty stroke, a penalty corner, and a field goal. And Snehal Patel, 2 goals, including a penalty corner and a field goal. Ayushi Patel and Anu has a goal each. More on that very soon, but this is really going in a manner where you really need to feel where the driftness is there, where the girls are trying to play in a more comfort zone. And for Madhya Pradesh, it was Huda Khan who scored in the 15th minute, jersey number 5, via penalty corner. So both the goals have come via penalty corner. First from Chhattisgarh, from the blade of Yashoda for Chhattisgarh. That was in the 2nd minute of the first quarter. Then in the same quarter, as the minutes were about to finish, in the 15th minute, from the blade of Huda Khan. Now, can this blade change? The blade has not changed. It's the blade, and it's the stick of Chhattisgarh who comes in the way. Again, agonizingly very close, to be honest. And that's the reason why when you play in the league phases, that's the difference. That's the visible difference. You might be having 9 goals for yourself, and now the first goal conceded by Madhya Pradesh, but come the quarterfinals, an important ticket to be taken, it can be very, very different. That's the picture here at the moment. 1-1. Both the teams trying to squeeze the last till the moment as 7.5 minutes remain in the third quarter. They know they can see in the huge LED screens the time just quickly going by like quicksand. That will only add to the pressure on the shoulders. But let them play their original game, or else they'll be bogged down very easily. Still in a junior category, different age group forms this. So let them reform themselves. Let them play like a cool as a cucumber. Never easy. Always easier said than done, for sure.
But again, when you just get it done, it can be very important. It just feel it sure. So let's just pull it back for, we'll get more on that. And it's never easy, isn't it, when you have the top cluster fighting it against. When you are here, you really know all the teams, like we have actually qualified with the top teams, and the ones they have like Uttar Pradesh, Maharashtra, Punjab, Jharkhand. Jharkhand has really given it a go, 7-1-2-0. And so the top 8 teams who just gets qualified are not a pushover, and that's why the brand of hockey is always tough and it's rough, and it will squeeze the last bit of calorie from you. And that's Krishna Sharma, 2 goals under her belt. Will definitely be trying to up the statistics on up her sleeve. So for teams like Orissa, Madhya Pradesh, Haryana, Jharkhand, as I've mentioned, Maharashtra, Karnataka, Punjab, they all form the cream of those states, isn't it? When they are battling it out, and they'll be vying for the top honors, of course. So again, a major thanks to selector from Hockey India, Ms. Asunta Lakra, also been a huge backbone. Asunta Lakra, we did hear about Mr. Piyush Kumar Dubey. He hails from Uttar Pradesh, and his team is going to play the last match today versus Maharashtra. So, but he's there at the helm of the state of the affairs, isn't it, at Sports Authority of India as the performance director, as I've mentioned. So huge kudos also goes to the backbone, which forms of getting all those players to different academies, different programs. The incentives are there. That will only get it up and running, get it going. Never easy. Chhattisgarh now from the right flank. Tomahawk, some power. That is, it did get it agonizingly close. Again, Yashoda. And again, the coach Ahmad Anish will beat his lungs out. He knows, as you can see, his players up close and personal. Let's Sheetal Yadav. Just 4.5 seconds remaining. We'll have to just bite it out. Have to put it really through. As I mentioned about Ms. Asunta Lakra, this is also give a push on the dignitaries who were here to see off the program on the opening day, and they were also there, the management in Chennai, where Punjab emerged victorious in the sub-junior men's category yesterday. A huge thank you to also the president of Hockey India, Mr. Dilip Kumar Tirki, and also to Mr. Bholanath Singh, the Secretary General of Hockey India, who have already been a formation of the whole Hockey India committee set up as we enter a stage and a phase of 100 years of glorified chapters of Hockey India. So thank you again to everyone, all stakeholders, and also to our office bearers, including the names that I've said, Mr. Dilip Kumar Tirki, President of Hockey India, and also to Mr. Bholanath Singh, the Secretary General of Hockey India. They have been absolutely outstanding. They have put the best foot forward, and you can see them going across every places, being there, very respectful. I also remember meeting Mr. Bholanath Singh ji. He was there when I was at the national games. I was actually doing commentary with my co-commentators at wrestling. It was a multi-structure facility. Mr. Bholanath Singh ji, he came from the hockey stadium, and he walked up to us, and he was exchanging greetings. It was such a nice way to interact. And then I met him in Ranchi also, Mr. Bholanath Singh ji. So what a nice personality, isn't it? And he smiled, the way he answered. He's such a soft-spoken personality. But I would love to meet Mr. Dilip Kumar Tirki also, because what a great man he has been for Indian hockey, isn't it? As a player, as an administrator now, being there at the helm of all the affairs has been seriously very good. So huge kudos to the Sports Authority of India, and also to the all important office bearer members of Hockey India. But I'm sure
we will be seeing this platform even grow more and more as more girls and boys get attracted to the sport of hockey, and it will only channelize and funnel the next growth of Indian hockey chapter across as it keeps on mushrooming, and India is really seen as a hotbed of hockey players across globally, and not only in India, globally, and a sport which is very close to our heart. I'm sure the different people on and off the field doing every day, trying to bring the hockey as close, as unbeatable as possible. And I'm sure at the hand, all the people that I've mentioned and other people also working in different setup. At the moment, the setup is needs to be from these girls at the moment locked at 1-1 with less than 2 minutes remaining. It is again a goalless quarter at the moment. Remember, both the goals came in the first quarter. First in the second minute from the blade of Yashoda from Chhattisgarh, and then in the 15th minute with 27 seconds remaining by the clock from the blade of Huda Khan from Hockey Madhya Pradesh. So let's see how it goes on from here, because we are now counting on seconds for quarter number 3. It will be there. Those faces will get bumped into a huge ball of fire. The players will only do good without not looking towards the coaches, only concentrating and channelizing their energy not at the faces but also on the players. I think our cameraman will also do a whole world of justice by magnifying from there to the playing arena, because we want to see the girls to perform, isn't it? 22 seconds remaining. Do we see a goal coming here? Right from the center. Ball going past Chhattisgarh. Do they get it against Madhya Pradesh squeezing out? The moment is getting stolen. The clock is running faster than the ball on this AstroTurf. Dribbles, and it will be the sounding of the hooter. So next 2 minutes is something that really they need to just rinse out the equation in their mind. The stats are now heavily just on 1-1. You can see there, Krishna Sharma is trying to just tell it to our points that what could have been better. But the next chapter in quarter number 4 is something which will be very, very important. Let's see if the stats goes flipped up from 1 to 2, or does it remain the same? Do we need a penalty shootout, or we don't need, because we need a winner from here on? It's going to be a high octane hockey again in the last quarter, so you don't go anywhere, because you'll have to hear the lively and the flowing commentary of one and only our senior most commentator, Mr. Shami Malam. Welcome, sir. शुक्रिया मयूर। तो स्थिति यहाँ पर मध्य प्रदेश एक, छत्तीसगढ़ ने जरूर यहाँ पर अपनी यात्रा शुरू की थी। दूसरा मिनट में गोल डाला था यशोदा ने, लेकिन उसके बाद शानदार वापसी किया। यहाँ पर पहले क्वार्टर के आखिरी दूसरा सेकंड में खत्म होने वाला था, 2 सेकंड उसके पहले मध्य प्रदेश ने गोल डालकर बराबरी पे आके यहाँ पर मामला खड़ा कर दिया। यह है छत्तीसगढ़ हॉकी टीम के कोच अनीश अहमद इस वक्त अपने खिलाड़ियों को समझाते हुए इस तरह से नीति बनेगी। और यह है मध्य प्रदेश का बेंच, इस वक्त आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के कोच सरोज सिंह राजपूत सफेद यहाँ पर टी शर्ट पहनी हुई है, टोपी है, और ये समझाते हुए मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को क्या करना है चौथा क्वार्टर में। तो चौथे क्वार्टर में क्या रणनीति रहेगी ये देखने वाली बात रहेगी। कितना यहाँ पर छत्तीसगढ़ की टीम मुकाबला कर पाती है मध्य प्रदेश जैसे मजबूत टीम का, और मध्य प्रदेश की टीम क्या आक्रमण कर पाएगी, क्या नीति रहेगी, इसके लिए चलिए चलते हैं खूबसूरत स्टेडियम काकीनाडा में लिए चलता हूं आपको। और इस चौथे क्वार्टर में छत्तीसगढ़ का क्या रणनीति रहेगी, मध्य प्रदेश की टीम कितना आक्रमण की धार को तेज कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए चलते हैं हॉकी के मैदान में। तो स्थिति यहां पर अपने पक्ष में करने में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की टीम, दोनों टीमों ने आखिरी समय तक तीसरा क्वार्टर तक पसीना बहाया, लेकिन बात बन नहीं पाई। स्थिति 1-1। यहाँ पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल अपने क्षेत्र में, यहाँ पर रौनक परमार के पास है बॉल। रौनक परमार सामने है, यहाँ पर शिवानी शर्मा नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर। ये खेल के अंपायर हैं, ये हरियाणा से आती हैं, बहुत तेज तर्रार अंपायर हैं। अपने क्षेत्र में खेलती हुई
मध्य रेखा के पास बोलते हुए इस वक्त मध्य प्रदेश के खिलाड़ी पहुंचते हुए बॉल को क्रॉस करते हुए मध्य रेखा को 23 मीटर की रेखा के पास पहुंच गई। इस वक्त हुदा खान पहुंची हुई है। अभी हुदा खान के पास बॉल इंप्लीमेंट हुआ। फिर हिट यहाँ पर छत्तीसगढ़ को राइट एंगल में बॉल को यहाँ पर बहुत तेज हिट लगाई गई, गेंद गई बाहर टच लाइन का। स्थिति 1-1। यहाँ पर रौनक परमार के पास बॉल है। रौनक परमार मध्य प्रदेश बॉल लेके आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन अच्छा वहां पर बेहतरीन डिफ्लेक्शन छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी के द्वारा बॉल को बढ़ा दिया। सीधा पास लेफ्ट फ्लैंक से बॉल लेके निकलने की कोशिश। जसोदा जिन्होंने दूसरा मिनट में जिन्होंने गोल किया था छत्तीसगढ़ के लिए और एक हलचल मचा के रख दिया था यहाँ पर मध्य प्रदेश के खेमे में। बॉल को निकालने की कोशिश, गेंद चली है इस वक्त मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल। पलक गुप्ता बॉल को संभाल के रखी है यहाँ पर अपने क्षेत्र के लिए, बॉल को भेज दिया है वहां पर। अच्छा पास पलक गुप्ता, लेकिन गेंद से छिन गई। सफलता मिली है मधुसीधर को। मधुसीधर बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं। छत्तीसगढ़ का बॉल को बढ़ा दिया है। एक नपतुला पड़ा पास चेतना रानी के लिए, लेकिन चेतना रानी इस बार स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचने की कोशिश, खेल होता हुआ और ये टॉम हॉक यहाँ पर बहुत बेहतरीन टॉम हॉक लगाती हुई अभी भी मौका है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लिए। और यहाँ पर पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा उससे पहले शिवानी शर्मा का। तो यहाँ पर पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई चौथा क्वार्टर का लगभग तीसरा मिनट। चौथा क्वार्टर का यहाँ पर। और यहाँ पर ये कोच है अनीश अहमद अपने खिलाड़ियों को दिशा निर्देश देते हुए, साथ में उनकी नजर आ रही है संजना साहू। इंजेक्शन की तैयारी यहाँ पर छत्तीसगढ़ की तरफ से रितिका अहिरवार इस वक्त पहुंची हुई है इंजेक्ट के लिए। रितिका अहिरवार यहाँ पर ये है शिवानी शर्मा। रितिका ने इंजेक्ट किया, बॉल को छोड़ दिया है अपने ड्रैग के लिए साथी खिलाड़ी को। और यहाँ पर रिवर्स और ये गोल, बहुत बढ़िया बेहतरीन रिवर्स फ्लिक के द्वारा गोल किया। यहाँ पर छत्तीसगढ़ ने दूसरा गोल किया। और स्थिति क्या बनी, पलक झपकते ही ऐसा लगा कि गोल है, लेकिन स्कोरिंग का ग्राफ अभी भी 1-1 है। और ये हैं इस वक्त मध्य प्रदेश के राकेश गढ़वाल नजर आ रहे थे। और इसको फिर दिखलाया गया। तो छत्तीसगढ़ बहुत तेज आक्रमण कर रही है इस वक्त। शायद गोल नहीं करार दिया गया, तो लगा इस तरह से लगा कि बिल्कुल यहाँ पर रिवर्स फ्लिक है, गेंद गोल पोस्ट के अंदर चली गई है। स्थिति 1-1। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल, शीतल यादव के पास है बॉल। शीतल यादव बॉल लेके निकलने की कोशिश में सफलता मिली। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी, लंबा हिट यहाँ पर अन्नू के द्वारा। बिल्कुल पलक झपकते ही है छत्तीसगढ़ ने जो आक्रमण किया था, रिवर्स फ्लिक किया था, ऐसा प्रतीत हुआ था कि गेंद गोल पोस्ट के अंदर गई, लेकिन स्थिति अभी भी 1-1। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी के पास बॉल, मध्य रेखा के पास, इसको ऊंची उड़ती हुई गेंद, एरियल पास बढ़ाने की कोशिश, बॉल को बढ़ा दिया है साथी खिलाड़ी शीतल यादव के लिए। फिर हिट मिलता हुआ अभी भी शीतल यादव के पास बॉल, सीधा पास अपने क्षेत्र में खेलती हुई इस वक्त मध्य प्रदेश की टीम। लंबा पास राइट फ्लैंक से अटैक करती हुई इस वक्त एक खिलाड़ी को डील करती हुई दूसरे खिलाड़ी को डील करने की कोशिश। गेंद इस वक्त है हुदा खान के पास, ये बहुत तेज तर्रार खिलाड़ी हैं हुदा खान। बॉल को निकालने की कोशिश, लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट वहां पर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी। बाएं फ्लैंक से एक बार फिर अटैक करती हुई छत्तीसगढ़ की टीम, बहुत तेज अटैक करती है छत्तीसगढ़ की टीम, लेकिन बढ़िया इंटरसेप्ट यहाँ पर है मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के द्वारा। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, छत्तीसगढ़ खिलाड़ी मैदान से इस वक्त बाहर बैठे हुए।
तो यहाँ गेंद गई बाहर। इस वक्त गोल लाइन का स्थिति 1-1, बराबरी पर खेल चलता हुआ। बहुत पलक झपते ही गेंद कर यहाँ पर आक्रमण करती है मध्य प्रदेश की टीम, तो काउंटर अटैक करती है छत्तीसगढ़ की टीम। अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। आखिरी क्वार्टर का खेल, चौथा क्वार्टर का खेल चल रहा है। अगर खेल बराबरी पर छूटा तो फिर खेल चला जाएगा पेनल्टी शूटआउट में। स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर तो 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो 1 अगस्त से शुरू हुआ था, यहाँ पर मुकाबले का आज 9वां दिन और 9वें दिन का यहाँ पर दूसरा क्वार्टर फाइनल चलता हुआ। लंबा हिट यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर है, लेकिन बहुत बॉल को खतरे के बाहर से निकाल दिया वहां पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ने। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल 5 मिनट के रेकॉर्ड क्रॉस करते हुए लंबा हिट है, बीच में से बढ़िया इंटरसेप्ट यहाँ पर नेहा कुमारी के द्वारा। छत्तीसगढ़ की नेहा कुमारी ने पीछे सरका दिया है। नपतुला पास गेंद चली इस वक्त दामिनी खुसरो के पास। दामिनी खुसरो हिट लगाई, लेकिन वहां पर बेहतरीन गलत पास बैठी। पास चाहिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी जयंत सुजाता के पास बॉल। जयंत सुजाता जैसी नंबर 11 बॉल लेके आगे बढ़ती हुई, एक खिलाड़ी इसको ड्रिबल करती हुई जयंत सुजाता लेफ्ट फ्लैंक में बॉल को भेज दिया है कृष्णा शर्मा के लिए। कृष्णा शर्मा अभी तक 2 गोल दाग चुकी है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर खेल होता हुआ यहाँ पर छत्तीसगढ़ के स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर, लेकिन उतना ही चतुर वहां पर छत्तीसगढ़ के रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी बॉल को बाहर किया। मध्य रेखा के पास स्थिति 1-1, गेंद यहाँ पर है। इस बीच यहाँ पर सैयद सानिया के पास बॉल है। सैयद सानिया मध्य प्रदेश बॉल को बढ़ाया था, लेकिन गेंद एक बार फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी के पास बॉल गलत पास दे बैठी। बॉल को सफलता में प्राप्त किया है यहाँ पर कलेक्ट करने में मध्य प्रदेश की टीम ने बॉल को भेज दिया था वहां पर रौनक प्रहार के लिए। रौनक प्रहार ने दाएं फ्लैंक में भेजा है। राइट फ्लैंक से अटैक करती हुई इस वक्त मध्य प्रदेश की टीम बॉल लेकर बढ़ती हुई। पलक गुप्ता इस वक्त, पलक गुप्ता एमपी के खिलाड़ी, लेकिन गेंद से छिन गई। गेंद इस वक्त चली आई है यहाँ पर चेतना रानी के पास। चेतना रानी दास छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी। कभी छत्तीसगढ़ की टीम अटैक होती है, बॉल को कब्जा बनाती है, तो दूसरी तरफ कभी मध्य प्रदेश के खिलाड़ी बॉल के ऊपर झपट पड़ते हैं। ये थे सरोज सिंह राजपूत नजर आ रहे थे अभी, जो ये है मध्य प्रदेश के कोच नजर आ रही थी। इस बीच मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल, समीक्षा यादव के पास बॉल राइट फ्लैंक में बहुत चतुराई के साथ बॉल को निकाल दिया यहाँ पर साथी खिलाड़ी के लिए। इस बीच यहाँ पर देख सकते हैं आप सरोज सिंह राजपूत कोच हैं एक तरफ, दूसरी तरफ से उनके राकेश गढ़वाल नजर आ रहे हैं उनके टीम मैनेजर। एक बार फिर बाएं फ्लैंक से अटैक करती हुई जसोदा के पास बॉल। जसोदा जिन्होंने दूसरा मिनट में गोल किया था छत्तीसगढ़ के लिए। गेंद मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के पास। कभी गेंद बिल्कुल नाच रही है, गेंद फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होता है गेंद का, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल राइट फ्लैंक से अटैक करने की चाहती है मध्य प्रदेश की टीम। लंबा हिट, यहाँ पर कोई फायदा नहीं। स्थिति 1-1। यह अनीश अहमद कोच, छत्तीसगढ़ के कोच हैं, युवा कोच हैं, बहुत ही चिंतित नजर आ रहे हैं अनीश अहमद। अपने खिलाड़ियों को दिशा निर्देश देते हुए काफी लाउड वॉइस में यहाँ पर अनीश अहमद। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी के पास बॉल, काजल के पास है बॉल। सॉरी, यहाँ पर गेंद इस वक्त चली गई। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ने बॉल को भेज दिया है। बहुत अच्छा नबातुल्ला पास मधुसीधर के लिए। मधुसीधर एक अनुभवी खिलाड़ी है, वहां पर बॉल को भेजा था, सेंटर किया था स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर। कोई खिलाड़ी वहां पर छत्तीसगढ़ के बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए। गेंद बहुत तेज गति से निकल गई टच लाइन का बाहर। स्थिति 1-1। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप खेल बहुत ही रोमांचक स्थिति में चल रहा है। पड़ रहा दोनों टीमों का इस वक्त बराबरी पर झूल रहा है, लटक रहा है। स्कोरिंग का ग्राफ 1-1। पहले गोल किया छत्तीसगढ़ ने, उसके बाद वापसी किया मध्य प्रदेश की टीम। मध्य प्रदेश के अन्नू के पास बॉल, एक खिलाड़ी को ड्रिबल करते हुए बहुत बढ़िया पास निकाला है, लेफ्ट हल्का फ्लिक करके। गेंद इस वक्त चली आई है राजा रानी के पास। मध्य प्रदेश से बहुत हिट किया था अब लेफ्ट फ्लैंक में यहाँ पर कृष्णा शर्मा के लिए।
लेकिन कृष्णा शर्मा बॉल को ले नहीं पाई। फीट मिलता हुआ मध्य प्रदेश को स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचने की कोशिश, लेकिन पीछे में से बहुत चतुराई के साथ बॉल को निकाल दिया। गेंद चली है छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी चेतना रानी के पास। चेतना रानी मध्य रेखा को क्रॉस करते हुए बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर 23 मीटर रेखा के पास पहुंच गई। यहाँ पर मध्य प्रदेश से 23 मीटर रेखा के पास डॉक्टर लाइन के पास पहुंच गई है। स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर घुसने के लिए चाह रही है चेतना रानी। इंक्रीमेंट फ्री हुआ मिला। चेतना रानी ने हिट किया लगाई है वहां पर बाय फ्लैंग में एक तेज तर्रार हिट, हवा में उड़ती हुई गेंद। यहाँ पर बॉल मिलता हुआ जसोदा जिन्होंने पहला गोल किया था छत्तीसगढ़ के लिए खाता खोला था, लेकिन गेंद बहुत चतुराई के साथ बॉल को अपने क्षेत्र में संभाल दिया है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ने राइट फ्लैंक से बॉल लेकर आगे बढ़ने के लिए चाह रही है। स्थिति अभी भी 1-1, छत्तीसगढ़ 1 मध्य प्रदेश 1। समय बहुत तेजी के साथ निकल रहा है क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। वक्त की नजाकत को आपको समझना पड़ेगा। जो टीम आखिरी समय तक दमखम को कायम रखेगी, सफलता निश्चित रूप से उसे ही मिलेगी। डाइफले में पास मध्य प्रदेश के खिलाड़ी बॉल लेके एडवांस होते हुए इस वक्त जयंत सुजाता गिर पड़ी। वहां पे इंफेमेंट हुआ, फ्री हिट मिला मध्य प्रदेश को। जयंत सुजाता अभी भी हिट लिया। जयंत सुजाता ने बाएं फ्लैंग में बीच में से अच्छा इंटरसेप्ट। गेंद एक बार यहाँ पर समीक्षा यादव के पास। मध्य प्रदेश लेफ्ट हैंड में बनाने की कोशिश, लेकिन गेंद एक बार चली आई चेतना रानी के पास। छत्तीसगढ़ चेतना रानी 22 मीटर रेखा के पास पहुंचते हुए वहां पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर अच्छा पास, हमला बनता हुआ, बेहतरीन हमला बनता हुआ और यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ, फ्री हिट मिला मध्य प्रदेश को। हमला जो बना वो टला। फिलहाल कभी अटैक मध्य प्रदेश करती है तो काउंटर अटैक छत्तीसगढ़ की टीम करती है। स्थिति अभी भी 1-1। सितारों से भरी टीम है छत्तीसगढ़ की टीम, तो एक से एक धुरंधर टीम है खेल रही है यहाँ पर लड़कियां मध्य प्रदेश की तरफ से। दामनी, आप हम समीक्षा यादव की बात करें, चाहे हुदा खान की बात करें, पलक गुप्ता की बात करें, ये काफी अच्छी खिलाड़ी है मध्य प्रदेश का। यहाँ पर सेंटर करने की कोशिश और यहाँ पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा। शिवानी गुप्ता इस वक्त आगे बढ़ती, इसे शिवानी शर्मा जो है वो पेनाल्टी कॉर्नर अवार्ड कर दिया है। शिवानी शर्मा मैं बता दूं बहुत ही वरिष्ठ अंपायर हैं। फिलहाल यहाँ पर मौका है छत्तीसगढ़ के लिए पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई छत्तीसगढ़ की टीम, जबकि एक खिलाड़ी यहाँ पर तो चोटिल हो गई है मध्य प्रदेश की। खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ। पंद्रहवीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप काकीनाडा में जो चल रहा है, यहाँ पर दूसरा मुकाबला चल रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच। समय बहुत कम बचा है, दूसरे क्वार्टर के हम चौथे क्वार्टर में चल रहे हैं इस वक्त। दूसरा क्वार्टर फाइनल का चौथा क्वार्टर का खेल होता हुआ। एक मध्य प्रदेश के खिलाड़ी इस वक्त चोटिल होकर गिरी हुई हैं। स्ट्रेचर लाया गया है, मेडिकल अटेंशन दिया जा रहा है। और स्ट्रेचर के द्वारा मैदान से बाहर ले जाया जा रहा है। इस वक्त इस खिलाड़ी को चोटिल हो गए, एक खिलाड़ी मध्य प्रदेश का। तो स्थिति 1-1, छत्तीसगढ़ 1 मध्य प्रदेश 1। परिस्थितियों से बिल्कुल जूझ रही है यहाँ पर दोनों टीमें। स्थिति 1-1, मध्य प्रदेश 1 और छत्तीसगढ़ 1 यहाँ पर। और यहाँ मौका, लेकिन यहाँ लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा। तो स्थिति यहाँ पर
छत्तीसगढ़ 1 मध्य प्रदेश। लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा यहाँ पर। बहुत तेज हॉकी चला अभी तक इन दोनों टीमों के बीच। परिस्थिति को कोई भी टीम इस वक्त अपने पक्ष में नहीं करके रखी है। एक एक की स्थिति, मध्य प्रदेश 1 छत्तीसगढ़ 1। कभी अटैक करती है मध्य प्रदेश की टीम तो काउंटर अटैक करती है छत्तीसगढ़ की टीम। फिलहाल 1 मिनट 50 सेकंड का समय बचा हुआ है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ते हैं। इस वक्त आखिरी मिनट में एक बहुत तेज हमला पनपता हुआ मध्य प्रदेश के खिलाड़ी कृष्णा शर्मा इस वक्त बॉल लेकर आगे बढ़ रही है। स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचते हुए यहाँ पर सेंटर करने की कोशिश, लेकिन गलत मार बैठे। यहाँ पर बैठी और यहाँ पर गेंद चली गई है वहां पर मनीषा पटेल के पास। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी मनीषा पटेल ने बॉल को बढ़ा दिया चेतना रानी के पास। चेतना रानी मध्यरेखा से बॉल को एक बार फिर मनीषा पटेल को बढ़ा दिया। मनीषा पटेल बॉल लेके बहुत तेज गति से आगे बढ़ती हुई मनीषा ने बॉल को भेज दिया यशोदा के लिए। लंबा हिट और गेंद चली यहाँ मधुसीधर के पास। मधुसीधर ने हिट किया था लेकिन कोई खिलाड़ी बॉल के कलेक्ट नहीं कर पाई, गेंद गई बाहर। और स्थिति बहुत ही इस वक्त नाजुक है दोनों के लिए। 1 मिनट का समय मात्र बचा हुआ है। यह है गढ़वाल, राकेश गढ़वाल है ये मध्य प्रदेश के टीम मैनेजर। सरोज सिंह राजपूत यहाँ पर ये कोच नजर आ रहे हैं। तो ये राकेश गढ़वाल, जबकि सामने है उनके सरोज सिंह राजपूत। इस बीच बॉल को यहाँ पर मनीषा पटेल ने संभाल लिया है, बॉल को बढ़ा दिया है कि लंबा पास राइट विंगर के लिए। गेंद गई बाहर बहुत तेजी के साथ। समय निकल रहा है 30 मिनट, मात्र आधे मिनट का समय बचा हुआ है। परिस्थिति से यहाँ पर जूझ रही है दोनों टीमें। यहाँ पर गेंद इस वक्त है जयंत सुजाता के पास। जयंत सुजाता ने बॉल को भेजा, आयुषी पटेल के पास बॉल है। आयुषी पटेल ने बॉल को भेजा अपने साथी खिलाड़ी के लिए, हुदा खान के लिए। हुदा खान जिन्होंने 15वां मिनट में बाजी पलटी थी और गोल किया था मध्य प्रदेश के लिए। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर एक आखिरी मौका मिलता हुआ यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लिए, और यहाँ इससे सफल नहीं हो पाई। यहाँ पर टॉम हॉक लगाने के लिए कोशिश कर रही थी और समय खत्म हुआ यहाँ पर। और वक्त की नजाकत बतला रही है कि चौथा क्वार्टर का खेल खत्म हो गया। तो स्थिति यहाँ पर छत्तीसगढ़ 1 मध्य प्रदेश 1। चौथा क्वार्टर का समय खत्म हो गया। निर्धारित समय का खेल खत्म हुआ। अनीश अहमद इस वक्त अपने छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों से मिल रहे हैं। ये हैं शिवानी शर्मा बाहर आ रही थी खेल के अंपायर, और अब खेल चला गया है पेनाल्टी शूट आउट में। यह है छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी मैदान से बाहर आती हुई, सफेद और काली रंग की जर्सी। तो स्थिति यहाँ पर तो इस तरह से खेल बराबरी पर जाके निर्धारित समय का खेल खत्म हुआ। समय खत्म हुआ, निर्धारित समय। और ये आप देख रहे हैं अनीश अहमद। अब यहाँ पर नीति बनेगी शूट आउट का। कौन सी टीम शूट आउट में क्या कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चलेंगे हम कुछ ही देर में शूट आउट की तरफ चलेंगे, और अब यहाँ गोलकीपर की अग्नि परीक्षा होगी। पंद्रहवीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में चला, दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला बराबरी पर जाके छूटा। पहले गोल किया मध्य प्रदेश की तरफ से गोल हुआ। खेल के दूसरा मिनट में यशोदा ने गोल किया, जबकि
वहां पर उसके बाद वापसी की, हुदा खान ने यह वापसी की। और ये खेल का लगभग 15वां मिनट, खेल पहला क्वार्टर का खेल खत्म होने के लिए जा रहा था, उसी समय गोल किया गया। हुदा खान ने मध्य प्रदेश वापसी की, तो इस तरह से 1-1। और अब चलते हैं यहाँ पर पेनाल्टी शूट आउट की तरफ चलेंगे। ये है अनीश अहमद, सामने है गोलकीपर छत्तीसगढ़ के ज्योति रानी, और इधर एक तरफ है अपूर्वा बुंदेल मध्य प्रदेश की गोलकीपर। गोलकीपर की अग्नि परीक्षा होगी। अनीश अहमद अपने खिलाड़ियों के साथ रणनीति बनाते हुए पेनाल्टी शूटआउट को किस तरह से गोल में तब्दील किया जाए। यह छत्तीसगढ़ की टीम, साथ में है कोच अनीश अहमद। Decide the winner of the second quarter-final match will be through penalty shootout as per the FIH rules. Both the teams will get 5 opportunities alternatively. Whoever scores more number of goals out of 5, they'll be declared as winners of the second quarter final. पहला पेनाल्टी शूट इस वक्त लेने को तैयार छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी, बॉल लेके आगे बढ़ती हुई इस वक्त रूखामणि कप्तान, और यहाँ पेनाल्टी स्टॉक दे दिया गया। Opportunity, Chhattisgarh hockey. Goalkeeper blocked. Penalty stroke in favor of Chhattisgarh hockey. पेनाल्टी स्टॉक इस वक्त, और ये गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। पेनाल्टी स्टॉक के द्वारा छत्तीसगढ़ के द्वारा पहला गोल डाला गया। First opportunity to hockey Madhya Pradesh. और यहाँ पर पहला गोल हुआ छत्तीसगढ़ की तरफ से। और अब यहाँ पर एमपी की तरफ से तैयार, पहला पेनल्टी शूट काट लेते हुए बढ़ते हुए यहाँ पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी पलक गुप्ता, और समय गया 8 सेकंड का समय रहता है। शिवानी शर्मा ने मदद मांगी है वीडियो अंपायर से। देखिए किस तरह से यहाँ पर पलक गुप्ता बॉल लेके आगे बढ़ी थी,
सामने थी गोलकीपर वहां पर, छत्तीसगढ़ की गोलकीपर, और यहाँ पर व्यवधान हुआ। आगे बढ़ी, सामने थी गोलकीपर वहां पर। फिलहाल छत्तीसगढ़ 1 है और मध्य प्रदेश क्या कर पाती है। और यहाँ ये मौका हाथ से निकला। One opportunity. Second attacking opportunity for Chhattisgarh hockey. दूसरा छत्तीसगढ़ की तरफ से बॉल लेके पेनाल्टी शूटआउट का स्ट्राइक, चेतना रानी दास छत्तीसगढ़ की तैयार हो रही हैं। चेतना रानी दास बॉल लेकर आगे बढ़ती हुई, सामने गोलकीपर, जगह बनाने की कोशिश, और यहाँ ये मौका हाथ से निकला। और चेतना रानी दास समय पे नहीं आगे वहां पे बढ़ पाई। और अब यहाँ एमपी की तरफ से स्ट्राइकर तैयार, बॉल लेके आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की तरफ से कृष्णा शर्मा, और ये मौका, समय, वक्त की नजाकत, ये भी बेकार गया हाथ से। तीसरा स्ट्राइकर जाएंगी, बढ़ेंगी छत्तीसगढ़ की तरफ से आगे। Third opportunity for Chhattisgarh. तीसरा स्ट्राइकर तैयार, इस वक्त छत्तीसगढ़ की तरफ से तैयार होती हुई, आगे बढ़ती हुई यहाँ पर रितिका यार बॉल लेकर आगे बढ़ती हुई, और यहाँ पर बॉल को निकालने की कोशिश, लेकिन मौका निकलता हुआ, ये भी गेंद मौका हाथ से निकला। और अब कोशिश यहां पर एमपी के द्वारा, तीसरा पेनल्टी शूटआउट एमपी के द्वारा। मध्य प्रदेश की तरफ से काजल इस वक्त आगे बढ़ रही हैं। काजल बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए, सामने है गोलकीपर छत्तीसगढ़, और ये खूबसूरत गोल, खूबसूरत गोल बनाया गया मध्य प्रदेश की तरफ से। गोलकीपर को चकमा दिया, ये हुआ गोल। और अब छत्तीसगढ़ की तरफ से पेनल्टी शूटआउट का अगला स्ट्राइकर, बॉल लेके आगे बढ़ती हुई छत्तीसगढ़ की तरफ से शीतल यादव बढ़ रही हैं, और यहां ये मौका हाथ से निकला। ये देखिए किस तरह से आगे बढ़ रही थी। शीतल यादव, जर्सी नंबर 11, सामने आए गोलकीपर, और हैं जैन सुजाता। और जैन सुजाता देखिए अभी तक बढ़ी, लेकिन समय निकला। ये हाथ से मौका हाथ से निकला। पेनाल्टी शूटआउट की अगली तैयारी छत्तीसगढ़ की तरफ से। छत्तीसगढ़ की तरफ से अगली पेनाल्टी शूटआउट लेने की तैयारी। बॉल यहां पर हुदा खान, सॉरी, यहां पर
यशोदा थी, बॉल लेकर आगे बढ़ी थी यशोदा, जिन्होंने दूसरा मिनट में गोल किया था छत्तीसगढ़ की तरफ से। ये भी बेकार गया परिस्थिति, यशोदा कामयाब नहीं हो पाई। और अब यहाँ पर तैयार एमपी की तरफ से। Hockey Madhya Pradesh will take attacking opportunity now. और अब यहाँ पर तैयार हो रही हैं हुदा खान, ये बहुत बेहतरीन स्ट्राइकर खिलाड़ी है एमपी का, मध्य प्रदेश की तरफ से हुदा खान। निगाहें गोल पोस्ट की लगी हुई है, बढ़ रही है हुदा खान, और ये गेंद गई बाहर, गोल पोस्ट से टकरा के बाहर निकल गई। Good try, Khan Huda of Hockey Madhya Pradesh, dodging the goalkeeper on her left side, but tried to put the ball into the goal, but just went outside the second post. अगला तैयारी, बॉल लेके आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की तरफ से यहाँ पर चेतना रानी दास, और ये मौका हाथ से निकला। चौधरी यहाँ पर काजल बॉल लेके आगे बढ़ रही थी, और अब यहाँ पर गोलकीपर स्थान देते हुए छत्तीसगढ़ की तैयारी पेनाल्टी शूटआउट लेने की। और बॉल लेके आगे बढ़ती हुई चंचल यादव, इस और यहाँ पर रूखामणि जो कप्तान है, और रूखामणि बॉल बढ़ के लेके बढ़ रही थी छत्तीसगढ़ की तरफ से, और यहाँ कामयाब नहीं हो पाई कप्तान। लेकिन यहाँ पर खेल के निर्णायक ने मदद मांगी है वीडियो अंपायर से। देखिए किस तरह से रूखामणि बॉल लेके आगे बढ़ी, कप्तान छत्तीसगढ़ स्ट्राइकिंग सर्किल को पार किया, जगह बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अच्छा ब्लॉकिंग वहां गोलकीपर के द्वारा, एमपी के गोलकीपर ने अच्छा बचाव किया, ये मौका हाथ से निकला। इस डिसीजन के लिए मदद मांगी है यहाँ पर शिवानी शर्मा ने मदद मांगी है वीडियो अंपायर से। पंद्रहवीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में चल रहा है, और यहाँ पेनाल्टी स्टॉक का इशारा, छत्तीसगढ़ के लिए मौका, पेनाल्टी स्टॉक का इशारा छत्तीसगढ़ के लिए। ये स्थिति यहां से खतरनाक मोड़ लेती हुई, रूखामणि तैयार यहां पर पेनाल्टी स्टॉक लेने के लिए। गोलकीपर की परीक्षा यहां पर अपूर्व बुंदेला की परीक्षा है, जो गोलकीपर हैं मध्य प्रदेश की। निगाहें गोल पोस्ट के निहारती हुई, धड़कनें बढ़ती हुई, गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर, और यहां पर इस तरह से छत्तीसगढ़ की टीम ने यहां पर बाजी मारी है, पराजित किया। मध्य प्रदेश को काफी खुश नजर आ रहे हैं इनके कोच अनीश अहमद के अंदर घूमते हुए, एक दूसरे को गले लगाते हुए, और यहाँ अनीश अहमद सारे खिलाड़ियों को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश पराजित हो गई यहाँ पर छत्तीसगढ़ से, मुकाबला बराबरी पर छूटा था, और एक के मुकाबले 2 गोल से 2-1 का यहाँ पर रहा फाइनल स्कोरिंग। और स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खुशी का माहौल है इस वक्त खेमे में, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के खेमे में। और अंततः पेनाल्टी स्टॉक को जो कप्तान है छत्तीसगढ़ के रूखामणि ने बेहतरीन गोल स्कोर कर दिया अपनी टीम के लिए,
और आज बचाव भी बढ़िया किया था यहाँ छत्तीसगढ़ के गोलकीपर ने। निराशा लगी मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश इस प्रतियोगिता से इस वक्त बाहर होती हुई नजर आ रही है, जबकि सेमीफाइनल में प्रवेश यहाँ पर छत्तीसगढ़ का। एक गोल की बराबरी के बाद पेनाल्टी शूटआउट जारी किया। पेनाल्टी शूटआउट का कानून में भी तो ये बताते हैं कि यहाँ पर स्थिति इस वक्त इसके बाद कानून जो आखिरी का रहा सडन वो दोनों टीम को एक 2-1 का रहा रिजल्ट। यहाँ स्कोरिंग का ग्राफ रहा 2-1 और छत्तीसगढ़ को यहाँ पे विजय मिली। छत्तीसगढ़ का यहाँ पर प्रवेश सेमीफाइनल में। मध्य प्रदेश को निराशा हाथ लगी। हालांकि मध्य प्रदेश की टीम अंतिम समय तक लड़ती रही इस हॉकी के मैदान में छत्तीसगढ़ के विरुद्ध, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। छत्तीसगढ़ का शानदार सेमीफाइनल में प्रवेश। और यहाँ पर ये विवरण देते हुए कि छत्तीसगढ़ की टीम बहुत बेहतरीन तरीके से एक कांटे की टक्कर में यहाँ पर पराजित कर दिया मध्य प्रदेश को 1 के मुकाबले 2 गोल से। मैं शमीम आलम अपने साथी कमेंटेटर यहाँ पर मयूर बरुआ और विकास कुमार के साथ आपको यहाँ पर लिए चलता हूँ हॉकी मीडिया यूट्यूब चैनल के ऊपर वापस लिए चलता हूँ। और ये बताते हुए कहीं जाइएगा नहीं, 1 बजे फिर मुलाकात होगी। यहाँ पर तीसरा क्वार्टर फाइनल का जो खेल होगा झारखंड और पंजाब के बीच होगा। एक रोमांचक मुकाबला होगा आपके सामने। तब तक के लिए मैं आपसे विदा होता हूं। नमस्कार, थैंक यू। Rani Das has been adjudged as a player of the match. Come on to the field to receive your player of the match. Sri Gormin Balaprasad, Managing Director, Sachdeva Printing Cluster, and also former Corporator of Municipal Corporation, Kakinada. Congratulations. Thank you, sir. Thank you for sparing your valuable time. बहुत अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में और प्लेयर ऑफ द अवार्ड आपने उसको हस्तांतर किया चेतना रानी दास को।
नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। इस समय इंडिया सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2025 डिवीजन ए के से बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला क्वार्टर फाइनल तीसरा। कमेंट्स बॉक्स में हूँ विकास कुमार, मेरे साथ हैं मयूर बरुआ जी, साथ में हमारे सीनियर कमेंटेटर शमीम आलम जी, पूरी अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ इस तीसरे क्वार्टर फाइनल में हम तहे दिल से बहुत वेलकम करते हैं। लीजिए, इस समय येलो जर्सी में झारखंड की टीम नजर आ रही है इस वक्त, रेड जर्सी में है पंजाब, येलो जर्सी में झारखंड है, जिन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं लीग स्टेज में और दोनों में जीत अर्जित करके आई है। जहां उन्होंने एक मुकाबले में कर्नाटक को 2-0 से हराया था, दूसरे मुकाबले में 7-1 से उन्होंने जीत अर्जित की थी, जहां पे बहुत ही शानदार छत्तीसगढ़ के खिलाफ। लीजिए जर्सी नंबर 10 शुरुआत की है इस समय स्वीटी डुंगडुंग ने। बहुत तेज तरार खिलाड़ी है स्वीटी डुंगडुंग, गजब के प्रदर्शन करती नजर आई है, क्योंकि ये बहुत ही शानदार तरीके से स्किलफुल खिलाड़ी के तौर पे अपनी पहचान रखती है। शुरुआत हो चुकी है, येलो जर्सी में है झारखंड, अच्छी बॉल पास खूबसूरती के साथ, वहां पे बॉल के साथ इस समय संदीप पूर्ति, बहुत ही अच्छी खिलाड़ी। वहीं रेड जर्सी में पंजाब की टीम एक जीत और एक हार के साथ पहुंची है, बहुत ही अच्छी टीम है पंजाब भी। लेकिन येलो जर्सी में जिस तरीके से शुरुआत की है इस समय संगीता कुमारी भी बहुत तेज तरार खिलाड़ी, इस बीच पास किया खूबसूरती के साथ इस समय मानीला बागे को स्ट्राइकिंग सर्कल में दाखिल हुई, बहुत ही शानदार प्रयास यहाँ पे, बहुत अच्छी कोशिश है। मैच के इनिशियल मिनट में ही एक अच्छा अटैक बिल्ड किया इस समय। अंपायर इस मुकाबले के अगर देखें मेरीना टी मैथ्यू और उनके साथ हैं बिमला बारवा, दोनों ही हॉकी इंडिया के अंपायर, और साथ ही साथ पूरी ऑफिशियल टीम है जो भूमिका अदा कर रहे टाइमिंग जज हैं इस समय मीनाकुरु रेड्डी, रिजर्व अंपायर हैं इस समय सीधी जाधव, और टेक्निकल ऑफिशियल्स की भूमिका में अंशिका डिसोजा, स्कोरिंग जज है अमृता सेन। यह हॉकी इंडिया की ऑफिशियल टीम। हॉकी इंडिया की तारीफ करनी होगी हमारे इस आयोजन में, जिस तरीके से सेक्रेटरी जनरल भोलानाथ सिंह सर, दिलीप तिर्की सर, लेजेंडरी दिलीप तिर्की सर, जिन्होंने हॉकी का एक बड़ा नाम जो भारत के लिए सबसे ज्यादा मुकाबले खेले हैं, शेखर जे मनोरंजन और साई का भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं इस समय पंजाब के हाथ में खेल होता हुआ खूबसूरती के साथ, बॉल कंट्रोल जर्सी नंबर 9 पंजाब ठीक तरीके से इस बार उतनी बढ़िया नहीं, जसनदीप कौर टीम की कैप्टन। पंजाब भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है। अब देख सकते हैं लेफ्ट लाइन से पंजाब का एक अटैक बिल्ड होता हुआ, शानदार तरीके से पंजाब के खिलाड़ी इस समय बॉल के साथ जर्सी नंबर 14 आक्रमण बिल्ड करने का प्रयास सुखप्रीत कौर का, स्ट्राइकिंग सर्कल के बिल्कुल मुहाने पर वहां पे बॉल को क्लियर किया। इस बीच बहुत ही तेज तर्रार हॉकी की झलक, एक एरियल बॉल के साथ अटैक बिल्ड करने का प्रयास यहाँ पे, बहुत ही शानदार ये मुकाबला इस बीच ही घटित होता हुआ, एक एरियल बॉल के साथ ये प्रयास होता हुआ इस समय आक्रमण बनाने की, शानदार ये मुकाबला इस बीच नजर आ रहा है। गजब का रोमांच इस समय, स्किलफुल हॉकी। शुरुआत से ही समय येलो जर्सी में झारखंड, इससे पहले पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज जीत अर्जित की। ये है बेंच इस वक्त झारखंड का, जहां पे अगर बात करें इनके कोच हैं सुधीर गोला, जो कि देख सकते हैं, और उनके साथ हैं टीम मैनेजर है विकास पंत। सुधीर गोला जो कि नेशनल गेम्स में भी टीम के कोच थे, और झारखंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था नेशनल गेम्स से जो पिछला हुआ था अगर बात करें, जहां शानदार अंदाज में टीम ने प्रदर्शन किया था हरिद्वार में नेशनल गेम्स में। फिलहाल देखना होगा वुमेन्स हॉकी में झारखंड एक बड़ा नाम है, पंजाब की भी लंबे समय से लेगेसी रही है, गुरजीत कौर से लेकर कई बड़े स्टार्स दिए हैं जो ओलंपिक्स तक पंजाब को रिप्रेजेंट की है। निगाह रखिएगा, एरियल बॉल हवा में, तेज तरार यहाँ पंजाब की तरफ से, जर्सी नंबर 4 मेघा बॉल के साथ डॉक्टर लाइन स्ट्राइकिंग सर्कल के नजदीक पहुंचने का प्रयास, मेघा के साथ मौजूद है इस समय नवनीत कौर, लेकिन उतनी ही शानदार झारखंड की डिफेंस मैन टू मैन मार्क करके, यह है वो इस समय खिलाड़ी के साथ कोच और स्टाफ, जहां सुधीर गोला और विकास पंत मौजूद है। फिलहाल बहुत ही खूबसूरती के साथ शानदार स्किल से नंबर 10 क्रॉस आया, खूबसूरत शानदार अंदाज में। इस बीच जर्सी नंबर 10 झारखंड के लिए यहाँ पे स्वीटी डुंगडुंग, ये वो खिलाड़ी हैं स्वीटी डुंगडुंग जिन्होंने 2 गोल किए थे बात करें छत्तीसगढ़ के खिलाफ, और बहुत ही शानदार खिलाड़ी के तौर पे अपनी पहचान रखती हैं।
श्रुति डुगडुग हो, रोशनी कुमारी हो, सरोज कुमारी हो, बेहतरीन प्लेयर्स इस टीम के। रजनी करकेटा और रोशनी एंड, इन खिलाड़ियों पर निगाहें रहेगी। फिलहाल जर्सी नंबर 16 रजनी करकेटा टीम की कैप्टन, बहुत तेज तर्रार खिलाड़ी। और ये है इस समय कोच मैनेजर, जहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड के खिलाफ भी बहुत ही रणनीति बनाकर आई है। और ये है झारखंड के कोच मैनेजर जहाँ नजर आ रहे हैं इस समय सुधीर गोला और विकास पंत। सुधीर गोला जी हाँ देख सकते हैं जो इनके कोच हैं। 15th हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप का आज क्वार्टर फाइनल का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच इस समय, और काफ़ी इंपॉर्टेंट। इनकी कोचिंग में कई बार टीम मेडल आ चुकी है जूनियर लेवल पे भी, और काफ़ी अच्छी बात करें स्ट्रैटेजी कार माने जाते हैं। फिलहाल देखना होगा इस बीच शुरुआत से ही झारखंड कई अच्छे अटैक्स और मूव्स बिल्ड किए हैं। मुकाबले में काफ़ी इंटरेस्टिंग बैटल नजर आने लगा है। जर्सी नंबर 8 बॉल के साथ पास किया साथी खिलाड़ी को, वहाँ पे जहाँ मौजूद है इस समय सैंडीपुर की, साथ में मनीला बागे, संगीता कुमारी मिडफील्ड में। बहुत अच्छा लिंक का प्ले, अच्छा तालमेल नजर आता हुआ। राइट फ्लैंक से अटैक बिल्ड करने का प्रयास इस समय सरोज कुमारी का। इस बार साथी खिलाड़ी को पास किया, झारखंड ने अपराजित होकर आए हैं क्वार्टर फाइनल में। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा थ्रू पास, बहुत शानदार यहाँ पे खूबसूरती के साथ ये प्रयास उनके द्वारा, लाजवाब कोशिश। स्ट्राइकिंग सर्कल में जरूर यहाँ पे एंटर की, लेकिन इस बार गोल पोस्ट की जो बात करें करीब नहीं पहुंच पाए, गोलकीपर को टेस्ट नहीं कर सकी। अंदर ये है इस समय। दूसरी तरफ पंजाब के कोच और मैनेजर रवि इंदर सिंह, अनुभवी कोच हैं ये, मैनेजर हैं पुष्पा रानी। रवि इंदर सिंह देख सकते हैं और पुष्पा रानी, उनके कोचिंग और मैनेजमेंट में ये टीम इस समय क्वार्टर फाइनल तक पहुंची है। पंजाब का जो सफर रहा है, 2 मुकाबले खेले, 1 जीत 1 हार के साथ एमपी के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा था 4-0 से। वहीं पंजाब ने छत्तीसगढ़ से मुकाबला काफी अच्छा खेल दिखाया था उसमें। वहीं पे झारखंड अपने दोनों मुकाबले कर्नाटक और छत्तीसगढ़ को हरा कर आई है। झारखंड की टीम काफी बढ़िया खेल दिखाकर आई है, अभी तक 9 गोल किए हैं ओवरऑल, और इनके खिलाफ सिर्फ 1 गोल अगेंस्ट इनके लगे हैं। SRMT का, कैनरा बैंक का, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हम बहुत थैंकफुल हैं। और हमारी पूरी कमेंट्री बॉक्स की टीम शानदार, अगर आप तक कवरेज है जो हमारी प्रोडक्शन टीम और कमेंट्री टीम में विकास, हमारे साथ मयूर जी और शमीम आलम शेख सीनियर कमेंटेटर, और मयूर जी भी इंग्लिश के वेल नॉन कमेंटेटर। और हॉकी इंडिया के हम समस्त अपने बात करें अधिकारियों का धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा प्रयास हॉकी के लिए हो रहा है। देख सकते हैं ऐसे तराशने का प्रयास, झारखंड ने कई ओलंपियंस दिए हैं, विमेंस ओलंपियन जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर जिन्होंने प्रतिनिधित्व करके भारत का सीना चौड़ा किया है, गौरवान्वित किया है इन खिलाड़ियों ने। और फिलहाल एक और अटैक बन रहा था, लगातार राइट और लेफ्ट फ्लैंक दोनों से झारखंड की टीम आक्रमण बना रही है। कल भी हमने देखा था झारखंड ने फाइनल, अगर देखें मेंस कैटेगरी में खेला था, जो मेंस सब जूनियर चल रहा है वहाँ पे फाइनल, और वो भी मुकाबला पंजाब से ही हुआ था। और लड़कियों के अगर बात करें, झारखंड और पंजाब यहाँ क्वार्टर फाइनल में है। वहाँ पंजाब ने आखिरी लम्हों में बाजी मारी थी, लेकिन यहाँ स्थितियाँ क्या रहेगी ये तय करेंगे। 2 काफी स्ट्रॉन्ग टीम भारत के हॉकी के मानचित्र की कमेंट्री लगातार आप तक पहुंच रही है प्रोडक्शन टीम के साथ। फिलहाल बहुत ही कमाल की कोशिश। 2 क्वार्टर फाइनल्स अभी तक हो चुके हैं। पहला क्वार्टर फाइनल जीत अर्जित की हरियाणा ने 4-1 से, दूसरा क्वार्टर फाइनल एमपी और छत्तीसगढ़, 2 पड़ोसियों के बीच रहा, जो कभी एक हुआ करते थे 2001 में अगर बात करें बंटवारे के बाद। और देख सकते हैं वहाँ पे फुल टाइम में मुकाबला 1-1 की बराबरी पे था। शूट आउट में छत्तीसगढ़ ने मुकाबला अपने नाम किया एमपी के खिलाफ। लेकिन यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बैटल अभी तक के बॉल पोजीशंस और डोमिनेशन झारखंड के लिए रहा है येलो जोशी में। पंजाब जरूर काउंटर अटैक के लिए जानी जाती है, झारखंड के लिए इस समय शांति कुमारी बॉल के साथ। और देख सकते हैं लगातार सुधीर गोला काफी इन्वॉल्व रहते हैं मैच के दौरान, जानते हैं इस मैच की अहमियत कितनी है। क्वार्टर फाइनल नॉकआउट स्टेज होता है, गलतियों के चांसेस नहीं हो सकते। झारखंड ने पिछले 5-6 साल की हॉकी में भारत में गजब का प्रदर्शन किया है। चाहे बात करें सिमडेगा, कोटी जैसे जिलों में गजब की हॉकी के प्रोड्यूस किए हैं इंटरनेशनल प्लेयर। सिमडेगा जैसा चाहे, वहीं हरियाणा का एक, दूसरी तरफ अगर कंपेयर करें शाहाबाद
तो ये हॉकी के गढ़ है झारखंड में, जैसे सिमडेगा है वैसे ही नजर आता है। बहुत ही शानदार तरीके से इस समय 0-0 स्कोर लाइन, बहुत ही बेहतरीन हॉकी। अंपायर से जाकर बात कर रही है मेरीना टी मैथ्यू और विमला बारवा, दोनों ही अंपायर हैं इस समय। देख सकते क्या कुछ हुआ, पंजाब के खिलाड़ी इस समय बॉल के साथ थी, उन्हें रोकने का प्रयास हुआ। देखना होगा प्रयास कितना कारगर हो पाता है इस बीच से। और पेनल्टी कॉर्नर, जी हाँ इस समय पेनल्टी कॉर्नर दिया गया है पंजाब के लिए। पहला पीसी, पंजाब क्या गोल कर पाएगी टीम, पेनल्टी कॉर्नर को क्या गोल के रूप में कन्वर्ट कर सकेगी, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। शानदार यह मुकाबला इस बीच से घटित होता हुआ, गजब के रोमांच के बीच ये मुकाबला इस समय बेहतरीन अंदाज में इस समय तो माल की कोशिश ये है इस समय। अंपायर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पे नजर आ रही है, काफी बढ़िया हॉकी इंडिया के सभी अंपायर्स काफी अच्छी भूमिका ने अदा की है। मैच को कंडक्ट कराना एक बहुत टफ काम होता है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी भूमिकाएं अदा की है। अंपायर इस समय मेरीना टी मैथ्यू नजर आ रही है विमला बारवा के साथ। आइए नजर आते हैं क्या कुछ हुआ इस समय। उन्हें बॉल को रोकने का प्रयास इन्फ्रिजमेंट माना गया और वापस इस समय लिखना होगा। इसी को देख रही है वहाँ पे अलग अलग कैमरा एंगल से और वीडियो रेफरल के माध्यम से। फिलहाल ये खूबसूरत है जहाँ पे मेजबानी हो रही है काकीनाडा आंध्र प्रदेश के खूबसूरत शहर से। ये लाइव एक्शन आप तक पहुँच रहा है काकीनाडा से। काकीनाडा खेलों के लिए जाना पहचाना गढ़ माना जाता है। बहुत ही शानदार तरीके से समय हॉकी के लिए एक बड़ी मेजबानी के केंद्र में है। निगाहें रखिएगा इस समय, अभी भी 0-0 स्कोर लाइन, खेल कुछ पलों के लिए रुका हुआ है इस पीछे। रणनीतियां क्या रहेगी ये देखना बहुत अहम। शानदार तरीके से ये खेल ये मुकाबला इस समय घटित होता हुआ। पेनल्टी कॉर्नर लेने के लिए देखना होगा इस समय क्या रणनीति रहती है यहाँ पे, इसी के लिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये मैच यकीनन तौर पे। पेनल्टी कॉर्नर क्या गोल के रूप में तब्दील होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे देखना होगा इस समय। इंजेक्शन के लिए इंजेक्ट किया, स्टॉप, ड्रैग, शानदार तरीके से और गोल भी आया है। पंजाब ने गोल कर दिए हैं इस समय। खुशी की लहर पंजाब के खेमे में, क्या गजब का गोल पंजाब के लिए इस समय। जाबाज इरादों के साथ पंजाब की टीम इस समय गोल करके इस मुकाबले में 1-0 की बढ़त बना ली है इस समय। वन 0 की लीड पंजाब के लिए, ये वाकई में एक अच्छे संकेत। यह मुकाबले में शुरुआत गजब की कर दी है। पूरे टाइम 36 बात करें जिस तरीके से झारखंड की टीम लीड बनाई हुई थी, लेकिन उनके खिलाफ जिस तरीके से एक मौका मिला और उससे गोल के रूप में तब्दील किया पेनल्टी कॉर्नर को। ये गोल यकीनन तौर पे अगर देखें एक अलग आत्मविश्वास देगा इस टीम को। और लगातार अब यहाँ पे है बराबरी का गोल आ चुका है इस समय, बहुत ही क्विक आकर के शानदार तरीके से। झारखंड की टीम भी जानी जाती है अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए। कमाल का डिफ्लेक्शन हुआ और सीधे गोल पोस्ट के अंदर, यानी कि 1-1 की बराबरी। जश्न की लहर, सुधीर गोला टीम मैनेजमेंट बेहद खुश। गजब के गोल किया है समय, दर्शनीय गोल किया है समय और बराबरी के गोल करके इस मुकाबले में पूरी तरीके से मैच को ला खड़ा किया है कि इंटरेस्टिंग स्थिति में 1-1 स्कोर लाइन। बहुत ही शानदार हॉकी, बेहतरीन हॉकी की झलक यहाँ पे। 1 मिनट 18 सेकंड के आसपास का खेल पहले क्वार्टर में बाकी। बहुत ही खूबसूरती के साथ रोमांच लगातार बढ़ता हुआ इस मुकाबले का। पहला गोल किया इस समय जिस तरीके से पंजाब की टीम ने, लेकिन फलक झपकते जिस तरीके से अटैक बिल्ड की और शानदार एक स्लैप शॉट जिसके डिफ्लेक्शन के सहारे सीधे बॉल गोल पोस्ट के अंदर।
और गजब के गोल करके इस मुकाबले में 1-1 की बराबरी, इक्वलाइजर का गोल आया। ऐतिहासिक यह मुकाबला, इंटरेस्टिंग ये बैटल इस समय नजर आता हुआ दोनों टीमों के बीच। पहला क्वार्टर अब धीरे धीरे समाप्ति की तरफ। अच्छी पासिंग देखना होगा इस समय, बेहतरीन डिफ्लेक्शन की इस उम्मीद के साथ। और इस समय देख सकते हैं हमारे कैमरामैन और पूरी प्रोडक्शन टीम कितनी शिद्दत के साथ। यह है इस समय सुधीर गोला, जो कि इस समय इस झारखंड टीम की कोचिंग की भूमिका में है और जिस अंदाज में अभी तक ये टीम परफॉर्म करती नजर आ रही है, इस मुकाबले को देखते ही बन रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से बराबरी का गोल किया और मैच को काफी इंटरेस्टिंग बना दिया है उन्होंने। पहला क्वार्टर धीरे धीरे समाप्ति की तरफ अग्रसर आगे बढ़ रहा है। फर्स्ट क्वार्टर इस समय बहुत ही शानदार तरीके से ये मुकाबला इस समय देखने को मिल रहा है, खूबसूरत रोमांच के बीच इस समय। और ये मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। एक और अच्छा अटेम्प्ट किया इस समय, गोलकीपर लाइन छोड़कर आई। शानदार प्रयास यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया तरीके से इस समय अटेम्प्ट लिया था खूबसूरती के साथ झारखंड के खिलाड़ी जैसे नंबर 9 ने। जिस तरीके से झारखंड इस मुकाबले में वापसी कर रही है वो भी देखने लायक। तारीफ करनी होगी पंजाब की भी, पंजाब ने भी बहुत अच्छी शुरुआत जिस तरीके से इस तीसरे क्वार्टर फाइनल में बहुत ही शानदार तरीके से खेल दिखाती हुई टीम यकीनन तौर पे लाजवाब है। यह मुकाबला पहला क्वार्टर धीरे धीरे समाप्ति की तरफ अग्रसर आगे बढ़ रहा है और यह मुकाबला अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग, ये बैटल देख सकते हैं। जर्सी नंबर 8 बॉल के साथ राइट फ्लैंक से आने की कोशिश, जेम्स यहाँ पे राइट फ्लैंक से बहुत ही शानदार तरीके से प्रयास होता हुआ इस समय डिफेंस के द्वारा अच्छा क्लियरेंस और खतरे को टाला कुछ पलों के लिए। और एक और यहाँ पे पेनल्टी कॉर्नर पीसी मिल गई है, एक और इंटरेस्टिंग पेनल्टी कॉर्नर इस समय झारखंड के लिए बहुत ही अहम रहेगा, बहुत ही अहम रहेगा ये पेनल्टी कॉर्नर। रणनीतियां बन रही है। जर्सी नंबर 15 जा रहे हैं इंजेक्शन के लिए, शालोमी नाग इंजेक्शन के लिए पहुंच रही है इस समय। उनके साथ मौजूद है जर्सी नंबर 9 रोशनी एंड बहुत तेज तरार खिलाड़ी स्वीटी टुंग टुंग, सरोज कुमारी बारवा जैसे प्लेयरों के ऊपर दारोमदार रहेगी। बहुत ही शानदार तरीके से वहीं गोल पोस्ट की रक्षा करने के लिए गोलकीपर सुप्रीत कौर है मौजूद हैं, उनके साथ 4 डिफेंडर फर्स्ट रशर के साथ देखना होगा इस समय इंजेक्शन के लिए। हीरो एशिया कप आने वाले वक्त में भी आपको देखने को मिलेगा। इस बीच इंजेक्शन स्टॉप, इसी बीच से बॉल हवा में राइज हुई, अगेन पेनल्टी कॉर्नर का इशारा, री पेनल्टी नजर आती हुई। बहुत ही शानदार तरीके से मुकाबला इस वक्त नजर आ रहा है। पहले कोचों का एक और शानदार बैटल इस समय, खूबसूरत ये मुकाबला इस समय देखने को मिलता हुआ देखना होगा इस समय। आइए नजर डालते हैं। इस बीच बॉल यहाँ पे वापस मौका, एक शानदार हिट लिया है और इसी के साथ एक और गोल झारखंड ने कमाल कर दिए हैं। जिस तरीके से इस समय यह मुकाबले में बेहतरीन तरीके से कोशिश की गई, कमाल का यह मुकाबला। इस बीच हालांकि शायद गोल अलाउ नहीं किया गया, ऐसा लगा कि शायद गोल पोस्ट के अंदर, लेकिन गोल वहां पे दिया नहीं गया था। और फिलहाल रोमांच बढ़ता हुआ पहले क्वार्टर की समाप्ति, बेहतरीन इंटरेस्टिंग ये बैटल नजर आया है। एक एक की बराबरी के साथ ये मुकाबला इस समय पहले क्वार्टर में एक पहला गोल किया जिस तरीके से पंजाब ने, लेकिन बराबरी का गोल नजर आया झारखंड के द्वारा। जुड़े रहिए हमारे साथ। कमेंट्री बॉक्स में विकास मेरे साथ, इंग्लिश के जाने माने कमेंटेटर, वेल नोन कमेंटेटर, मैं मयूर बरुआ जी को इनवाइट करता हूं अगले क्वार्टर में कमेंट्री के लिए हमारे साथ ही। वेलकम टू यू मयूर जी।
Good afternoon, everyone, and welcome to quarter number two of the third quarter final of this 15 Hockey India Junior Women National Championship 2025, all the way from Kakinada in the state of Andhra Pradesh. Behind the mic, I'm your host commentator in English, Mayur Parwa, and I've taken over the reins from Vikas Kumar. Thank you so much, Vikas, for the running Hindi commentary. And the match is between Jharkhand and Punjab in this quarterfinal number three. Score still locked at 1-1. Your mind immediately will reflect back to the previous match. Hockey Madhya Pradesh versus Chhattisgarh. What a match it was. Only the deadlock was broken by the penalty shootout where Chhattisgarh emerged victorious. So now they are into the semi-finals, and in the morning it was Haryana. So now we'll have to see who among from these girls. And the last match of the day, Maharashtra versus Uttar Pradesh. Punjab boys yesterday they won the 15th Hockey India Sub Junior Man National Championship 2025 at the Mayor Radhakrishnan Stadium in Chennai in Tamil Nadu. But all this reflection will come back here as the junior girls, now these women, are fighting. So will it be the title for the Reds or who else are going to snatch it? But for that, they have to go past the quarterfinal stage, semi-finals, finals, and for the glistening trophy. It was such a nice presentation ceremony yesterday there. It's all on at the moment here at this quarter number two. It's a check. A Jharkhand is giving a nice little pass to the right hand side. So he carries along inside a striking circle, reverses along the surface. Couldn't get it. Frustration will creep up. That was Cecilia Sendipurti. And what names these are, isn't it? They're playing in the nationals. They have been in the international front. They have worn and donned the national colors. And so huge names which have come up in the national finals to play here. Number three, that is Hamram Leone. And now with the ball going along with Punjab's Pawanpreet Kaur in the left flank. That is Reiki Harman on a picture in the defensive category. And that's Mr. Sudhir Gola, always animated, and he knows that the job always is half done. And he's the coach of Hockey Jharkhand, Sudhir Gola. And so the team manager is Mr. Vikas Pant. For Hockey Punjab, the coach is Mr. Rav Inder Singh. The team manager is Miss Pushpa Rani. The umpires for today's match is Marina T. Matthew, and assisting her is Miss Bimla Barwa. And the reserve umpires for today's match is Miss Siddhi Jadhav. The goalkeeper for Hockey Punjab is Sukhpreet Kaur. The captain is Jaisikdeep Kaur. And for Hockey Jharkhand, the goalkeeper Anupama Horo and the captain Rajni Kerketa also has 2 goals under her kitty, Rajni Kerketa. I tell you the stats which patterns all those goal scorers. And for Jharkhand at the top, Saroj Kumar, 3 goals, including all the 3 goals for Saroj Kumar has been all been 3 penalty corners. And for Roshni Ain, 2 goals, including a penalty corner and a field goal. And Sweetie Dumdu, what a name she is! Isn't it? 2 goals, and which includes the 2 field goals. Inside the striking circle, Tomahawk, reversing herself, so much power. The ball goes like one steroid, one meteorite from one galaxy to the other. It just got lost somewhere in the oblivion. Frustrated, isn't it? That's Miss Pushpa Rani, not agreeing to the fact of how
The girls are trying to squeeze. Jharkhand getting right on the top, getting good possession of the ball. Nice angular pass is also there. Give it all it has for this game at the moment. Back past the forward line, sweeping it all across, wanting to give a nice angular pass to her teammate from the left to the right of the picture. That's what Jharkhand will be attacking. To the right, to the left are the girls from Punjab. The circle, but the ball will gain much more velocity to get out of bounds. And the scoreline remains at 1-1. And after Rajni Kerketa, 1 goal each. For Rajni Kerketa, 2 goals. Both are penalty corners. That's for the captain, Rajni Kerketa. And for the for the captain, Jaisikdeep Kaur from Punjab, there's nothing. Just 1 goal for Pawanpreet Kaur, because Punjab 0-4 lost versus Madhya Pradesh and they drew 1-1 versus Chandigarh. So that's the result. But for Jharkhand, brilliant play. 2-0 versus Karnataka, they won. And then a huge scoreline of 7-1 versus Chhattisgarh. That was a brilliant gameplay for Jharkhand. A special thanks to our gratitude. Thank you to the Sports Authority of India, the Ministry of Youth Affairs and Sport, also to the host association, the Hockey Association of Andhra Pradesh, for providing such a nice platform to put across the surface. That's right. That's striking circle. Nice angular pass. Have to put up the names of President of Hockey India, Mr. Dilip Tirki, and also to the Secretary General of Hockey India, Mr. Bholanath Singh Ji. They have all been in the helm of affairs who have been funneling the growth of India. Also, other office bearers among them, they have been doing very well. At the moment, on a picture, the team from yellow, Jharkhand, have got the penalty corner advantage. Can they get a striking in very close? The first penalty corner, remember, there was nothing in the first half. This is the first penalty corner. Insertion and stops and drags it right into the goal post. Jharkhand gets the second goal. Celebration time in the camp. And very happy is the coach Sudhir Gola and team manager Vikas Pant. And why not? And when you plan it so meticulously well, it's there, you grab it, not the toughest of them. It goes right between both the defenders and the goalkeeper, diagonally done. But really, look at the roar coming in. Look at the roar from Sudhir Gola. Yes, that's what we needed. So now Jharkhand leading by 1 goal in total of 2 versus 1. The testing time coming in here, isn't it? It's been wonderfully done here. Top grab and it's just play through. Yes, so nicely done here. And the reverse angle being tried from Punjab gets rebounded. And this time it's a nice queries across the surface from the corner from Jharkhand. But Punjab will do it. They'll go inside the striking circle. Some shoulder hacking also going on. Cry for a foul play. Whistle comes in to break the bondage. There's 7 minutes remaining here to blow the whistle for signaling the end of half time. Jharkhand 2, Punjab 1. The coach, Ravinder Singh, standing along with him. Oh my goodness. Along with him is Miss Puspa Rani. Just puts it up. The strongest right the corner. Goes past the center line. The defense in the forwards there. Now number 3. That's Hamram Leone. She has been doing it so very well. And now getting frustratingly very close for Punjab. They will just look to surge the energy all the way. I mean, going the way it should be.
all they have got into at this stage. Jharkhand at a much more better pace than what is for Punjab at the moment. Really conditions here at this Kakinada ground here in this of Andhra Pradesh. This 15th Hockey India Junior Women National Championship 2025. In my time, Mayur Barwa, the commentary panel is of Mr. Shami Malam and Sir Vikas Kumar. They have been very good kind of one with an individual Hindi commentary. So we're putting lovely adage, I believe, as we go up to more and more tournaments. Really good. I think this is enjoyed to the core brand of hockey they play. They should be really proud. Winning or losing is always a part and parcel of the sport. It's all about what you have brought to the game, what you have done for your team to be there, to be holding up that position is something which the girls really need to be proud of themselves, because in their mind it shouldn't only be the win, it should be about how they have played. That's the reason. How have you given the 100% for your team? Is this the way you like your play to be shaped? Can you see all the things falling in place? Because then you cannot be more overconfident. You cannot be lower or shorter in your confidence. You'll be at par with everyone for sure. Lovely camera angle and product. You see that what this kind of an angle, the lens is piercing through. You can watch all these action on the YouTube channel of Hockey India. You will also get on the game by using the hashtag #IndiaKaGame. Get right behind all the social media, Instagram, Twitter, Facebook. As Jharkhand inside the striking circle, getting very dangerous. It's a lovely pass. Can they get it? Oh, wanting to scoop it, but ball is still surviving. It's not still dead. The red arm is swamping all across. Ball absolutely goes out. Has Punjab done well enough? I feel they have done. Have there been one more goal? There have been 2 goals behind with 3 minutes remaining in the second quarter, when things would have become more and more difficult. Nice aerial, very good aerial, couple of bounces, but wrongly into Jharkhand column. It's across the surface towards the forward line, center forward. Now Jharkhand can they do it? It goes to Manila Beach. He hasn't had any goals until now. As I mentioned, Saroj Kumari tops the ladder with 3 goals and all 3 penalty corners to her name. Sweetie Dung Dung also has 2 goals, 2 field goals. Right from the corner, it's Punjab inside the striking circle. Getting dangerous, gets collided with the goalkeeper, and it's the penalty corner. Penalty corner given to Punjab. She doesn't want to listen what the goalkeeper of Jharkhand is trying to say. But she's trying to get something coming from upstairs. It's getting... there you go. There you go. She stays the penalty corner. It's there. Frustrated is Jharkhand. Have to see where the infringement has happened actually, which led up to that penalty corner. Keep on going back past that 50-meter circle, 10 inside the striking circle. I think this is somewhere where probably it's because of the goalkeeper. That's what I could figure out. Was it an intentional dive across? But Punjab now gets an advantage of getting it 2-2. Can they do it? 2.5 minutes remaining here. The drag tap. And where is it gone? It has all been squared up. Nope, the penalty corner remains. The penalty corner remains. The umpires for today's match, Miss Bimla Barwa and Miss Marina T. Matthew. The reserve umpire is Miss Siddhi Jadhav. But Punjab again has to do the injection, the drag, and goes out of bounds.
and so it has to be repeated now again. He's saying we need the second goal. It is probably coming home. He is confident. He is seriously confident. Ravinder Singh. We love that smile also. He's a tall fella. Injection has been done. And it's a drag across the surface. And it's a reverse. Oh, still couldn't get it. The scoreline still remains 2 for Jharkhand, 1 for Punjab. 1 minute and 50 seconds remaining, which is little over 100 seconds to blow off the whistle to end the half-time. So now the penalty corner, which has not been converted. Punjab will be a little frustrated. To be taken away from the column of what they have done. 1 for Punjab, 1 for Jharkhand. Both of them have not been converted. So in total of 3, 2 penalty corners have been converted. 1 from Pawanpreet Kaur, which is scored in the 6th minute. And then again, it was 1 from Jharkhand by Shanti Kumari. It's the first goal of the championship, Shanti Kumari. And then Sweetie Dung Dung now has total of 3 goals, which all includes 3 field goals. It's a reverse from Jharkhand. The ball speds away from the stick of Punjab. Just heavily, very correctly. 30 seconds remaining by the clock. They're going ahead, marching ahead. Can they do it? It's Namneet Kaur with the ball. Ball gets into the wrong stick, goes out of bounds. 20 seconds remaining. Commotion. And they'll feel the heat. Can Namneet Kaur do it all the way to make it 2-2? No, gets into the stick of Hamron Leone of Jharkhand. She doesn't have any goal, but from the corner, it's Sweetie Dung with 3 goals, including 1 today. And among the tension, it will be a picture of calmness as the hooter has been sounded to end the second quarter and the half-time also. So 2 for Jharkhand, 1 for Punjab, and we go for a 10-minute break as the half-time has ended. Behind the mic, I am Mayur Barua, and we'll be back live with the action very soon. But at the start of the third quarter, it took the voice of someone who really loves his timing, his flow, and this is something which we really love to know because his fan following is day by day increasing. The ever smooth voice of फिर गूंज उठा है शंखनाद पारा है लक्ष्य को निर्विवाद कभी रुकेगी नहीं कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल ये वादा है इस मिट्टी से इस मिट्टी की संतानों का अब कुछ भी हो कब होगा नहीं ये हौसला नौजवानों का हॉकी हॉकी जन जन के सपनों की भारत के सम्मान की जय जय हो हिंदुस्तान की सीना चौड़ा किया है तूने अपनी मेहनत कौशल से रण विजयी होना है तुमको निश्चय और मनोबल से युगों युगों तक आगे ही इतिहास रचाया जाएगा हॉकी की रणभूमि पे तिरंगा ही लहराएगा
फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं, ये हौसला नौजवानों का। हॉकी इंडिया, come on India, let's win this. जो लोग इरादों को अपने सपनों से ही रंग देते हैं, वो डरते नहीं मुश्किल से कभी, दम भर के दम कर देते हैं। मैदाने जंग में आते हैं जब रपट खिलाड़ी भारत के, फिर आसमान पे तिरंगा लहराते हैं, लहराते हैं। फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। ये वादा है इस मिट्टी से, इस मिट्टी की संतानों का।
to accompany with the chief guest, the district collector of Kakinada, Shan Mohan Sagil. R.K. Srivastava sir, please. I request Harshavardhan, General Secretary of Hockey Andhra Pradesh, to escort the guests onto the field and introduce both the teams. And with their well wishes and blessings, after the national anthem, match will commence. Respected Sri Shan Mohan Sagil, District Collector, Kakinada, and also we have R.K. Srivastava, Brigadier, Army. First, all the players of Hockey Punjab are being introduced to the guest of honor today. Hockey Punjab in red uniform. Hockey Punjab. And we have technical officers, umpires on the field for this match, are none other than Bimla and Matthew Marina. We have reserve umpire, Siddhi. Judges, we have Amrita Seth and Reddy Ashok. We have technical officer, Anushka, under the leadership of technical delegate, Bala Renu, of the 15th Hockey India Junior Women National Championship 2025 at Kakinada. Now there will be a group photo as a memory of this championship, along with the chief guest. We have chief guest, the leader of this, main pillar of this organizing committee, this 15th Hockey India Junior Women National Championship, under the very good leadership of the district collector of Kakinada, Sri Shan Mohan Sagil. We could able to provide all these best possibilities for all the teams who are participating in this. नमस्कार, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से मैं शमी मालूम अपने साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ और विकास कुमार के साथ आपका स्वागत करता हूं। ये बताते हैं कि आज यहां पर तीसरा क्वार्टर फाइनल झारखंड और पंजाब के बीच चल रहा है। तीसरे क्वार्टर में चलिए मैं आपको लिए चलता हूं और यहां पर इस वक्त झारखंड ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। 2 गोल झारखंड की तरफ से किया गया, जबकि मात्र 1 गोल पर हुआ है पंजाब की तरफ से। तो इस वक्त यहाँ पर झारखंड का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन अभी 1 क्वार्टर और मतलब कि 2 क्वार्टर का खेल बाकी है। तो ये कहना मुश्किल कि कौन सी टीम यहाँ पर बाजी मार जाएगी, क्योंकि हॉकी इतना तेज खेल होगा कि आखिरी समय तक परिणाम बदल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं खेल के मैदान में। मैं आपको हॉकी के मैदान में लिए चलता हूँ, रूबरू कर रहा हूँ और लाइव एक्शन आप देख रहे हैं काकीनाडा से, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से, जहां पर पल पल की जानकारी हम अपने साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ और विकास कुमार के साथ पहुंचाता हूं। और हॉकी इंडिया मीडिया यूट्यूब चैनल पर, जहां से आप मुकाबले का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। पीले रंग की जर्सी में है झारखंड की टीम। इस वक्त झारखंड की टीम मोहल्ले के आगे बढ़ती हुई स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचने की कोशिश, बहुत तेज खेलती है झारखंड की लड़कियां। संभल के खेलना पड़ेगा यहाँ पंजाब को भी। मुश्किल राहें इतनी आसान नहीं है पंजाब के लिए। झारखंड ने मैं बता दूं यहाँ पर पराजित किया पहले मुकाबले में कर्नाटक को 1 के मुकाबले 3 गोल से, और झारखंड ने छत्तीसगढ़ को 1 के मुकाबले 7 गोल से पराजित किया था। जबकि पंजाब ने मध्य प्रदेश को पंजाब के विरुद्ध हार का सामना किया था। पंजाब ने 4 गोल से पराजित किया था पंजाब को मध्य प्रदेश ने। चंडीगढ़ का मुकाबला बराबरी पर छूटा था। चलते हैं तीसरे क्वार्टर में। यहाँ पर एक लंबा हिट, यहाँ पर सेकंड सर्किल के अंदर बहुत तेज हिट यहाँ पर झारखंड के विंगर के द्वारा देंगे गई बाहर। स्थिति 2-1 झारखंड 2 और यहाँ पंजाब 1।
झारखंड की तरफ से खेल के 7वां मिनट में गोल किया गया शांति कुमारी के द्वारा, जबकि 20वां मिनट में गोल किया गया यहाँ पर स्वीटी डोंगनू ने किया झारखंड के लिए। लेकिन 6 मिनट में पवनप्रीत कौर ने गोल डाल दिया था पंजाब की तरफ से। पंजाब के खिलाड़ी के पास बॉल इस वक्त बहुत अच्छा इंटरसेप्ट वहां पर झारखंड के खिलाड़ी का बहुत तेज हॉकी खेल रही है इस वक्त झारखंड की टीम। संभल के खेलना पड़ेगा पंजाब को। पीली रंग की जर्सी है, जर्सी में है झारखंड की टीम पीले रंग की में, जबकि लाल रंग जो खतरे का अनुसूचक है ये है पंजाब के खिलाड़ियों का जर्सी का रंग। 2-1 की स्थिति, बहुत ही कशमकश की टक्कर चलेगी दोनों के बीच। इस टीम ये झारखंड को मैं बता दूं बहुत ही नीचे से ऊपर तक ले जाने में बहुत ही लंबा हाथ है यहाँ पर हमारे झारखंड के प्रेसिडेंट और जो सेक्रेटरी जनरल हॉकी इंडिया के हैं श्री भोलानाथ सिंह, साथ में सेक्रेटरी झारखंड के सेक्रेटरी विजय शंकर प्रसाद सिंह और सीओ श्री रजनीश कुमार, इन्होंने काफी मेहनत की है, काफी लंबा समय दिया है, अधिक बहुत संवारा सजाया है इस टीम को झारखंड को। क्योंकि ये झारखंड को बता दूं अधिकतर लड़कियां ये सुदूर क्षेत्र से आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है इन बच्चों में। लेकिन इन जो हमारे झारखंड के जो प्रेसिडेंट हैं, जो भी हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल है भोलानाथ सिंह, सेक्रेटरी जनरल विजय शंकर सिंह और सीओ रजनीश कुमार, ये 3-4 खिलाड़ी आदमियों का बहुत बड़ा योगदान है झारखंड की टीम को संवारने में, ऊपर ले जाने में। फिर चलते हैं क्योंकि इन्हें शून्य से शिखर तक ले जाने में काफी मेहनत पड़ती है, किसी भी टीम को बनाने में योगदान देना पड़ता है, इनके साथ चलना पड़ता है, इनके सभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ता है किस चीज की कमी है। और यही कारण है कि झारखंड की बच्चियां अभी बहुत नाम कर रही है झारखंड का। पूरे यहाँ पर भारतवर्ष की टीम में भी कई लड़कियां खेल रही हैं, तो झारखंड की भी सलीमा टेटे जो है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी है, तो शून्य से शिखर तक पहुंचाने में इन लोगों का काफी बहुत हाथ है। तो चलिए झारखंड की टीम क्या कर पाती है। 2-1 की स्थिति फिलहाल यहाँ पर पंजाब के खिलाड़ी के पास बॉल, बहुत दूर से यहाँ पर दोनों टीम के कोच दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो यहाँ पर गेंद गई बाहर, इस वक्त टच लाइन का फ्री मिलता हुआ 2-1 की स्थिति है यहाँ पर अभी झारखंड 2 और यहाँ पर 2-1 झारखंड 2 पंजाब 1। तो स्थिति 2 झारखंड के खिलाड़ी के पास बॉल, इस वक्त यहाँ बॉल को लेकर निकलने की कोशिश में मंडी गए और अभी भी वहां पर सर्किल का बहुत अच्छा पास गया, लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट वहां पे पंजाब के खिलाड़ी का। और ये स्थिति अगर इस तरह से बनता रहा झारखंड के लिए तो निश्चित रूप से मौका मिलेगा झारखंड को यहाँ पर। अभी प्राप्त की हुई झारखंड की टीम, झारखंड मैं बता दूं मुकाबले में भी अभी तक खेल नहीं हारी है। पहला मुकाबला में कर्नाटक को 1 मुकाबले 3 गोल से पराजित किया, दूसरे मुकाबले में छत्तीसगढ़ को 1 के मुकाबले 7 गोल से पराजित किया। लंबा हिट यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर गेंद गई, बहुत तेज गति से निकल गई गोल लाइन के बाद। जबकि पंजाब की टीम को मध्य प्रदेश ने पराजित किया, पंजाब 1 मुकाबले को हारी, 1 मुकाबले को ड्रॉ खेली है। तो यहाँ पर मुकाबला लेकिन जबरदस्त होता है। मैं बता दूं ये डिवीजन ए का पूल बी का मुकाबला है, इसमें मध्य प्रदेश है पूल बी से निकल के आई है यहाँ पर पंजाब की टीम, जबकि पूल ए से निकल के आई झारखंड की टीम। झारखंड की टीम पूल बी में यहाँ पंजाब की टीम दूसरे स्थान पे रही थी। तो इस तरह से यहाँ पर मुकाबला जबरदस्त चलता हुआ जी। लेकिन जो क्वार्टर फाइनल का खेल हुआ सुबह के सत्र में, उसमें हरियाणा ने उड़ीसा को 1 के मुकाबले 4 गोल से पराजित किया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो दोनों पड़ोसी राज्य है, इनका मुकाबला बहुत ही कसमकस का चला। मुकाबला बराबरी पर छूटा था यहाँ पर। उसके बाद
जाकर के खेल चला गया पेनाल्टी शूटआउट में। उसके बाद खेल चला गया सडन डेथ में, और सडन डेथ में यहाँ पर मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़ को पराजित किया 2 गोल से। तो इस तरह से यहाँ पर हरियाणा की टीम और छत्तीसगढ़ की टीम, ये हरियाणा और छत्तीसगढ़ की टीम चली गई है सेमीफाइनल में। छत्तीसगढ़ बहुत ही कशमकश के मुकाबले में मध्य प्रदेश को पराजित की सडन आउट में, सडन डेथ में। पेनाल्टी शूट आउट के बाद भी मामला चला गया सडन डेथ में। तो इस तरह से आप तीसरा क्वार्टर फाइनल आप देख रहे हैं झारखंड और पंजाब के बीच। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले जो होते हैं निश्चित रूप से कांटे की टक्कर चलती है टीमों के बीच। इस बीच यहाँ पर पंजाब के खिलाड़ी के पास बॉल, किरणप्रीत कौर के पास लंबा हिट किया है, गेंद जा रही बाहर। स्थिति 2-1 झारखंड 2 पंजाब 1। कल पुरुष का जो मुकाबला चला था, सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो हुआ था मुकाबला चेन्नई में, चेन्नई के मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम में चला था। आप जो देखे होंगे उन्होंने देखा होगा कितना पंजाब और झारखंड के भी कांटे की टक्कर चली थी, और अंततः पंजाब ने वहां पे बाजी मारी। आखिरी मिनट में पंजाब ने बाजी पलटा और 3 के मुकाबले 4 गोल से पराजित किया झारखंड को। झारखंड को दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। कल फाइनल का जो मुकाबला हुआ था झारखंड और पंजाब के बीच, बहुत ही कांटे की टक्कर चली थी। हालांकि झारखंड ने पहले वहां पे अग्रता हासिल कर लिया था, लेकिन उसके बाद झारखंड की टीम गोल करती गई, पंजाब की टीम पीछा करती गई। आखिरी जो पहला क्वार्टर था उसमें आखिरी 2 मिनट के अंदर लेकिन झारखंड ने जो पंजाब ने जो गोल किया, खेल वहीं से टर्न ले लिया, एक नया मोड़ लिया, और अंततः जब हुटल बज रहा था तो पंजाब ने झारखंड को 3 के मुकाबले 4 गोल से पराजित करके चैंपियनशिप होने का गौरव प्राप्त किया। फाइनल खेल अपने नाम किया पंजाब ने, और झारखंड को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। लेकिन आज चलिए चलते हैं, ये सुधीर गोल्ला को आप देख रहे थे, ये झारखंड के कोच हैं। यहाँ पर झारखंड के खिलाड़ी के पास बॉल इस वक्त यहाँ पर गेट सलोमी नाग के पास है। सलोमी नाग से बॉल निकली, साथी खिलाड़ी को पास बढ़ाने की कोशिश, क्रेडिट मिलता हुआ झारखंड को। बाएं फ्लैंक पे गेंद एक बार फिर यहाँ पर सलोमी नाग के पास, सामने साथी खिलाड़ी को बॉल बढ़ा दिया है। स्टैकिंग सर्किल के ऊपर खेल हो रहा है, पंजाब के स्टैकिंग सर्किल के ऊपर हमला बनता हुआ एक बार फिर झारखंड की टीम ने लंबी हिट लगाई गई झारखंड के खिलाड़ी के द्वारा। अभी भी 22 मीटर रेखा के ऊपर खेल होता हुआ पंजाब के खिलाड़ी ने बॉल को बढ़ा दिया है, लेकिन जो झारखंड के खिलाड़ी हैं बिल्कुल मेन टू मेन मार्क करके रखा है पंजाब के खिलाड़ियों को, कोई मौका नहीं देते हैं। लेफ्ट विंगर से कमान संभाला है यहाँ पर सलोमी नाग ने बॉल को बढ़ा दिया था रोशनी आइन के लिए। ये उभरती हुई खिलाड़ी है रोशनी आइन, नजर रखिएगा, जैसे नंबर 9 के ऊपर ख्याल रखिएगा। झारखंड की रोशनी आइन, ये रोशनी आइन बहुत तेज तर्रार खिलाड़ी है, बहुत तेज हमला करती है। लेफ्ट विंगर की एक कमान संभाल के रखती है लेफ्ट विंगर की तरफ से, रीढ़ की हड्डी है रोशनी आइन। तीसरा क्वार्टर का खेल बहुत तेजी के साथ चल रहा है। 4 मिनट 45 सेकंड के समय वक्त इतना तेजी से निकल रहा है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि हॉकी बहुत तेज, जब 2 टीमें बहुत टक्कर की हो, मजबूत टीमें जब आमने सामने हो तो वक्त कैसे निकल जाता है पता नहीं। दाएं फ्लाई में पास, एक बार फिर बढ़ती हुई स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर बढ़ने की कोशिश, राइट विंगर के लिए बॉल को बढ़ा दिया है झारखंड के खिलाड़ी। अभी बीडी के अंदर पहुंचने की कोशिश, सर्किल के अंदर खेल होता हुआ यहाँ पर मौके को तलाश रही है झारखंड की टीम, लेकिन ये हमला टला यहाँ पर बहुत कटाई के साथ। पंजाब के खिलाड़ी ने बॉल को बाहर निकाल दिया। 2-1 की स्थिति, झारखंड 2 और पंजाब 1। झारखंड यहाँ के लोगों में बता दूं हॉकी दिल में बसता है। अगर झारखंड की हम बात करें, कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ के हर घर में हॉकी का खिलाड़ी है, खासकर सिमडेगा की अगर हम बात करें तो वहां पर सिमडेगा में हर घर में एक खिलाड़ी आपका झारखंड का मिलेगा। सिमडेगा चले जाइए आप अपने कदमों को बढ़ाइए, रांची से गुमला की तरफ आप निकालिए, खूंटी की तरफ, हर गांव में इन जिलों के हर गांव में लगभग हॉकी का खिलाड़ी मिल जाएगा। रांची जिला तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रेज है यहाँ पर झारखंड के इन जिलों में हॉकी का। फिलहाल एक पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई झारखंड की टीम यहाँ पर मेरीना से बात कर रही है। पंजाब के खिलाड़ी और मेरीना जो खेल की निर्णायक है मैदान के तरफ छोर में वहां पर आज संचालित कर रही है। यहाँ पर रेफर किया है मामले को वीडियो अंपायर को, पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा किया था मेरीना ने, लेकिन वहां पे आर्गुमेंट किया गया था पंजाब के खिलाड़ियों के द्वारा। तो फील्ड अंपायर ने
मदद मांगी है यहाँ पर वीडियो अंपायर से। मेरिनाटी मैथ्यू ये केरला से आती हैं, मामले को रेफर किया है। यहाँ पर वार्ता चल रही है। बहुत तामझाम भाई। वीडियो अंपायर से बात हो रही है। हाँ, ये आपके कमेंट भी हो जाएगा। टेस्टिंग चल रहा है। और इस पेनल्टी कॉर्नर के डिसीजन को बदला गया। स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर यहाँ पर फ्री हिट मिला है झारखंड को। झारखंड स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर फ्री हिट लेते हुए यहाँ पर संगीता कुमारी के पास बॉल। झारखंड स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर खेल हो रहा है। पंजाब के स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर बहुत तेज अटैक कर रही है झारखंड की टीम। 3 मिनट 36 सेकंड का समय बचा हुआ है इस वक्त। यहाँ पर तीसरा क्वार्टर का लंबा हिट और स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर एक बार फिर गेंद की और यहाँ हमला ने काम किया। सुधीर गुल्ला इस वक्त काफी व्यतीत नजर आ रहे हैं, अभी बेचैन है। लंबा यहाँ पर क्योंकि विकास पंत उनके साथ हैं, यहाँ पर टीम मैनेजर सुधीर गुल्ला आप देख सकते हैं काफी चिंतित नजर आ रहे हैं सुधीर गुल्ला, क्योंकि बहुत दूर से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ये यहाँ पे झारखंड के कोच आप देख रहे थे सुधीर गुल्ला को। यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल को फ्री हिट मिलता हुआ पंजाब को। पंजाब के खिलाड़ी जिन्होंने गोल किया था खेल के 66 मिनट अपने टीम के लिए, गेंद से छीन गई। गेंद चली है यहाँ पर झारखंड के खिलाड़ी के पास। झारखंड के खिलाड़ी ने बॉल को दिया सरोज मुंडारी के लिए। सरोज मुंडारी बॉल लेके निकल रहे हैं। यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर एक बार फिर हमला करती हुई झारखंड की टीम, मौका निकालने की कोशिश, लेकिन बढ़िया इंटरसेप्ट बॉल को निकाल दिया वहां पर पंजाब के खिलाड़ी ने। यह है सुधीर गुल्ला, काफी व्यतीत नजर आ रहे हैं सुधीर गुल्ला, दूर से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। कोच है झारखंड के सुधीर गुल्ला। झारखंड जूनियर महिला टीम के ये कोच नजर आ रहे हैं, आप स्क्रीन पर ऊपर देख रहे हैं आप इस वक्त सुधीर गुल्ला को। तो झारखंड 2 और पंजाब 1 मुकाबला। इस वक्त 2 मिनट का समय बचा हुआ। झारखंड की टीम बॉल लेकर बढ़ती है, लेकिन बॉल को संभाल लिया यहाँ पर पंजाब के खिलाड़ी। बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचती हुई पंजाब की टीम बहुत तेज, लेकिन पीछे से निकले वहां पे झारखंड के खिलाड़ी बॉल को बाहर किया। तो स्थिति काउंटर अटैक, कभी अटैक करती है झारखंड की टीम तो कभी काउंटर अटैक यहाँ पर पंजाब के द्वारा। एक्शन आप देख रहे हैं हैदराबाद के आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से देख रहे हैं, और खूबसूरत स्टेडियम विहंगम दृश्य इस मैदान के। बाएं तरफ पे पास, बॉल को संभाल जमा है। यहाँ पर झारखंड की तरफ से अटैक बनता हुआ झारखंड के खिलाड़ी रोशनी आइंद के पास बॉल। रोशनी आइंद बहुत ही तेज तर्रार यहाँ पर है, लेफ्ट विंगर से खेलती है रोशनी आइंद। ये सेंटर फॉरवर्ड की खिलाड़ी है रोशनी आइंद, बहुत तेज हॉकी खेलती है रोशनी आइंद, और इनका बेहतरीन प्रदर्शन राष्ट्रीय खेल में भी जो हुआ था इस वर्ष फरवरी में जो हुआ था उत्तर
झारखंड के हरिद्वार में जो हुआ था, रोशनाबाद में जो स्टेडियम, वंदना कटारिया स्टेडियम में जो मुकाबला चला था, उस मुकाबले में भी, राष्ट्रीय खेल में भी झारखंड की तरफ से रोशनी आई ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। क्लिट मिलता हुआ पंजाब को स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर 23 मीटर रेखा के पास खेल चला गया है आखिरी मिनट में। चिंता बढ़ रही है पंजाब के लिए, लेकिन यहाँ पर एक गोल से आगे है झारखंड की टीम। अपनी अग्रता को यहाँ पर जो एक गोल से आगे है उसको कायम रखना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि जीत की हिफाजत नहीं करने वाला हार की गुलामी में कैद हो जाता है। जो अग्रता, और ये है आप देख रहे हैं इस वक्त रविंद्र सिंह कोच पंजाब, और साथ में है पुष्पा रानी टीम मैनेजर नजर आ रही थी। इस बीच बॉल को उछाला गया है, काफी एरियल पास बढ़ाने की कोशिश, लेग फ्लैंग से गति से निकलते हुए इस वक्त पंजाब के खिलाड़ी बॉल लेके आगे निकलने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर एक हरमन, और ये हुटर बजता हुआ तीसरा क्वार्टर का खेल खत्म हुआ, और इस तीसरे क्वार्टर का खेल खत्म होने तक झारखंड ने अपनी अग्रता को अभी तक बना के रखा है। झारखंड 2 पंजाब 1, और आप देख सकते हैं सुधीर गोल्ला को इस समय अपने साथ वहां पर झारखंड के खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे हैं, ये बताते हुए कि आपको पहला गोल किया गया था पवनप्रीत कौर ने पंजाब की तरफ से खेल के 76 मिनट में, लेकिन उसके बाद काउंटर अटैक के झारखंड ने शांति कुमारी ने 7वां मिनट में गोल करके बराबरी पे लाया। उसके बाद स्वीटी डुंगडुंग ने खेल के 22वां मिनट में एक गोल की बढ़त दिलाई और झारखंड की उम्मीदों को कायम रखा। लेकिन चलेंगे हम चौथे क्वार्टर में, यानी आखिरी क्वार्टर में, और आखिरी क्वार्टर में हम अपने साथी कमेंटेटर के पास से लिए चलते हैं। और देखिए यहाँ पर मयूर बरुआ या विकास कुमार आते हैं इस माइक्रोफोन पे। तो चलिए चौथे क्वार्टर में मैं लिए चलता हूँ अपने साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ के पास। नाउ टू मयूर बरुआ। बहुत बहुत थैंक्स शमीम सर, बहुत धन्यवाद। मैं कमेंट्री बॉक्स में विकास आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मयूर जी जुड़ेंगे हमारे साथ अगले क्वार्टर में, जहां पे नेक्स्ट हमारा अगर बात करें मैच की पहले क्वार्टर की शुरुआत होगी। देखिए अगर बात करें दोनों हमारी हिंदी रीजन की टीमें हैं झारखंड और पंजाब, तो हमारी कोशिश है हिंदी में कमेंट्री आप तक ज़्यादा पहुँचाई जाए इस मैच में। बहुत ही शानदार मेज़बानी इस समय अगर बात करें स्पोर्ट्स क्लब काकीनाडा का धन्यवाद देते हैं, जिनका हॉकी इंडिया के सभी पदाधिकारी जो कि आदरणीय डायरेक्टर के जी भोलानाथ सिंह सर, बात करें विजय प्रताप सिंह सर, सभी हमारे सेक्रेटरी मनोहरन सर और सभी एसोसिएशन के पदाधिकारी। पहला गोल किया था जब पंजाब की टीम ने, पवनप्रीत कौर ने गोल किया था, लेकिन उसके बाद श्रुति डुंगडुंग के फील्ड गोल के बदौलत बराबरी का गोल और शांति कुमारी ने गोल करके बढ़त दिला दी थी। शानदार तरीके से यह मुकाबला देखने का मुकाबला इस बीच बहुत ही सुनहरा मौका, एक और गोल। झारखंड की टीम अब 3-1 की बढ़त पे, जबरदस्त खुशी देख सकते हैं सुधीर गोला और साथ ही उनके पूरे मैनेजमेंट में बहुत ही लाजवाब तरीके से ये गोल देखने को मिला है। बहुत क्लोज गए गोल माउथ के, वहां से सेंटर किया बॉल को, बेहतरीन क्लिनिकल फिनिश और यहाँ पे लाजवाब गोल करके इस समय मुकाबले में 3-1 की बढ़त इस समय झारखंड के लिए। खुशी की लहर झारखंड के इस समय कोच सुधीर गोला और साथ में विकास पंत और उनके पूरे स्टाफ और बेंच इस समय खुशी से ओत-प्रोत इस समय। कल बॉयज कैटेगरी में अगर बात करें जिस तरीके से मुकाबला झारखंड ने पंजाब से आखिरी लम्हों में हार गए थे, लेकिन आज एक अलग दिन है। बेटियां अद्भुत खेल रही है झारखंड की गर्ल्स कैटेगरी में। फिलहाल देख सकते हैं रेड जर्सी में पंजाब, जर्सी नंबर 9 बॉल के साथ खूबसूरती के साथ यहाँ पे बॉल पे इंटरसेप्ट किया इस समय झारखंड के जर्सी नंबर 15 ने, जर्सी नंबर 3 बॉल के साथ लेकर के शानदार तरीके से झारखंड के लिए बॉल कंट्रोल इस समय लियोनी हेमब्रॉम के साथ मौजूद है समय शालोमी नाग, इस टीम के बहुत अहम खिलाड़ी रजनी करकेटा, टीम की कैप्टन सरोज कुमारी, रोशनी एंड कुमारी शांति, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी देखना रहा इस बीच पे बॉल पास किया कुमारी टीम के लिए। सुधीर गोला का देख सकते हैं आई कांटेक्ट बहुत जरूरी, ये बताते हुए कि पासिंग के दौरान मिसपास ना हो,
उसका ध्यान बहुत जरूरी है। फिलहाल पंजाब के लिए जर्सी नंबर 13 मनदीप कौर, मनदीप कौर की क्या रहेगी रणनीति देखना बहुत अहम इस समय। पिछला गोल किया है रोशनी एंड ने, और रोशनी एंड ने 46वें मिनट में गोल करके झारखंड को बड़ा दिला दिया 3-1 से। झारखंड ने 2 मुकाबले खेले थे जिसमें कर्नाटक को 2-0 से हराया था, वहां भी रोशनी एंड ने एक गोल किया था और सरोज कुमारी के एक गोल थे। फिलहाल इस समय मौका पंजाब के पास, स्ट्राइकिंग सर्कल के पास, बिल्कुल शानदार तरीके से यहाँ पेनल्टी कॉर्नर मिल सकता है झारखंड के खिलाफ। पंजाब ने बहुत अच्छा इस समय अटैक बिल्ड किया खूबसूरती के साथ। जी हाँ, पीसी मिला है पंजाब को, क्योंकि आपके ही पैर स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर आपके दुश्मन हो जाते हैं। और फुट में पैर में बॉल टकराई और यहाँ पे पंजाब को वापसी करने का मौका रह सकता है। ये पंजाब के खिलाड़ी जर्सी नंबर 3 जा रहे हैं इंजेक्शन के लिए इस समय। प्रभजोत कौर, प्रभजोत निगाहें रहेगी इनके ऊपर। इस समय बहुत ही ऐतिहासिक ही आयोजन इस समय आगे बढ़ रहा है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप डिवीजन 1 का ये मुकाबला, क्वार्टर फाइनल। हल्का सा पुश, थोड़ी सी वेरिएशन, डिफेंस को सेटल होने का मौका, गोलकीपर के पीछ, बहुत बढ़िया प्रयास, शानदार गोलकीपिंग यहाँ पे जिसे अनुपमा होरू, शानदार प्रयास किया अनुपमा ने और खतरे को टाला इस बीच से। दिलचस्पी साफ नजर आ रही है क्या मैच। और ये पंजाब के कोच और उनके मैनेजर रविंदर सिंह मौजूद हैं, रविंदर सिंह और पुष्पा रानी देख सकते हैं। रविंदर सिंह और पुष्पा रानी ये है पंजाब के कोच और मैनेजर, काफी अनुभवी कोच ये भी नजर आते हैं। बहुत ही इन्वॉल्वमेंट नजर आता है क्योंकि क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल्स की टक्कर यहीं से तय होगी और कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी ये तय होना है। फिलहाल अंपायर देख सकते हैं इस मुकाबले की, फिलहाल इंजेक्शन के लिए पहुंचे हैं और स्टॉप देखिए, ये खूबसूरत प्रयास यहाँ पे डिफेंस से रोकने की कोशिश, ये वो प्रयास, बॉल को अच्छा सेव किया गोलकीपर ने। मैच में अंपायर है बिमला बारवा और मरीना टी मैथू, दोनों ही अंपायर। साथ ही साथ सीधी जाधव हैं रिजर्व अंपायर, शिवानी शर्मा है वीडियो अंपायर, अमृता सेन स्कोरिंग जज हैं और मिनाकुरु रेड्डी जो कि टाइमिंग जज की भूमिका में हैं। अनुष्का डिसोजा है टेक्निकल ऑफिसर और रेनू बाला है टेक्निकल डेलीगेट्स। यह है पूरी हॉकी इंडिया की बहुत शानदार टीम और इसके पीछे जो मेहनत है हॉकी इंडिया के सभी पदाधिकारियों की वो गजब की। फिलहाल पेनल्टी कॉर्नर दिया गया है, इशारा आया है इस वक्त और देखना होगा पीसी मिलेगा यहाँ पंजाब के लिए। पंजाब के पास मौका है वापसी करने का, रणनीतियां बन रही है पंजाब के लिए। क्या होगा इस समय मुकाबले में, बहुत ही दिलचस्प स्थिति में पंजाब के लिए कप्तान जय सिंह
दिलचस्पी साफ नजर आ रही इस मुकाबले में। 3-1 की लीड यहाँ पे, और जिस अंदाज में अभी तक झारखंड की टीम ने डोमिनेट किया है। पिछला गोल भी बहुत ही शानदार तरीके से किया था रोशनी एंड ने। रोशनी इस टीम की उम्मीद की किरण है, और जिस तरीके से वो प्रदर्शन करती हुई नजर आती हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। कर्नाटक के खिलाफ भी ये गोल किया था रोशनी एंड ने, ये गोल किया था उन्होंने छत्तीसगढ़ के खिलाफ भी, और निरंतरता के साथ इस टीम के लिए सबसे अहम की प्लेयर के तौर पे अपनी पहचान रखती है। बहुत ही शानदार मुकाबला इस बीच देखना होगा। क्लियर करने का प्रयास किया इस समय डिफेंस लाइन से। दिलचस्प ये मैच इस समय घटित हो रहा है, और जिस अंदाज में फोर्थ क्वार्टर और सबसे निर्णायक क्वार्टर है ये, जिस तरीके से मुकाबले में 3-1 की बढ़त। हमारे साथ पूरी हमारी कमेंट्री टीम में विकास कुमार के साथ सीनियर कमेंटेटर जी, और साथ ही साथ मयूर बरुआ जी एक और बेहतरीन कमेंटेटर, और पूरी प्रोडक्शन जोर अग्रसर। और जिस तरीके से बॉल कंट्रोल उनका नजर आता है गेम पे, गेम का प्लानिंग और बेहतरीन एग्जीक्यूशन। और देख सकते हैं लगातार लिंकअप प्ले, अच्छी अटैक बिल्ड कर रही है लगातार। पंजाब के लिए भी अच्छे संकेत है। पंजाब के खिलाड़ी एक थ्रू पास किया स्ट्राइकिंग सर्कल के पास से, इस समय हिट लेने की कोशिश। झारखंड के खिलाड़ी ने बहुत क्विक आकर के बॉल कंट्रोल किया। पंजाब देख सकते हैं इस समय बॉल कंट्रोल पंजाब के पास। इस समय स्लैप शॉट की कोशिश, मैन टू मैन मार्क किया, खतरे को जाला इस समय खूबसूरती के साथ। इस समय बहुत ही जबरदस्त ये मुकाबला, स्लैप शॉट की कोशिश, लगातार अटैकिंग हॉकी खेलने का प्रयास। जूनियर विमेंस नेशनल का ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। 2 क्वार्टर फाइनल्स पहले अभी तक हुए हैं, जिसमें अगर बात करें हॉकी हरियाणा और हॉकी उड़ीसा के बीच। हॉकी हरियाणा मुकाबला, झारखंड की टीम लगातार अच्छी लिंकअप प्ले, बेहतरीन कॉम्बिनेशन, एक अच्छा थ्रू पास डॉटेड लाइन के पास इंटरसेप्ट किया, और पंजाब के खिलाड़ी ने अपने नियंत्रण में ली जैसे नंबर 11 बॉल के साथ। इस बीच 11 से साथी खिलाड़ी बॉल के नियंत्रण लेती हुई जैसे नंबर 10। बहुत ही शानदार तरीके से ये मुकाबले में। इस बीच पंजाब के खिलाफ बहुत ही शानदार प्रयास यहाँ पे होता हुआ, जिस अंदाज में ये एक स्ट्रैटेजी के तहत, एक रणनीति के तहत, और गजब की हॉकी तारीफ करनी होगी। दोनों टीमें स्किलफुल हॉकी के लिए जानी जाती है, जहाँ पे कप्तान रजनी करकेटा बहुत अच्छा नियंत्रण के साथ, और इनके साथ में संगीता कुमारी हो, चाहे बात करें रीना पुल्लू हो, सलोनी नाग फुट लाइन में, मिडफील्ड में पूर्णिमा वर्मा, सरोज कुमारी, रोशनी एंड और स्विची डुंगडुंग जैसे तेज तर्रार खिलाड़ी इस टीम में नजर आती हैं। फिलहाल देख सकते हैं 2 खिलाड़ी ब्लॉक करने का प्रयास उनके द्वारा। इस समय मनदीप कौर मौजूद है वहां पे, मनदीप कौर के साथ साथ सुप्रीत कौर। बहुत ही शानदार तरीके से पंजाब की टीम भी संघर्ष कर रही है। तो हल्के हाथों से पुश किया मनदीप कौर ने, लेफ्ट फ्लैंक से अटैक बिल्ड करने का प्रयास होता हुआ प्रभजोत कौर का, लेकिन बीच में इंटरसेप्शन। बहुत शानदार, यह है ताकत इस टीम की। मिडफील्ड में खेल होता हुआ बॉल को कंट्रोल किया है इस वक्त सुशीला कुजूर ने। बहुत ही शानदार तरीके से ये मुकाबला, आखिरी क्वार्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग ये बैटल दोनों टीमों के बीच नजर आता हुआ। पंजाब की टीम अटैक बिल्ड करने का प्रयास, मिस पास हुआ, लेकिन वहां पे बॉल को ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाई जैसे नंबर 13, जहां पे संगीता कुमारी मौजूद थी। और यहाँ पे पंजाब के खिलाफ 3 खिलाड़ी लगातार वहां पे बिल्कुल स्पेस नहीं दे रहे हैं बॉल को क्लियर करने की। नेहा जो अटैक कर रही थी लेफ्ट फ्लैंक से। बहुत ही शानदार तरीके से हॉकी का ये क्वार्टर फाइनल का बहुत इंटरेस्टिंग मैच। इंडियन ऑयल का, लिम्का का, हॉकी इंडिया का बहुत धन्यवाद देते स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हॉकी के 100 ईयर्स SRMT का। फिलहाल इस बीच स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर और पेनल्टी कॉर्नर का इशारा खूबसूरती के साथ हॉकी झारखंड ने अटैक बिल्ड किया था। कमाल का वहां पे जोशी नंबर 10 स्विति डुंगडुंग, क्या रफ्तार है, क्या स्किल है, स्टीक वर्क्स और डिफ्लेक्शन बहुत ही कमाल की। और ये है अंपायर इस वक्त जो आप देख सकते हैं, मेरीना टी मैथुर, और उनके साथ है बिमला बारवा। मेरीना टी मैथुर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे नजर आती हुई देखना होगा। इस बीच काकीनाडा आंध्र प्रदेश का खूबसूरत ये मैदान इस समय 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर विमेंस नेशनल चैंपियनशिप की डिवीजन 1 के इस क्वार्टर फाइनल की मेजबानी करता हुआ जैसे नंबर 10 स्विटी डुंगडुंग ही जा रही है इंजेक्शन के लिए इस पेनल्टी कॉर्नर पे। स्विटी डुंगडुंग वो नाम है, 2 गोल करके आ चुकी है ऑलरेडी। बात करें जिन्होंने छत्तीसगढ़ के खिलाफ तेज तर्रार हिट
बहुत शानदार प्रयास किया, लेकिन गोलकीपर को सुप्रीत कौर को टेस्ट नहीं कर सकी। खतरा कुछ पलों के लिए टल गया। इस बीच वक्त धीरे धीरे निकल रहा है मुकाबले में। इससे ऐतिहासिक इस समय बात करें चौथे क्वार्टर का, चौथा क्वार्टर अगर बात करें तीसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले का, वक्त धीरे धीरे निकलता हुआ छत्तीसगढ़ जैसे पहले ही ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन झारखंड की टीम क्या यहाँ पे सेमीफाइनल में दस्तक देगी। एक और पेनल्टी कॉर्नर जो लगातार डिफेंस पे इस समय डिफेंस को गलती करने पे विवश किया है। कमाल के अटैक बिल्ड कर रहे हैं राइट फ्लैंक से, और यही वजह है मुश्किलें बढ़ गई है पंजाब के लिए। पंजाब के लिए काफी टफ होगा इस मैच में कमबैक कर पाना। जर्सी नंबर 18 गोलकीपर जो हैं मातिया को लेकर आए हैं, इस समय चेंज किया है। मातिया जा रही है, लेकिन स्विटी डुंगडुंग यहाँ पे इंजेक्शन के लिए बहुत ही तेज तरार और बेहतरीन खिलाड़ी स्विटी डुंगडुंग इस समय इंजेक्ट किया। स्टॉप, स्पीड हल्का सा ट्रैक, बॉल हवा में राइज हुई, गोल बार के ऊपर से खतरा टल गया कुछ पलों के लिए। और देख सकते हैं इस समय जो झारखंड के इस समय सुधीर गोला जो कोच है और मैनेजर विकास पंत, उनका इन्वॉल्वमेंट देखिए गजब का। हॉकी नेशनल में भी मौजूद थे जब हम हरिद्वार में शमीम आलम जी, मयूर जी हम लोग कमेंट्री कर रहे थे डीडी के लिए, वहाँ पे भी इनकी काफ़ी सक्रिय भूमिका देखने को मिली थी। और झारखंड गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। हॉकी झारखंड की भी तारीफ करनी होगी, जहाँ पे लगातार उनके एसोसिएशन के पदाधिकारी विजय सिंह जी और सभी लोग, काफ़ी भोलानाथ सिंह साहब, सभी की बड़ी मेहनत है। और हॉकी इंडिया के एक एक पदाधिकारी जो लगातार हॉकी की विस्तार, बढ़ोतरी, उन्नयन, उसके लगातार डेवलपमेंट के लिए अच्छा कार्य। फिलहाल इस बीच बॉल मिडफील्ड में खेल होता हुआ, इस बीच राइट फ्लैंक से आगे बढ़ने की कोशिश, अच्छे थ्रू पास, बेहतरीन राइट फ्लैंक से इस समय अटैक बिल्ड कर रही हैं। सीता कुमारी मौजूद झारखंड के लिए। स्ट्राइकिंग सर्कल में एक स्लैप शॉट, तेज तर्रार, लेकिन स्ट्राइकिंग सर्कल में किसी भी एक खिलाड़ी ने बॉल को ट्रैप नहीं किया। डिफ्लेक्शन की उम्मीद में इस तरीके के शॉट लिए जाते हैं कि डिफ्लेक्शन के साथ गोल पोस्ट में बॉल जाकर खत्म हो। इसका यह प्रयास इस समय बहुत ही शानदार तरीके से ये मुकाबला 3-1 की बढ़त हॉकी झारखंड के पास। दिलचस्पी मैच देख सकते हैं, धीरे धीरे जीत की सौंधी सौंधी खुशबू अब आने लगी है हॉकी झारखंड को। क्या झारखंड आज इस मुकाबले को जीत कर सेमीफाइनल में अपनी दावेदारी सुनिश्चित करेगी? जर्सी नंबर 13 बॉल के साथ नजर आ रही, इस बीच संगीता कुमारी स्ट्राइकिंग सर्कल में जाने का प्रयास इनके द्वारा। डिफेंस बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी के तहत डिफेंस मैन टू मैन मार्क करके स्पेस नहीं देता हुआ और एक फ्लो टैकल के साथ इस समय क्लियर किया गया। लाल काउंटर अटैक पे पंजाब की टीम में भी काफ़ी बेहतरीन टीम मानी जाती है। जिस तरीके से कप्तान जैसे दीप कौर के नेतृत्व में खेल रही सुखदीप कौर हैं, किरण प्रीत हैं, इस समय रेखी हरमन है, बहुत ही शानदार ये टीम भी। लेकिन अब वक्त निकल रहा धीरे धीरे झारखंड के लिए। बहुत सुनहरा मौका, क्या कहने, जर्सी नंबर 9 रोशनी एंड तेज तर्रार खिलाड़ी, स्किलफुल प्लेयर है इस समय। इस समय लेफ्ट फ्लैंक से इस समय कोशिश उनके द्वारा हुआ था स्ट्राइकिंग सर्कल में, लेकिन डिफेंस लाइन के द्वारा बहुत एंड वक्त पे आया इस समय प्रयास उनका और बॉल को सीधे एंड लाइन से बाहर पहुंचाया झारखंड की टीम। जर्सी नंबर 12 बॉल के साथ अब आखिरी कुछ लम्हों में 1 मिनट से कम का खेल से झारखंड पूरी तरीके से मैच में जीत की तरफ। अब यहाँ पे पंजाब के लिए एक आक्रमण बन सकता है, प्रत्युत्तर देने के लिए कोशिश नवनीत कौर, लेकिन डिफेंस उतनी ही सशक्त, मजबूत और सुदृढ़ इरादों के साथ। झारखंड कई बार जूनियर, सब जूनियर और सीनियर लेवल पे भी हॉकी के पिछले 5-6 सालों का इतिहास उठा के देखे, विमेन्स सेक्शन में झारखंड का डोमिनेशन गजब का रहा है। हरियाणा, पंजाब जैसी टीमों को भी उन्होंने शिकस्त देकर हॉकी के मानचित्र पे एक नई पहचान झारखंड ने स्थापित करी है और कई ओलंपियंस भी दिए हैं झारखंड ने, जिन्होंने भारत का नेतृत्व करके भारत का रुतबा बुलंद किया है। बहुत ही शानदार इस समय खेल की झलक, वक्त धीरे धीरे निकल रहा, हुटर की आवाज कभी भी आ सकती है और मुकाबले में जीत की सौंधी सौंधी खुशबू अब झारखंड के लिए सेमीफाइनल में तीसरी टीम बन जाएगी। हरियाणा और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड यहाँ पे हुटर की आवाज कभी भी आ सकती है। जी हाँ, जीत की खुशी, हुटर की आवाज आ चुकी है। सुधीर गोला कोच काफी संतुष्ट, काफी प्रसन्न, मेहनत रंग लाई है और पंजाब को 3-1 से हरा करके झारखंड सेमीफाइनल में दस्तक दे रही है।
बहुत शानदार खेले, अच्छा गेम प्लान, स्ट्रैटेजी बड़ी कमाल की अपनाई। कप्तान ने जिस तरीके से, कप्तान रजनी करकेट्टा बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, नेशनल गेम्स भी खेल चुकी हैं। पिछले मैच में 2 गोल करके आई थी रजनी करकेट्टा। रोशनी एंड ने 1 गोल किया, पिछले मैच में भी इनके द्वारा 1 गोल था, और आज भी अपनी बहुत ही मेन बेसिक्स पे खेले, बॉल पोजीशंस अपने पास रखी, अच्छे अटैक्स बिल्ड किए, डिफेंस को बहुत शानदार तरीके से, खास करके जो 23 मीटर की रेखा है वहां पे डिफेंस को बहुत सुदृढ़ रखा, मिडफील्ड का बैटल जीता, जो हॉकी में बहुत इंपॉर्टेंट है मिडफील्ड, और वहां पे अच्छी बॉल सप्लाई की विंगर्स ने, और परिणाम इनके पक्ष में। तो ये हैं आज के तीसरे अगर क्वार्टर फाइनल में झारखंड की टीम ने जीत अर्जित की है 3-1 से। ये बताते हुए मैं विकास कुमार अपने साथी मयूर बरुआ जी, शमीम आलम जी और पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे कुछ पल के लिए हम अनुमति लेते हैं। एक और चौथे क्वार्टर फाइनल्स का बड़ा मैच आना बाकी है, जुड़े रहिए हमारे साथ, उस मैच का भी लाइव एक्शन लेकर हम वापस आपके पास लौट रहे हैं। मैं विकास, शमीम आलम जी और मयूर जी के साथ, बहुत बहुत थैंक्स आप सब व्यूअर्स का। Income Tax Department of Guntur District, GD Suresh Babu, Nellore District, presenting Player of the Match Award
to Rajini Kerketa, captain of Hockey Jharkhand. Congratulations. Thank you, Shri Ajay Kumar and Suresh Babuji for having been with us and presenting an award with the player of the match. Congratulations, Rajini Kerketa, captain of Hockey Jharkhand.
We umpires on the field, Agnish and Shweta. Both the teams with due respect as per the protocol. Entering the field, I request Sri Harshvardhan, General Secretary, Hockey Andhra Pradesh, to escort the guests to be introduced both the teams. Guests are none other than Sri P. Nagababu, who is the pillar and main person of conducting this 15th Hockey India Junior Women National Championship 2025 at Kakinada. He is the main person. He stood like a pillar for all the days, making this tournament by providing very best possibilities. Along with him we have B. Manibabu. They spent their valuable time staying with us. Now, national anthem will be played. I request everybody to stand up to honor our national anthem, please. Thank you, Sri P. Nagababu Garu, Joint Secretary, West Godavari District. आपका बहुत-बहुत योगदान. Good afternoon, hello, and a very warm welcome to everyone who is joining us for the broadcast of this last quarter final of this 15th Hockey India Junior Women National Championship 2025. We're coming all the way from Kakinada in the state of Andhra Pradesh. Behind the mic, I'm your host commentator in English, Mayur Barwa, and in some time I'll be joined along by my other commentary panelists, Mr. Vikas Kumar and Mr. Shamim Alam. So this match is going to be Maharashtra. We're up against Hockey Uttar Pradesh. We already had 3 interesting games, including one between Madhya Pradesh and Chhattisgarh going into the penalty shootout, and it was Chhattisgarh who edged over to get their name in the semi-final. And then it was first up Haryana who went into the semi-final. In the last match it was Jharkhand who went into the semi-finals. So now we have to see who of these teams, whether it's going to be Maharashtra or it's going to be Uttar Pradesh. So Uttar means answer, so can they answer it? And with the blow of the whistle, it's the pushback which has started off here in this match here in quarter number 1 of this 4th quarterfinal. The crowd is also slowly building up. In the morning it was very sunny, and now it's completely opposite. It's got little gloomy, and I think the wind also has started picking up, so it will give some reprise probably from the heat coming out. But again, the focus has to be on hockey. It's been all in all through been a brilliant championship. It started off on the 1st of August, and now we'll be finishing on the 12th of August. Quarterfinals day, semi-finals day tomorrow, and then we'll be having a rest day. Then on the 12th we'll be playing the grand finale. As the ball has been scooped up from Uttar Pradesh, into the corner the ball goes inside some drops. Will be coming in. It will be a freebie for Maharashtra. They are playing in the orange avatar, and in Uttar Pradesh playing in all blue. So it'll be good to see how this goes. Not very attacking at the moment. The ball is just square. It's right at the corner. It's flapping through. That's the number 2. That's Madhu. The goalkeeper for Uttar Pradesh for today's match is Anju Yadav. Retains the same position. The captain is Sunita Kumari. And the coach is Akram Mahmood. The team manager is Miss Shushma Kumari. And for Hockey Maharashtra, the goalkeeper is Sanju Sahi. The captain is Tanushri Dinesh Kadu.
The coach is Vaishali Laxman Sool, and the team manager is Ms. Sagar Singh. The umpires for today's match, the match officials, Ms. S. Sweta and Miss J. Agnes. The reserve umpire is Miss Baby for this match. So those are the teams and the match officials for this match. The last match, the quarter-final number 4, Maharashtra versus Uttar Pradesh. In the orange Maharashtra, in the blue Uttar Pradesh, right at the center from the corner, trying to squeeze it out by the forwards there from the left. And it's a cry for a foul play. Very much corner wise they're playing. We haven't seen the action as 2.5 minutes has gone by. Not very centric at the moment. It's a nice aerial again going on to Vandana Patel. I have to put up the statistics for you for Maharashtra. Top of the ladder is Sanjana Raikwar with 2 goals and both 2 field goals. Sanika Chandrakat Mane again with 2 goals, both are field goals. Then Sanjana Desya with 1 goal, and then Tanushree, the captain, with a goal, and then Dikshita Nitin with a goal also. Maharashtra 2-1 versus Orissa, 5-1 versus Andhra Pradesh. That's how they started off the campaign before coming into the quarterfinals. And for Uttar Pradesh, they drew both the match 1-1 versus Haryana and again 1-1 versus Bengal. That's how they made and cemented their place in the quarterfinal. So for Uttar Pradesh, Pritambari had 1 goal and Rashmi Patel 1 goal. So those are the statistics before the match came in. Yet to score a goal, 0-0. Still inside the first quarter. Exactly all the Nelson remaining, 11-11 into the strike. Some bit of an injury concern for the player from Uttar Pradesh. Scoreline still at 0-0, 9 minutes remaining. We are sometimes getting a little frustrated also of how this actually goes on. But the teams will just try and head off to get some early honors on the ball. As this ball, it has been played squarely along the surface, with the Pradesh going ahead from the right to the left. That's where they are going to score. It's a lovely aerial pass to Vandana Patel, yet to have any goals in her kitty in this championship. And it has been an almost good pass to Sanjana Raikwar. As I mentioned before, Sanjana Raikwar for Maharashtra, sitting right at the top with 2 field goals to her kitty, followed by Sanika Chandrakan Mane. She's also playing today. Josie number 4, Dinesh Kadu, Tanushree, the captain, has 1 goal to her name. And this is the Uttar Pradesh captain having no goals at the moment. But again, if you put your eyes to Tanushree, Diksha Nitin, they've all collectively have 1 goals each. Diksha Nitin, Shinde. So those are very important there in the midfield and the forwards category for Maharashtra at the moment. It's still quarter number 1, and you can also see how the wind has picked up. That will only create some advantages position, not about the swinging or the seam. But again, it's always good to be in such condition where you can think very much ahead. 7.5 minutes remaining in this quarter number 1. We're watching the 4th quarterfinal of the 15th Hockey India Junior Women National Championship 2025, all the way from Kakinada in the state of Andhra Pradesh. And doing very well, Uttar Pradesh now putting the tempo. It's Rashmi Patel with the ball, almost inside the striking circle, trying to douse the fire from 3 of the defenses from Maharashtra, but couldn't struggle to enough as the ball goes squarely out of bounds. Again, getting inside the striking circle, Uttar Pradesh makes a very good counter attack there. The swamping of orange armies, in fact 5 of them from Maharashtra.
They knows, and look at how quickly the time went. 8.5 minutes just gone by. Just a blink of an eye. It's so quick, isn't it? In between, you also had a technical glitch. But again, time is such a paramount importance. It is one of the strongest factors, isn't it? And especially when it's a ticket for the semi-finals. It's Maharashtra trying to go and put it. This is lovely pass. This is from the left flank. Can she go for a reverse angle for a tomahawk? No, she can't. But she also gets a good reverse pass. She's circling the ball all the way through, but will only find a stick of her opposition. Frustration creeps up so quickly, but Maharashtra regroups, sees the better portion of the ball, gives a lovely aerial pass towards the farthest right corner, inside the striking circle, have to breach through two of the defenses. Can she do it? Oh, Uttar Pradesh again gets a hold of the ball. It goes out very quickly. So some dramatic passes of play in this last 1 minute or so. And suddenly that's what hockey does for you. Suddenly there will be a surge of energy, and suddenly you'll see so much of commotion happening. And in terms of it, and it's also not the league phase. As you look at Miss Vaishali Laxman Sul, the coach of Maharashtra, along with her standing is the team manager Sagar Singh. At the moment, both of them can relax. 0-0. Again, today we have seen how close the Madhya Pradesh versus Chhattisgarh's match was, and eventually it might just be a fair call to say how Chhattisgarh just at the end fared today. Sometimes it's also about how frustration just pulls you little down. You don't feel the whole facets into your own self. And that's what the Maharashtra and Uttar Pradesh yet to open the scoreline as they go into quarter number 2. They'll also feel that for sure. So that might be a dug down. Let's see. And that will be evenly put out. Let's see, little slow going at the moment in terms of what quarterfinal number 4 probably will have hold up. So, and you can see we've been playing too much on the corners. We haven't had a single penalty corner as of now. That's very interesting because the previous three matches, it did give you some tension in the air, isn't it? Both the teams getting those penalty corners. In fact, interestingly, that match, Madhya Pradesh versus Chhattisgarh, the first quarter had 1-1, then into the second quarter 1-1, quarter number 3 1-1, quarter number 4 1-1, and then penalty shootout. Chhattisgarh just gets the better. So it can go otherwise if you're in such a tight competition, getting yourself interlocked, and that only increases the irritation so much, isn't it? As you try to break the bondage, you want to get right between the defenses, but you couldn't get that. It only leads up to so much of trauma in your mind, and eventually to lose it by a penalty shootout is something that you are not hoping for coming into a big day like a quarterfinal. One of the players just falls out. She's searching something from her back, and it's a green card. That's what she was searching for. So one of the players from Uttar Pradesh couldn't find out who she is, but she had to warm the benches for a while. So now Uttar Pradesh are playing with 10 players, 9 on the field, 1 goalkeeper. Thanks to that suspension, owing to that suspension, I would say, of that player. 2.5 minutes for the first quarter to end in this 4th quarter final of this 15th Hockey India Junior Women National Championship 2025. Don't forget to download the mobile application of Hockey India and get right in the action, because everything is there. It's been drilled. It's specially designed for you
So don't forget different tournaments coming up. You don't want to miss any action, isn't it? So don't forget to put on the notification button also. And also you can visit the website www.hockeyindia.org for all the complete information. We also like to thank everyone for the 100 glorious years of Hockey India, the organizing committee, the office bearers, the past, present, and the future stars who have helped everyone to get into it. Of course, the commentary panels who have been involved over the years to bring all the voices across different formats with the boys, girls, man, woman categories. So it's a huge fraternity, the hockey. But it will not be complete if we don't thank our Sports Authority of India, the Ministry of Youth Affairs and Sports, and also the host association, the Hockey Association of Andhra Pradesh, for their such a wonderful work in getting this championship in such a successful venture in this 15th edition. And we'll be hoping as the editions keep on increasing, there's more and more flavor coming in, and more of the girls picking up the sport, and all those pictures will only add to the more valuation of hockey in India and to shine at the global level. At the moment, just seconds remaining, less than 30 seconds remaining in quarter number 1, and no goals being scored at the moment. Both the teams staring at 0-0. Such a great venue as the sun also slightly comes in this late afternoon, trying to peep out of what action is happening. Right at the center, Maharashtra just gives a nice pass, but just a second remaining before the blow of the hooter. And there we go, the hooter comes in, and that will blow up much of the needed, probably the sanctity, I would say, because both the squads were little getting agitated, because none of them have been able to open up the encounter, and there's not been a single penalty corner. So I don't know how much it's a blessing or disguise or anything. But going into the second quarter, it will be our senior most commentator. I'm sure the many of you who have been waiting to hear. He is none other than Mr. Shamim Alam. Welcome, sir. बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया मयूर जी। बहुत ही शानदार कमेंट्री आप तक पहुंच रही है। शहीन साहब बाद में जुड़ेंगे, और मैं हूं विकास आपके साथ कमेंट्री बॉक्स में। बहुत तहे दिल से आप सभी का बहुत वेलकम। बहुत ही शानदार तरीके से ये खेल का कारवां इस समय आगे बढ़ता हुआ, पहला क्वार्टर खत्म हुआ है और फर्स्ट क्वार्टर की समाप्ति के बाद 0-0 स्कोर लाइन इस वक्त है। महाराष्ट्र की टीम की जहां तक ताल्लुक है, महाराष्ट्र ने एक मुकाबला उड़ीसा को हरा कर आई है, जहां 2-1 से जीत की थी महाराष्ट्र ने। वहां पे तनुश्री काड़ू और दीक्षा शिंदे ने गोल किया था। दूसरा मुकाबला आंध्र प्रदेश को उन्होंने 5-1 से हराया था लीग स्टेज में, जहां पे संजना रायकवार के 2 गोल, सानिका माने के 2 गोल और 1 गोल था संजना, एक और 2 खिलाड़ी इस नेम से। फिलहाल वहीं पे यूपी का जहां तक ताल्लुक है, यूपी इस वक्त ब्लू और येलो जूसी में है। शोल अपने नियंत्रण में लेकर के अटैक बिल्ड करने की वापस से समय महाराष्ट्र के लिए। इस समय बॉल देखें, यहाँ बॉल कंट्रोल नजर आ, जैसे नंबर 11 तरुण श्री दिनेश काड़ू टीम के कैप्टन हैं, गोल कर चुके हैं लीग स्टेज में। बहुत ही शानदार तरीके से महाराष्ट्र के हाथ में खेल होता हुआ खूबसूरती के साथ इस समय हम धन्यवाद देते हैं एमसी का, उड़ीसा गवर्नमेंट का, हॉकी इंडिया के 100 ईयर्स जो पूरे हुए हैं। लेगेसी है भारत की हॉकी की गजब की, और बढ़िया तरीके से गेम प्लान है उनका। जर्सी नंबर 4 टीम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। जर्सी नंबर 8 दूसरी तरफ अगर देखें, कोशिश होती थी। शानदार तरीके से ये मुकाबला इस बीच जारी। जी लगातार आपके साथ लाइव एक्शन या मुकाबलों का लेकर के हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ एक्शन जो आप तक पहुंच रहा है। सेकंड क्वार्टर का खेल जारी इस समय, लेकिन कोचों में कोशिश होती हुई इस समय देखना होगा। महाराष्ट्र के हाथ में खेल होता हुआ, प्री हिट का मौका अब इस समय प्री हिट लेने के लिए पुश किया खूबसूरती के साथ
इस समय यूपी के खिलाड़ी नहीं, यूपी के लिए जर्सी नंबर 2 बॉल के साथ इस समय देखना होगा क्या रणनीति रहती है उनकी। बहुत ही अच्छी कोशिश यहाँ पे होती हुई, दिलचस्पी मुकाबला इस समय। इस बार राइट फ्लैंक से अच्छा थ्रू पास देखना होगा जर्सी नंबर 4 महाराष्ट्र के लिए। तेज तर्रार फॉरवर्ड लाइन और मिडफील्ड में सानिका चंद्रकांत माने मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे मधु और विभा जैसे प्लेयर, रिति पटेल यूपी के लिए, और कैप्टन ने सुनीता कुमारी, खुशी उपाध्याय जैसे खिलाड़ी। फिलहाल देखना होगा यूपी के लिए अपनी उम्मीदें आशाएं बढ़ाने की कोशिश। जर्सी नंबर 10 यूपी के लिए से रिएक्शन देखिए उनका, वंदना पटेल, लेकिन यहाँ जर्सी नंबर 5 महाराष्ट्र के लिए बॉल पे निकू गुर्जर महाराष्ट्र के लिए। कोशिश उनके द्वारा अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया स्ट्राइकिंग सर्कल के पास, वहाँ मौजूद है इस समय सामिया ताहिर। कोशिश देखना होगा राइट जर्सी नंबर 8 बॉल के साथ इस समय विनायक कोलापे, गौरी ने बॉल को लिया, लेकिन इस बीच बहुत क्विक आकर के मधु यूपी के लिए बॉल खेल उनके द्वारा। यूपी ने 2 मुकाबले खेले हैं, 2 ड्रॉ के साथ आई है, जहां पे उन्होंने एक ड्रॉ हरियाणा के खिलाफ खेला था और एक बंगाल के खिलाफ क्वार्टर फाइनल्स के इस बड़े मुकाबले में। देखना होगा इस समय रणनीति क्या रहती है। जर्सी नंबर 7 बॉल के साथ इस समय संजना खेतवाट 1 गोल कर चुकी हैं संजना खेतवाट। तो शुरुआती अगर बात करें कुछ में देखना होगा इस समय, इस मैच से पहले की बात करें। फिलहाल तेज तर्रार हॉकी, क्या कहने, यूपी के लिए अटैक, बहुत ही खूबसूरती के साथ बॉल लेकर आगे बढ़ रही है वंदना पटेल ने साथी खिलाड़ी को दिया इस बीच। इस समय पीतम्बरी कुमारी पहले गोल कर चुकी है इस मैच से पहले बंगाल के खिलाफ। एक खिलाड़ी डाउन हुई है, अंपायर वहां पर पहुंचती हुई सुषमा कुमार। बात करें इस समय अंपायर जो है एस श्वेता और उनके साथ है जे अग्नेश। देख सकते हैं ये रफ्तार, गजब की गति, ये है इस समय जर्सी नंबर 10 वंदना पटेल। पीछे से उन्हें रोकने का प्रयास, देख सकते हैं 23 मीटर रेखा, और वहां पे शरीर से जिस तरीके से वहां पे थोड़ी सी धक्का देने का प्रयास किया। जर्सी नंबर 8 बॉल को लेकर आगे बढ़ रही थी पीताम्बरी कुमारी, उनके द्वारा ये कोशिश स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर जाने का प्रयास हुआ इस समय। बेहतरीन ये मुकाबला यकीनन तौर पे काफ़ी इंटरेस्टिंग ये बैटल नजर आता हुआ। खूबसूरत हॉकी दूसरे क्वार्टर का, लाजवाब तरीके से ये मुकाबला अभी तक के घटित हो रहा है। 9 मिनट के आसपास का खेल से इस दूसरे क्वार्टर में बहुत ही शानदार तरीके से हॉकी देखने को मिल रही है। और महाराष्ट्र की टीम इस समय राइट फ्लैंक से आगे बढ़ती हुई, जर्सी नंबर 6 बॉल के साथ इस समय शयमा ताहिर महाराष्ट्र के लिए। दोनों ही अंपायर इस समय देखे जी अग्नीश और साथ में है एस श्वेता अंपायरिंग की भूमिका में। वही यूपी के हाफ में खेल होता हुआ यूपी के लिए खिलाड़ी इस समय प्रीति पटेल बॉल लेकर के जर्सी नंबर 16 को दिया उन्होंने। जर्सी नंबर 16 और एक और खिलाड़ी इस समय बात करें जा रही हैं सालू इस समय जर्सी नंबर 15 इस मैदान में अपनी खेल दिखाने के लिए। शानदार तरीके से ये मुकाबला इस समय घटित हो रहा, खूबसूरत रोमांच के बीच। जर्सी नंबर 7 बॉल को लेकर आगे बढ़ती हुई इस बीच, जहाँ पे सुनीता कुमारी टीम के कैप्टन, सुनीता राइट फ्लैंक से, बहुत अच्छी सोच यहाँ पे। हम थैंकफुल हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, इंडियन ऑयल का, साथ ही साथ काकीनाडा जो ऑर्गेनाइजिंग अगर बात करें से हमारे जो एसोसिएशन है हॉकी आंध्र प्रदेश का और हॉकी इंडिया का स्पेशली, बहुत धन्यवाद देते हैं दिलीप तिर्की सर, भोलानाथ सिंह सर, साथ ही साथ शेखर जी मनोहरन सर, सभी एसोसिएशन के पदाधिकारी जो हॉकी के डेवलपमेंट के लिए लगातार प्रतिबद्ध हैं। इस बीच देखना होगा, इस बीच सालू बॉल को लेकर के यूपी के लिए फुल लेंथ टाइप किया, स्ट्रेच करके वहां पे बॉल कंट्रोल करने का प्रयास। महाराष्ट्र के खिलाड़ी बॉल को क्लियर करने की कोशिश यहाँ पे उनके द्वारा होती हुई। बॉल चली गई साइड लाइन से बाहर, हिटिंग लेते हुए साइड लाइन से, और बहुत ही शानदार तरीके से समय जर्सी नंबर 3 देखना होगा इस समय बीभा उत्तर प्रदेश के लिए। महाराष्ट्र की टीम मैन टू मैन मार्क करके बिल्कुल स्पेस नहीं दे रही है महाराष्ट्र, बहुत अच्छी सोच उनके द्वारा, जगह नहीं दे रही यहाँ पे, और एक बहुत ही व्यवस्थित और बढ़िया सोच यहाँ पे नजर आती हुई। शानदार तरीके से ये मुकाबला इस समय देखने को मिलता हुआ, बढ़िया तालमेल, अच्छी स्किल, बेहतरीन इस समय लिंकअप प्ले, जाहिर रखिएगा स्किलफुल हॉकी नजर आती है दोनों टीमों में। काफ़ी अच्छी टीमें हैं महाराष्ट्र और यूपी। फिलहाल बीभा यूपी के लिए मिडफील्ड में देखना होगा रणनीति क्या रहती है। यहाँ पे बॉल कंट्रोल करने की कोशिश,
रणनीतियाँ किस तरीके से इस समय कारगर रह पाएगी। फिलहाल इस पीछे कंट्रोल या जर्सी नंबर अगर बात करें इस समय महाराष्ट्र के हाफ में खेल होता हुआ निक्कू गुर्जर जैसे डिफेंस लाइन के प्लेयर हैं। सानिका चंद्रकांत मान है, ज़रूरत पड़ने पे ऑल हॉकी का ज़माना है। और देखिए इस समय निक्की गुर्जर ने इस समय बॉल को पास किया लेफ्ट फ्लैंक से, लगातार इस बीच कोशिश। तो सारंची का भी हम धन्यवाद देते हैं। फिलहाल देखना होगा इस समय राइट फ्लैंक से स्लैप शॉट, अटैक बिल्ड करने का प्रयास इस समय होता हुआ, जहाँ पे दीक्षा नितिन शिंदे मौजूद है। इस टीम के खिलाड़ी मिडफील्ड में बहुत ही गजब का संघर्ष देखने को मिलता हुआ। इस बीच यूपी राइट फ्लैंक से आगे बढ़ने का प्रयास, यहाँ पे एक आक्रमण बनाने की कोशिश, सैनिका चंद्रकांत माने वहाँ पे इंटरसेप्ट करने का प्रयास उनके द्वारा हो रहा है। कोमल पाल राइट फ्लैंक से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। बहुत ही दिलचस्प ये मुकाबला, दूसरे क्वार्टर का अभी गोल नहीं हुए, दोनों सशक्त टीमें हैं और अभी तक दोनों का सफर भी देखें। महाराष्ट्र ने 2 मैच खेले हैं, 7 गोल किए हैं और इनके अगेंस्ट सिर्फ 2 गोल लगे हैं। वहीं पे यूपी की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिफेंस मानी जाती है। 2 मुकाबले खेले हैं, सिर्फ 2 गोल किए हैं और इनके अगेंस्ट भी सिर्फ 2 ही गोल लगे, यानी कि इनके खिलाफ भी 2 गोल। यानी कि इसी से अंदाज़ा लगाएं कि मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है इस समय। हमारा कमेंट्री पैनल विकास कुमार, मैं आप तक लाइव एक्शन पहुंचा रहा हूँ। हमारे साथी मयूर बरुआ जी और शमीम आलम सर हमारे सीनियर कमेंटेटर, और बहुत ही शानदार तरीके से समय बैक पास किया। जर्सी नंबर 16 बॉल के साथ इस समय आगे बढ़ने का प्रयास यूपी के लिए इस समय नजर आ रही है। नौरूप कौर ने कोशिश किया इस रीच, बहुत ही शानदार तरीके से स्ट्राइकिंग सर्कल के नजदीक पहुंचे हैं। डिफेंस का यहाँ पे जरूर यहाँ मुश्किलें थोड़ी सी, डिफेंस बहुत ही काम कूल कंपोज होकर के महाराष्ट्र का फ्लो टैकल और अच्छी स्ट्रैटेजी के तहत इस समय डिफेंस प्रति उत्तर देता हुआ। एक बार फिर से देखना होगा राइट फ्लैंक से महाराष्ट्र के खिलाड़ी, लेकिन बॉल को इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया जैसे नंबर 11 में लकी कुमारी यूपी के लिए। लकी के साथ साथ बीभा एक अहम खिलाड़ी है, देखना होगा बीभा ने साथी खिलाड़ी को दिया जर्सी नंबर 10 वंदना पटेल, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी जर्सी नंबर 10। और यहाँ मांग की जा रही थी इस समय, लेकिन बॉल पोजीशन दिया गया है महाराष्ट्र को। फ्री हिट का मौका महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के ही हाफ में रॉकेट लाइन के आसपास से फ्री हिट लेती हुई लेफ्ट फ्लैंक से। देखना होगा अटैक बिल्ड करने का प्रयास। इंडियन ऑयल का हम धन्यवाद देते हैं, हॉकी इंडिया का, काकीनाडा कोस्टल स्पोर्ट्स का, जो हमारे हॉकी एसोसिएशन के सभी बात करेंगे एसोसिएशन के पदाधिकारियों का, जिनका सपोर्ट हॉकी इंडिया के ऑफिशियल्स, पूरी टीम। लकी कुमारी इस समय यूपी के लिए बॉल लेकर के, यूपी की जो कोच है अगर बात करें इस मुकाबले में मोहम्मद अकरम और टीम मैनेजर है सुषमा कुमारी। वहीं पे दूसरी तरफ देखें महाराष्ट्र के जो कोच है वैशाली लक्ष्मण सूल और सागर सिंह मैनेजर, काफ़ी अनुभवी हैं ये भी दोनों ही, और बहुत ही शानदार हॉकी देखने को मिलेगी। फिलहाल देखना होगा इस बीच महाराष्ट्र के डिफेंस पे जरूर यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से इस समय खतरा मंडराने की कोशिश। यूपी की टीम 23 मीटर रेखा के पास किया साथी खिलाड़ी को, जर्सी नंबर 12 वहाँ अटैक कर रही हैं दिशा नितिन शिंदे। बॉल को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास उनके द्वारा, राइट फ्लैंक से अटैक बिल्ड हो रहा है। और आने वाले भविष्य में हम FIH मेंस जूनियर बात करें वर्ल्ड कप की भी मेज़बानी इंडिया में देखेंगे, और उससे पहले हॉकी एशिया कप की मेज़बानी भी इंडिया करने वाला है। हॉकी के लिए बहुत ही शानदार, और भारतीय हॉकी जो पूरी दुनिया में भारत की हॉकी की ख्याति रही है, लेगेसी रही है। कोच है इस समय वैशाली लक्ष्मण सूल, और उनके साथ जो मैनेजर नज़र आ रहे हैं इस वक्त जो सागर सिंह और वैशाली लक्ष्मण सूल नजर आते हुए। रिएक्शन इनका देखिए, इन्वॉल्वमेंट देखिए कितना। ये है महाराष्ट्र के कोच पंजाबी हॉकी इंडिया। बात करें इस समय जूनियर विमेंस नेशनल काकीनाडा का खूबसूरत मेजबानी, 1 से 12 अगस्त के बीच ये चलने वाला कारवां। आखिरी क्वार्टर फाइनल का इंपॉर्टेंट ये मैच देखने को मिल रहा है। जैसे नंबर 3 पास किया बीभा ने साथी खिलाड़ी के लिए मधु राइट फ्लैंक से, काफी अच्छा अगर बात करें उनके द्वारा रणनीति अपनाई जा रही है, राइट फ्लैंक से आगे बढ़ने की कोशिश होती हुई बेहतरीन तरीके से ये मुकाबला। दूसरा क्वार्टर भी धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। यूपी के हाफ में खेल होता हुआ खिलाड़ी जरूर इंटरसेप्ट करने का प्रयास महाराष्ट्र के प्लेयर के द्वारा। जैसे मटू बॉल के साथ महाराष्ट्र के प्लेयर इस वक्त संजना रैकवार काफी तेज तरार प्लेयर मानी जाती है। संजना रैकवार इनके कंधों पे अब दारोमदार रहेगी।
फिलहाल ये मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है, यकीन नज़र काफ़ी महत्वपूर्ण। यूपी की टीम शॉर्ट पासेस को विलाय कर रही, अच्छे तरीके से अटैक बिल्ड करने की सोच के साथ यूपी के ही हाफ में खेल होता हुआ स्पीच और जर्सी नंबर 3 बॉल के साथ लगातार विभा, लेकिन इस बार कंट्रोल करने का प्रयास। ये है इस समय महाराष्ट्र का बेंच तो थोड़े से चिंतित, और देख सकते हैं इतना आसान नहीं होगा यहाँ पे। दोनों टीमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जर्सी नंबर 3 बॉल के साथ स्पीच है। रणनीति क्या रहेगी? बैक पास किया अपने साथी खिलाड़ी को, यूपी के हाफ में खेल होता हुआ राइट फ्लैंक से छोटा सा पास के साथ समानांतर पास और स्पीच देखना होगा। राइट फ्लैंक से आगे बढ़ने की कोशिश, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला। ये है कोच अकरम मोहम्मद जो कि कोच हैं इस वक्त यूपी के। अकरम मोहम्मद और उनके साथ मौजूद हैं इस समय जो इस टीम के मैनेजर हैं, इनकी भी भूमिका काफ़ी है। सुषमा कुमारी काफ़ी एक्टिव, दोनों ही कोचेस और मैनेजर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, इनके रिएक्शन देख सकते हैं आप इनका। मैच की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, कितना महत्वपूर्ण ये मुकाबला है। इतना हुआ इस बीच शानदार ये मुकाबला इस समय देखने को मिलता हुआ, खूबसूरत रोमांच के बीच ये मैच इस समय आगे बढ़ने की कोशिश। जर्सी नंबर 12 इस समय महाराष्ट्र के लिए प्रयास इस समय काफ़ी बेहतर। महाराष्ट्र के खिलाड़ी जर्सी नंबर 7 जहाँ पे नजर आ रही समय संजना खेतवाद लीग स्टेज में गोल कर चुकी हैं। ये आगे बढ़ने का प्रयास उनके द्वारा होता हुआ। जर्सी नंबर 14 को बॉल दिया इस समय पुष्पांजलि सोनकर महाराष्ट्र के लिए, लेकिन वक्त धीरे धीरे निकल रहा है दूसरा क्वार्टर भी समाप्ति की तरफ। एम ग्रीन का, OMC, साथ ही साथ दिशा, सभी हम अपने सहयोगियों का बहुत थैंकफुल हैं। और सपोर्टर्स फिलहाल जर्सी नंबर 3 बॉल के साथ इस समय विभा उत्तर प्रदेश के हाफ में, विभा ने साथी खिलाड़ी मधु को दिया। दोनों ही बात करें तेज तर्रार खिलाड़ी हैं, लेकिन इस वक्त कुचे की आवाज। दूसरे क्वार्टर की समाप्ति हुई है। दूसरे क्वार्टर की समाप्ति के बाद स्कोर लाइन अभी भी 0-0 और शानदार हॉकी दिखा रही है। भले गोल न मिला हो, लेकिन एक्शन, क्वालिटी, स्किल कोई कमी नहीं है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी। अगर देखें दोनों टीमें 2-2 मुकाबले जीत कर हार कर, और जीत अलग विषय है। महाराष्ट्र 2 मुकाबले जीत कर आई है, वहीं जो यूपी की टीम है 2 मुकाबले अपने ड्रॉ करके आई है। 1-1 गोल किया था हरियाणा के खिलाफ और बंगाल के खिलाफ 1-1 की बराबरी रहा था, जिसमें रश्मि पटेल और पीतम्बरा कुमारी ने गोल किए थे। इसके अलावा अगर देखें आंध्र प्रदेश के खिलाफ 5-1 से जीत की थी महाराष्ट्र ने। संजना रायकवाड़ के 2 गोल, सानिका माने के 2 और संजना खेतवाटी के 1 गोल था। वहीं महाराष्ट्र ने जीत की थी उड़ीसा के खिलाफ 2-1 से। आप देख सकते हैं हॉकी इंडिया के ऑफिसर्स और सभी आए हुए डिग्नेटरीज भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं मैच का आनंद लेते हुए। बहुत बहुत थैंक्स। कमेंट्री बॉक्स में विकास, हमारे साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ, वेल नॉन इंग्लिश के कमेंटेटर मयूर जी को जैसे ही तीसरे क्वार्टर
कन्नू भाई आवाज आ रही है? कन्नू भाई, कन्नू भाई आवाज आ रही है क्या? कन्नू भाई आवाज आ रही है? कन्नू भाई, Haryana, Chhattisgarh, and Jharkhand already have stormed and stepped up the gas today. And with Chhattisgarh winning versus Madhya Pradesh by penalty shootout. What a match that was, isn't it? Topsy-turvy, like a tug of war. That match kept on going from inching from here and the other. And more than the players, it was good to see the frustration at the coaches. As a cameraman, did really a wonderful job. Sometimes they were saying, "Okay, we see ourselves in the on the giant screen, which has been erected in the venue." And so you can see it's all in all, it's been such a wonderful coverage, isn't it? You can watch all this action on the YouTube channel of Hockey India. You can log on to www.hockeyindia.org. You can use the hashtag #IndiaGame and also download the mobile application of Hockey India to get right behind all the action as Maharashtra presses for some action inside the striking circle. Now they will be pressing from right to left of your picture for the attack. And Uttar Pradesh, the girls in blue from the left to the right of your picture. That's for quarter number 3 and 4. These last 2 quarters for this last of this championship of this knockouts phase starting today. There'll be going to be some contests, isn't it, in the semi-finals? It'll be so good to see. We'll be locking against each other. We'll be merging there, victorious. We'll be there in the finals, isn't it? I'm sure there'll be so many people coming inside this venue, and we'll be also seeing, I'm sure, our dignitaries gracing the occasion. So me, Mr. Shami Malam, Mr. Vikas Kumar, we've already mentioned about Mr. Dilip Tirki, the president of Hockey India, and also Mr. Bholanath Singh Ji, Secretary General of Hockey India. They've been also part of this historic journey as India surge ahead to be one of the competitive nations in Hockey India, celebrating 100 years of glorious chapter of Hockey India. At the moment, some questions being asked to the umpire. They are some umpires for today's match, J. Agnesh and Miss S. Sweta. The reserve umpire is Miss Baby. Goalkeepers for Uttar Pradesh is Anju Yadav, the captain Sunita Kumari, who also has goals to her name. And the coach is Akram Mahmood. The team manager is Miss Sushma Kumari. And for Hockey Maharashtra, the goalkeeper is Sanju Sahi. The captain Tanushri Dinesh Kadu. No goals for her. Just one goal, beg your pardon. One goal for Tanushri. Penalty corner. As I mentioned about goals, penalty corner has been signaled by the umpire. Look where the infringement has happened. Maharashtra trying to shoot at Glory and bangs it across the surface. Gully just gets it going from the corner, trying to stoop up the gas. Back to back behind. There you go. Yep, there you go. That was one moment that the umpire just keeps on looking where it is, and as you see, they're trying to take out the ball, they're squeezing it out. The Maharashtra player falls down, so all ready for injection for the penalty corner. Here it comes. Stops, drags it strongly. But again, the penalty corner remains, says it has come out from the booth. That's what she is mentioning. So it will remain as a penalty corner. Maharashtra getting strikingly close. No one has opened their scoring account at the moment as yet, and trying to flash it as strongly as possible. It was from Akansha Pal. An injection came. It can be very dreadful.
Because whoever gets it gets the honors to cement the name. It was from number 11. It was the captain Tanushri Dinesh Kadu. This time was going for the huge drag with the. You can see the frustration clearly on the face of the coach Vaishali Laxman Sool and also team manager Sagar Singh. She just could open her eyes to say, "Oh my goodness, what it is! Look at that far cry! Look at those lungs coming out of the face. The frustration is writ on the face. And why not? Been 2 quarters gone 0-0, and now they've got the chance for a penalty corner, and they've not been able to convert. Absolute frustration. Not the best of the times to look at the management, to look at the coach or the team manager. We are going to have some hard looks. The eyes will crumble. The eyes will keep on rotating, isn't it? Here comes that Dikshani Tinchinde trying to get with the ball in the forwards from behind Shidi Gawali. Initially a substitute, 9 the playing 11 inside the field of play. Almost trying to get inside the striking circle. We'll have to go back to this original place or more towards the center line or the back there. Score line 11.5 minutes remaining into quarter number 3, and we still haven't seen any goals being scored. I don't know whether it's fierce competition or is it sheer luck or is just that it's not happening from somewhere, or do both the teams feel so much of pressure that it's actually not been getting mitigated to any goals. Frustration galore. And if you look at the previous league matches where you had huge goals coming in, isn't it? If you get the scores of 4-1, 6-1, 7-1, 7-0, 5-0, 5-0, 7-1, 3-1, 11-0, Uttarakhand versus Leh Puducherry, a draw for Delhi versus Tamil Nadu, 3-3. But it's been some very close games, 1-1, 1-1, been 2-2. But this quarterfinals has really outshone some different decibels of hockey at the moment. And who would have thought? I'm sure there have been many betting on Madhya Pradesh going ahead, but surprisingly Chhattisgarh, an absolute great show on the penalty shootout, have gone into the semi-finals. Waiting for the TV umpire to draft into the eardrums of our dear umpire. At the moment, 9.5 minutes remaining in this quarter number 3 of the 4th quarterfinal. The score remains 0-0, Maharashtra and Uttar Pradesh hockey. And it's nice. Maharashtra girls immediately surges to the center to saying, okay, this is probably a small little of victory for us. We might not have got the goal, but then the question comes in from Uttar Pradesh. He says, I've gotten enough. You cannot come in to get the answers. I've already got what the walkie-talkie told me. A tomahawk from the right. Number 10. Who was there? It was Vandana Patel. And she gives the penalty corner. Again, Maharashtra on the back foot. Again, it is for Uttar Pradesh. It was initially for Uttar Pradesh. Now it's back to Maharashtra. I have to check what has happened by 9 minutes and 39 seconds remaining. This is getting to a very different dramatic propositions here. We're ticking almost all the box of a complete different drama here. The whistle comes in and the injection stops, drags it firmly. It's gone. Oh, it's Uttar Pradesh. It's got the goal. Celebration time. Finally we see a goal. Finally we see the army of the Blues standing up for a goal. Look up at the heavens. Thank the heavens. Thank the Almighty. So quarter final number 4 in the 10th minute sees a goal via penalty corner from Uttar Pradesh as Maharashtra, the Orange Army, are left in the large
thinking of what has happened. And there we go, a happy bunch led by Akram Mahmood. He says, yeah, I got that. And what about the team manager, Shushma Kumari? They've got it. Just the one coming in for Uttar Pradesh now. Now it is going to be one dilemma in the mind of Maharashtra. They have already seen tensions flying among the coach Vaishali Laxman Sool and Mr. Sagar Singh, and now they will be more and more agitated to see how the girls performs. And now it is Salu Pukhrambam from Uttar Pradesh was going ahead with the ball from so much far right in the corner. But well done, Uttar Pradesh, to get at least the ball rolling. Otherwise, it was frustratingly locked at 0-0. And now it's actually started moving. And that's also builds up such a good contest, isn't it? 8.5 minutes remaining. We still have the last quarter to go. And that will actually fall in the commentary panel for Mr. Vikas Kumar to get ahead the proceedings. He might be shouting, he might be calm, but you have to hear the last bit of Hindi commentary from Vikas Kumar, because Vikas means development, and we are developing the chapter of hockey. At the moment, developing on the steps for some goals was Uttar Pradesh. Now I can see the smiles also coming a little bit, but again, it's all about Maharashtra nipping it very quickly. Can they nip it? If they get it 1-10 only thing, they can put some more seeds of doubts on both the minds. And what about the spectators? They've actually started growing in numbers. They'll be disappointed. The Andhra Pradesh girls doesn't form part of the knockouts, but they have played really well. They have back-to-back defeats for them, starting with Orissa, unfortunately not being part. But again, what about the host association? It's absolutely well done. I would also mention Mr. Harshavardhan for such stupendous work for getting it so much up and running. Among other office bearers, we have got along with shoulder to walk and bring this in fruition. Never easy operationally to bring everyone under one platform to perform. And so huge kudos to the State Association, to the Sports Ministry of India, and also to the Ministry of Youth Affairs and Sports. As we get into more chapters of Indian hockey, especially for this gender, the women's, it is really nice to see they have been part of a majestic journey in this 15 Hockey India Junior Women's National Championship 2025. Madhya Pradesh earlier one was there, being in the champions board. Today, now bowing out of the competition, losing in the penalty shootout versus Chhattisgarh. So finally, there'll be someone else getting in the podium to bring up triumphs with the trophy. Will it be? Still 2 more days to go, semi-finals and the final to look it up. As the ball has been scooped up from Uttar Pradesh, right at the center. The ball goes, oh my goodness, he falls down on one of the boards of Ministry of Youth Affairs. But I hope it's okay. Be a little careful. Those are the iron boards. But it's all okay. We'll go up. And not to forget also the sponsors and the stakeholders. We have Chuan Hens, as we have seen the swamping of the army coming right towards one corner. This is where Uttar Pradesh will be scoring, and just smashing it from way outside the striking circle across the surface. That seems like Lucky Kumari. That's Komal Pal, beg your pardon. That's Komal Pal. Because of the twisting of the jersey, sometimes the 7 looks like 11. 5.5 minutes by the clock, little over 300 seconds. Every second matters, especially now for Maharashtra with 1 goal behind. What a goal that was via penalty corner to get that. And now they are vying for the second one. Can they make the pressure double, or is it Maharashtra will be able to squeeze the ball out? They can do that. Maharashtra finally got some interesting numbers also. It just gets it going. We can almost put that flyby through. Let's see, just a call for getting it up and against, but will not be bothered, because that's what we need to do. We need to keep the energy flowing, the surge there, as 4.5 minutes remains, less than 250 seconds.
time goes out so quickly in a fast-paced sport like hockey. And as Mr. Shami Malam keeps on saying, I keep on listening to his Hindi commentary. Samay bahut balwan hota hai. I love that line that he says, isn't it? And also our soft-spoken person, Vikas, you're not led behind. I love that. We wish we could do physically the commentaries, but we have been doing, for all our viewers, we've been doing from 3 different corners. I'm sitting in Haryana. Vikas is there in Madhya Pradesh, in Bhopal to be precise, and Mr. Shami Malam is there in Ranchi in Jharkhand doing it. So we all three are from different directions, and the coverage is from Andhra Pradesh. So it's such a good one, isn't it? That the help of technology is allowing us to bring it all the coverage across to you under one platform. So hats off to the production team also for getting us under one platform. Never easy to cooperate and coordinate and send those links to joining. But at the moment, the cooperation and the coordination is getting to a very different level, because the umpire has to ask them to go back, give me some breathing space. She's already signaled a penalty corner, and a question has been asked by Uttar Pradesh. We are going upstairs to take the help of the technology. Have to wait and watch. At the moment, with 3.5 minutes remaining for the signaling of the hooter to end quarter number 3, it's 0 for Maharashtra, 1 for Uttar Pradesh. And what she says, what you have got here is a penalty corner that still remains. So her decision was correct, that what has come from upstairs, she has done seriously very well to keep it going, to keep that moving and remaining for some good numbers there. It is always so nice to get it in a direction when Maharashtra is going for the surge in section and gives it right across towards the corner, and it will remain. That will remain again. It will remain as a penalty corner. She rolled it back, and that's why within the stipulated time she frustratingly couldn't get it. That's why it remains for no goal. Maharashtra again, don't look at your dugouts. Don't look at all, or else you might be getting some dreadful looks. So seriously, we'll get that for sure. But 3.5 minutes from here on remaining for it to go up and moving. Let's see. After this, it will be the voice of Mr. Vikas Kumar, who will be putting your last bit of quarterfinals in Hindi. 0-1, it still remains. Maharashtra going across, back past the center line in the orange. The surge wanting to trust that orange across everywhere is the Blue Army. Back pass, reversing, now taking it all the way ahead. Can she break it? No. It was Pitambari Kumari. Beg your pardon. That was Gauri Vinayake Kolape from Maharashtra was doing it. Now slapping it across the surface right from the corner of the stick. And what Maharashtra have done, they have got a goal. They have got a goal in the dying seconds, less than 2 seconds. What Gauri Vinayake Kolap has done, coming all the way across from the corner and slaps it across the surface from the right flank, and the rest of them was done by the forwards there and defeating both the defenders. This is seriously brilliant. There we go. That was Sanjana Deshia Ketawat actually, before it went into the blade of Sanjana Desh of Gauri Vinayake Kolape.
and then she put it across. There you can see the last bit of finish. Wonderful. From number 12, Diksha Nitin Shinde was the one who finished it. I have to find Diksha Nitin already has a goal. So this will be the second goal for Diksha Nitin Shinde. Already had a field goal. So this is the second field goal for Diksha Nitin Shinde. What a lovely assist. And now it's 1-1. The camp of Maharashtra will have a smile, not the smile for Uttar Pradesh. For such a long time, they did the hard part to open their account, the first goal in the match, and now they're almost just had to wait for 2 minutes, but they need a very costly mistake of allowing that huge vacant area, removing a part which allowed Maharashtra to sneak right from behind and get that goal to make it 1-1. Just 48 seconds remaining by the clock to end and put the hooter for quarter number 3 of this fourth quarter final. Can Uttar Pradesh get it going? Can they make it 2? Just 3 seconds, and just been very, very tough now. So let's see how it goes. It's not removal of the pass. Let's see how they can go. It will always be frustratingly close of how it cannot be up and moving. So we'll have to just go in time and check if they can do that. Never easy, as I mentioned before. Just some seconds remaining for the blow of the hooter. This huge concerns now comes in, isn't it? Again, you can see the frustration coming in from the coaches. 90 seconds remaining. Uttar Pradesh, can they do it from the farthest of the corner? An appeal has come in for a foul by chooses that. Okay, I've seen it all. Let me just put it, because just the seconds remaining, they can appeal. But some other ideas, isn't it? It seems like the blow of the hooter. And yes, there we go. The hooter has been blown. And that will tell you the story of a well-fought quarter. Number 3 remains at 1-1. It was 0-0. Up comes Uttar Pradesh with an answer to make it 1-0. And then Maharashtra. What gameplay. 1.5 seconds remaining. And they trots the goal to make it 1-1. So this is behind the mic, Mayur Barwa. And for the last quarter of this quarter final number 4, it will be the voice of Vikas Kumar. He is soft and he knows how to make engaging commentary in Hindi. So I'm sure you'll love it. Enjoy. Welcome, Vikas. बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मयूर जी। शानदार हॉकी देखने को मिल रही है वाकई में। जिस हॉकी की पहचान है दोनों टीमों की, यूपी और महाराष्ट्र, गजब की लेगेसी है दोनों की हॉकी में लंबे समय से। और वहाँ पे ये बहुत ही शानदार दोनों ही टीमें। पहला गोल किया था जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लिए गोल आया था, शादी मुकरबम के द्वारा पेनल्टी कॉर्नर के गोल में कन्वर्ट किया था शादी ने। उसके बाद दीक्षा नितिन शिंदे के द्वारा गोल, और महाराष्ट्र को बराबरी पे लाकर खड़ा किया। बहुत शानदार कमेंट्री आप तक पहुंचा रहे थे मुझे इंग्लिश में, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में, और कमाल का उनका डिस्क्रिप्शन नज़र आता है। तो फिलहाल शालू के गोल के बदौलत यूपी ने शुरुआत की थी गोल की, लेकिन दीक्षा नितिन ने, और बात करें शिंदे ने, दीक्षा ने गोल किया महाराष्ट्र के लिए और बराबरी पे लाकर खड़ा कर दिया। तो बहुत ही शानदार तरीके से ये मुकाबला इस बीच नज़र आया है। गजब का ये मैच, और ये है इस मुकाबले का सबसे इंटरेस्टिंग क्वार्टर नंबर 4। दिलचस्प भी और खूबसूरत हॉकी। यूपी की टीम इस समय बॉल अपने हाथ में लेकर के इस समय बाईपास किया खूबसूरती से, राइट फ्लैंक से आगे बढ़ने की कोशिश यूपी के द्वारा। यूपी की टीम भी काफ़ी बेहतरीन टीम मानी जाती है। जर्सी नंबर 15 बॉल के साथ इस समय यूपी के लिए नजर आ रही समय शालू मुकरबम, जो कि टीम के गोल स्कोरर हैं। लेफ्ट फ्लैंक से बहुत ही शानदार तरीके से शालू स्ट्राइकिंग सर्कल के बिल्कुल मुहाने पे, एज पे, लेकिन डिफेंस फ्लो टैकल भी कोशिश, डिफेंस भी काफ़ी बेहतर। जर्सी नंबर 8 वहाँ पे मौजूद थी गौरी कोलापे ने कोशिश की राइट फ्लैंक से वापस से
डिफेंस के लिए परीक्षा रहेगी। जर्सी नंबर 20 मध्य प्रदेश, बात करें जब महाराष्ट्र के लिए, बॉल के साथ इस समय अपराजिता सिंह मौजूद हैं, इस टीम के एक और अहम खिलाड़ी। अपराजिता की क्या कोशिश रहेगी, बॉल चली गई साइड लाइन से बाहर। जर्सी नंबर 4 बॉल के साथ इस समय यूपी की टीम के खिलाड़ी इस वक्त प्रीति पटेल, प्रीति इस समय राइट फ्लैंक से, और ये है इस समय कोच मोहम्मद अकरम जो कि इस वक्त कोच की भूमिका में यूपी टीम के, और उनके साथ मौजूद हैं सुषमा कुमारी। कोच मैनेजर काफी इन्वॉल्वमेंट देखिए इस मैच के प्रति, लगाव, तन्मयता, शिद्दत, समर्पण और बानगी उच्च स्तरीय। यही होता है 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप के इस खूबसूरत मेजबानी में। और देख सकते हैं कोचेस की स्थिति क्या होती है। फिलहाल इस समय बहुत ही शानदार तरीके से जर्सी नंबर 4 बॉल के साथ प्रीति पटेल इस समय राइट फ्लैंक से एरियल बॉल, उनके साथ मौजूद है जर्सी नंबर 10 वंदना पटेल, इस टीम के एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी। शानदार तरीके से ये मुकाबला जर्सी नंबर 16 महाराष्ट्र के लिए, जहां पे आकांक्षा पाल नजर आ रही है लेफ्ट फ्लैंक पे। और इस मैच के अगर ऑफिसर्स की बात करें, जी अग्नीश अंपायर हैं, हरीश श्वेता हॉकी इंडिया के बेबी हैं रिजर्व अंपायर, रुचिका वानखेड़े वीडियो अंपायर की भूमिका में हैं, साथ ही साथ नंदा ओला राजेश्वरा जो कि स्कोरिंग जज हैं, अनिशा तिर्की हैं टाइमिंग जज, और वंदना रघुवंशी हैं टेक्निकल ऑफिसर, और बाला रानी टेक्निकल डेलीगेट्स की भूमिका में। बहुत ही शानदार तरीके से हॉकी देखने को मिल रही है। निगाह रखिएगा खूबसूरत रोमांच के बीच इस समय मिडफील्ड में खेल होता हुआ महाराष्ट्र को फ्री हिट मिला है, समानांतर पास किया जर्सी नंबर 16 महाराष्ट्र के लिए। अगेन बॉल के साथ आकांक्षा पाल, बहुत ही तेज तरार आकांक्षा पाल स्ट्राइक बिल्ड कर रही है, स्ट्राइकिंग सर्कल में गए, लेकिन डिफेंस बहुत ही क्विक आकर के क्लियर किया डिफेंस लाइन। एक तेज तरार स्लैप शॉट, जबरदस्त मुकाबला, बहुत ही शानदार कवरेज आप तक पहुंच रहा है। बात करें इस हॉकी इंडिया विमेंस के 15वें संस्करण के इस क्वार्टर फाइनल नंबर 4 का, क्वार्टर फाइनल की जहाँ तक जिक्र है, बहुत ही शानदार तरीके से आज भी मुकाबले हमने देखे। सुबह के 3 क्वार्टर फाइनल्स, इसमें हरियाणा ने टीम ने ज़बरदस्त हॉकी दिखाई, साथ ही साथ जिस अंदाज में आज झारखंड की टीम बहुत ही शानदार खेल दिखा करके पहुंची है क्वार्टर फाइनल में, और बेहतरीन हॉकी वहीं छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश को हरा करके क्वार्टर फाइनल में जगह सुनिश्चित की है। यानी 3 टीमें, चौथी टीम यहाँ से मिलेगी। देखा होगा चौथा और इंटरेस्टिंग क्वार्टर इस समय यूपी के लिए। बॉल पोजीशन जर्सी नंबर 4 प्रीति पटेल बॉल के साथ, प्रीति पटेल के साथ लगातार इस समय जबरदस्त संघर्ष देखने को मिल रहा है। तनुश्री दिनेश काड़ू टीम की कैप्टन, तनुश्री दिनेश काड़ू टीम के 11 नंबर जर्सी में, और साथ में मौजूद हैं उनके सानिका चंद्रकांत माने, लीग स्टेज में गोल कर चुकी हैं। लीग स्टेज के दोनों मुकाबले जीत कर आई थी महाराष्ट्र, जिन्होंने हराया था उड़ीसा को 2-1 से और आंध्र प्रदेश को 5-1 से। तेज तरार हॉकी, स्किलफुल, कमाल की, लेकिन डिफेंस उतनी ही खूबसूरत। वहीं यूपी ने अपने दोनों मुकाबले ड्रॉ खेले थे, और देख सकते हैं वापस से महाराष्ट्र के खिलाड़ी बॉल के साथ दीक्षा नितिन शिंदे, पिछला गोल इन्होंने किया था जर्सी नंबर 12 दीक्षा नितिन शिंदे ने जर्सी नंबर 7 को दिया अपने साथी खिलाड़ी को, जहां पे संजना दीक्षित खेतवाद लीग स्टेज में गोल की थी इन्होंने आंध्रा के खिलाफ। बहुत ही शानदार ये मेजबानी हॉकी इंडिया का, हम बहुत थैंकफुल धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई, उड़ीसा गवर्नमेंट हॉकी एसोसिएशन आंध्र प्रदेश, जिन्होंने मेजबानी की है। राइट फ्लैंक से बहुत शानदार अटैक, बहुत ही अच्छा सेव गोलकीपर की, लेकिन यहाँ पे पेनल्टी कॉर्नर का इशारा आता हुआ इस समय यूपी के खिलाफ। यूपी की गोलकीपर है इस समय, बहुत ही शानदार तरीके से सेव किया इस समय आशिका वर्मा ने, और लेकिन अंपायर का इशारा इस समय जी हाँ पेनल्टी कॉर्नर का। आइए नजर डालते हैं रिप्ले पे, बहुत ही शानदार कवरेज। जर्सी नंबर 8 बॉल के साथ इस बीच आगे बढ़ रही थी गौरी कोलापे, राइट फ्लैंक से कोशिश उनके द्वारा, गोलकीपर लाइन छोड़कर आगे गई, वहां पे बहुत अच्छी कोशिश अंशिका वर्मा का। अंशिका वर्मा ये वो हिट लिया, खूबसूरत प्रयास इस समय, रिबाउंड पे बॉल आई और आई थिंक फुट में टकराई है, जिस वजह से ये पेनल्टी कॉर्नर मिला है महाराष्ट्र। देखना होगा जर्सी नंबर 11 पेनल्टी कॉर्नर लेने के लिए तनुश्री दिनेश काड़ू टीम के कैप्टन नजर आ रही फर्स्ट बैटरी पे। बहुत अहम जबरदस्त रहेगा ये संघर्ष, क्या पीसी को गोल के रूप में कन्वर्ट कर पाएंगे। निगाहें रखिएगा जूनियर विमेंस नेशनल का चौथा क्वार्टर फाइनल, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन की उम्मीद में, बहुत ही शानदार तरीके से कोशिश डिफेंस की क्लियर किया इस समय,
कंशापाल जैसे नंबर 16 मौजूद वहां पे, प्रयास उनके द्वारा होता हुआ वापस से महाराष्ट्र अटैक करने की कोशिश, लेकिन बहुत बढ़िया इस समय डिफेंस की भूमिका क्लियर किया यूपी के डिफेंस ने, और अब अटैक बिल्ड करने का प्रयास है तनिषा संजय शिंदे के वापस महाराष्ट्र के लिए। गौरी विनायक बुलाते, तनिषा, दो खिलाड़ी लगातार डिफेंस और मिडफील्ड में अहम भूमिका। मिडफील्ड का बैटल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कमाल की हॉकी, बड़ी संख्या में, ये अच्छे संकेत हैं हॉकी इंडिया की कोशिशें, जो आदरणीय दिलीप टेकी सर, भोलानाथ सिंह सर, शेखर जे मनोहरन सर और पूरे हॉकी इंडिया के हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारी, उनकी हार्डवर्क का नतीजा देखिए। क्राउड कितना अच्छी संख्या में है काकीनाडा के इस खूबसूरत मैदान पे। इससे साफ जाहिर होता है हॉकी की दीवानगी, भारत का, इंडिया का गेम। और हॉकी इंडिया लीग की जब उन्होंने शुरुआत हुई थी, एक नए रिकॉर्ड स्थापित किया था लीडरशिप। फिलहाल इस समय महाराष्ट्र के जर्सी नंबर 4 बॉल को लेकर के समय सानिका चंद्रकांत माने, बहुत ही तेज तर्रार खिलाड़ी हैं सानिका चंद्रकांत माने, उनके ऊपर निगाहें रहेगी। क्या रणनीति इस समय देखने को मिलता हुआ, खूबसूरत रोमांच के बीच ये मुकाबला, इस बीच लगातार अंपायर से बातचीत हो रही है। डिसीजन क्या आता है, यूपी के खिलाड़ी वहां पे बात करने पहुंची हैं, जहां मधु नजर आ रही है, और ये है इस वक्त देख सकते हैं कोच मोहम्मद अकरम। रिएक्शन थोड़ी सी अगर बात करें इस समय, चेहरे पे गुस्सा के भाव भी है, क्या कुछ हुआ ये नजर डालते हैं। इस समय राइट फ्लैंक से ये कोशिश हो रही थी, महाराष्ट्र का अटैक स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर गए, ये प्रयास, क्या बॉल पहले स्टिक में टकराई थी फिर फुट में, अगर पहले स्टिक में टकराती है तो पेनल्टी कॉर्नर नहीं रहेगा, अगर पहले फुट में टकराएगी पैरों में, ये होता है हॉकी का रूल। शायद इस बात को लेकर के थोड़ा सा कोच इस समय एग्रेशन नजर आ रहा था उनका, लेकिन देखना होगा, अंपायर क्लोज हैं, वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। क्या वीडियो रेफरल की मांग की जाएगी, ये भी देखना बहुत है। शानदार हॉकी चैंपियनशिप पे अगर बात करें काकीनाडा आंध्र प्रदेश में ये मेज़बानी हो रही है। इससे मैच की अगर बात करें ऑफिशियल्स की रेन आपको बताना चाहूँगा, अंपायर हैं जी अग्नीश और उनके साथ एस श्वेता। FIH मेंस जूनियर वर्ल्ड कप भी तमिलनाडु मेज़बानी करेगा, विटनेस से द फ्यूचर ऑफ हॉकी आने वाले वक्त में, जहाँ भारत को मेज़बानी मिली है हॉकी के इससे बेहतरीन में अगर बात करें। फिलहाल यहाँ पे महाराष्ट्र के पास मौका लीड लेने का, पेनल्टी कॉर्नर के साथ गोल करके क्या यहाँ गोल देखने को मिलेगा एक और, ये देखना बहुत है। इंजेक्शन, स्टॉप, यहाँ पे वेरिएशन हल्की सी, जर्सी नंबर 11 कोशिश के द्वारा, लेकिन खतरा चल गया इस बीच। जर्सी नंबर 11 में मौजूद वहाँ पे तनुश्री दिनेश कारू टीम के कैप्टन, और ये रिएक्शन देखिए दोनों ही कोच और मैनेजर की। कोच हैं वैशाली लक्ष्मण सूल और सागर सिंह, इस मैनेजर की भूमिका में महाराष्ट्र, दोनों ही कोचेस का रिएक्शन। फिलहाल इस समय बहुत ही शानदार हॉकी देखने को मिल रही है। यूपी की सब टीम एक तेज तबार स्लैप हिट, लेकिन यहाँ पे बॉल कंट्रोल बहुत अहम। दो खिलाड़ी यूपी की बॉल को टैकल किया खूबसूरती से, जर्सी नंबर 10 बॉल के साथ इस समय टीम के सबसे अहम खिलाड़ी वंदना पटेल मिडफील्ड में स्ट्राइकिंग सर्कल में दाखिल हुई, लेकिन बेहतर तरीके से बॉल कंट्रोल की। आने वाले वक्त में हीरो एशिया कप जो कि बिहार राजगीर में मेजबानी करने जा रहा है, वो भी एक बड़ा इवेंट रहेगा हॉकी के लिए। हॉकी इंडिया की बहुत अच्छी कोशिश और शानदार तरीके से देख सकते हैं इस समय मिडफील्ड से खेल आगे बढ़ता हुआ। कमेंट्री बॉक्स में विकास, मेरे साथ मयूर बरुआ जी और शमीम आलम सर मौजूद हैं, जो लगातार आप तक एक्शन पहुंचा रहे हैं। चौथा और इंटरेस्टिंग क्वार्टर 1-1 की बराबरी, क्या यह मुकाबला शूट आउट की तरफ जाएगा? आज एक मुकाबला ऑलरेडी शूट आउट में गया था, MP वर्सेस छत्तीसगढ़ के बीच वो मुकाबला शूट आउट में, लेकिन क्या ये मैच भी शूट आउट में जाएगा? देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा इस मैच के नज़रिए से। हालांकि अभी काफ़ी वक्त है, क्योंकि 7 मिनट 36 सेकंड के आसपास का खेल शेष अभी भी। मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प नज़र आता हुआ। एक एरियल बॉल, इस समय कोशिश यहाँ पे एरियल बॉल के सहारे स्कूप के साथ एक अटैक बिल्ड करने की दिलचस्पी साफ नज़र आ रही है। देखना होगा इस बीच शानदार अंदाज में हॉकी की झलक यहाँ पे नजर आ रही है। कमाल के रोमांच के बीच ये मुकाबला इस समय घटित हो रहा है। राइट फ्लैंक से आगे बढ़ने की कोशिश, देखना होगा
काफ़ी संख्या में हॉकी के चाहने वाले व्यूअर्स मौजूद हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है हॉकी को ग्राउंड तक जाकर यही जोश और इसी हॉकी के प्रति दीवानगी की दरकार है जो इंडिया में हॉकी वर्षों तक पूरे दुनिया पर भारतीय हॉकी ने आधिपत्य किया, पूरी दुनिया को अपने टॉप पे हॉकी में रही है और उसी इतिहास को वापस हम दोहराते देखेंगे। पिछले दोनों ओलंपिक्स में भी हॉकी में भारत मेंस में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, टोक्यो और पेरिस, और आशा करते हैं कि विमेंस ने भी एक बार सेमीफाइनल तक पहुंची थी। रानी रामपाल की कप्तानी में गुरजीत और सभी खिलाड़ी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया था, पूरे देश का दिल जीत लिया था विमेंस हॉकी में, इसमें कई ओलंपियंस नजर आई थी। बहुत ही शानदार तरीके से इस समय जर्सी नंबर 3 को अब अंदर लेकर गए हैं दीवा। देखना होगा इस समय आखिरी अब क्वार्टर का खेल जारी, बहुत ही शानदार ये मुकाबला इस बीच नजर आता हुआ। जर्सी नंबर 17 बॉल के साथ कोमल पाल यूपी के लिए, लेकिन लगातार डिफेंस काफ़ी सक्रिय नजर आ रहा है। एक एरियल बॉल की कोशिश यहाँ पे, राइट फ्लैंक से कोशिश, जर्सी नंबर 10 खूबसूरती के साथ यूपी के लिए वंदना पटेल की ये कोशिश, बहुत शानदार प्रयास किया, मांग की जा रही है जर्सी नंबर 16 के द्वारा। शायद इस समय वीडियो रेफरल की खुशी मौजूद है वहाँ महाराष्ट्र के लिए, अंपायर से बातचीत करती हुई। शानदार तरीके से पेनल्टी कॉर्नर का इशारा आया है, पीसी दिया गया है और देखना होगा पीसी का कितना फायदा उठा पाते हैं, देखना होगा इस समय। बहुत ही शानदार तरीके से इस समय बेहतरीन ये मुकाबला, ये अटैक बिल्ड किया जर्सी नंबर 10 इस समय, बहुत अच्छा प्रयास, फुट में बॉल जाकर टकराई, इसी कारण बहुत ही शानदार तरीके से इस समय मुकाबला देखने को मिलता हुआ। इस समय पीसी मेरा यूपी को क्या पेनल्टी कॉर्नर को गोल के रूप में कन्वर्ट कर पाएगी। शानदार ये मैच यकीनन तौर पे इंटरेस्टिंग, ये बैटल साफ नजर आ रही है। यूपी के लिए मौका, जर्सी नंबर 15 बॉल को इंजेक्ट किया इस समय शालू ने, जिन्होंने गोल किया था, शानदार गोल, क्या खूबसूरत डिफ्लेक्शन, लाजवाब तरीके से यूपी के खेमे में खुशी की लहर, पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट किया है गोल के रूप में। एक अलग ही जज्बा नजर आई, इंजेक्शन किया, स्टॉप, खूबसूरत डिफ्लेक्शन और सीधे गोल पोस्ट के अंदर। आइए रिप्ले में नजर डालते हैं, क्या कहने, अद्वितीय, अद्भुत, अविस्मरणीय यूपी के लिए। फोर्थ क्वार्टर में ये गोल आया है और बहुत निर्णायक क्षणों में ये गोल आया है। 2-1 की बढ़त यूपी के पास, गजब का गोल किया है इस समय रश्मि पटेल जर्सी नंबर 9 ने। रश्मि का क्या शानदार प्रदर्शन इस समय, जबरदस्त तरीके से एक क्रूशियल समय पे गोल करके यूपी को बढ़त दिला दी है और अब स्कोर लाइन 2-1 इन फेवर ऑफ यूपी। मुकाबला पूरी तरीके से खुल चुका है, हाई प्रेस में दोनों टीमें आखिरी 1-1 सेकेंड सेमीफाइनल की डगर सुनिश्चित करेगी, क्योंकि ऑलरेडी हरियाणा साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड सेमीफाइनल में है। क्या चौथी टीम बनेगी यूपी, जिसकी संभावनाएं थोड़ी प्रबल। महाराष्ट्र भी लगातार अच्छा खेल दिखा रही है, महाराष्ट्र अटैक पे राइट फ्लैंक से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। बेहतरीन ये मुकाबला इस समय नजर आता हुआ, कमाल की हॉकी, राइट फ्लैंक से डिफेंस को भेदने का प्रयास, स्ट्राइकिंग सर्कल में गए लेकिन खतरा कुछ बलों के लिए टला इस समय। गजब की हॉकी, बहुत ही शानदार स्किल, स्ट्रैटेजी का अद्भुत समागम, समन्वय नजर आता हुआ और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये हॉकी की झलक यहाँ पे नजर आ रही है। ऐतिहासिक हॉकी देखने को मिल रही है। चौथे क्वार्टर का खेल, 4 मिनट 5 सेकंड्स का आसपास का खेल शेष। मिडफील्ड में खेल होता हुआ महाराष्ट्र के खिलाड़ी, बॉल पोजीशन उनके पास, संजना खेतवाड़ के पास। ये पेनल्टी कॉर्नर महाराष्ट्र के लिए पीसी मिल गया है बहुत ही क्रूशियल मौके पे। लगातार महाराष्ट्र राइट फ्लैंक से अटैक बिल्ड कर रही थी, फायदा मिला इस समय संजना खेतवाड़ की बहुत अच्छी कोशिश, आकांक्षा पाल मौजूद है वहां पे और जर्सी नंबर 16 ये वो प्रयास किया था आकांक्षा पाल ने महाराष्ट्र के लिए, बॉल को रोकने का प्रयास स्ट्राइकिंग सर्कल में वहां पे, और वहां से अगर बात करें गलती हुई थी यूपी की टीम में। किस तरीके से इस क्रूशियल मौके पे क्या वापसी उन्हें दे पाएगी महाराष्ट्र की। बहुत ही शानदार ये मुकाबला देखने को मिलता हुआ। अभी भी महाराष्ट्र के हाफ में खेल होता हुआ, आकांक्षा पाल बॉल के साथ, जर्सी नंबर 16 मिडफील्ड में
उनके द्वारा यह प्रयास इस समय एक स्लैप शॉट तेज तर्रार स्टिक से क्लियर किया, खूबसूरत, बहुत ही शानदार अंदाज में। और ये पेनल्टी कॉर्नर लेने के लिए स्टॉप ट्रैक देखना होगा इस समय, सेव और खतरा चल गया इस समय यूपी के गोल पोस्ट से। ये खतरा कुछ पलों के लिए टल चुका है इस समय, सकते हैं जरूर। बहुत ही शानदार ये मुकाबला। कोच वैशाली लक्ष्मण सूल थोड़े से अगर यहाँ महाराष्ट्र के कोच थोड़े चिंतित। 2-1 के लीड, वक्त धीरे धीरे निकल रहा, मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन्स नेशनल का ये क्वार्टर फाइनल। काकीनाडा कोस्टल स्पोर्ट्स का भी हम धन्यवाद देते हैं, थैंकफुल इनका स्पीच क्लियर करने का प्रयास किया इस समय। देखिए डिफेंस पे लगातार इस समय खतरा मंडराता हुआ, खूबसूरत इस समय पेनल्टी कॉर्नर। एक और यहाँ पे पीसी अंपायर से बात करने गए हैं और क्या निर्णय आता है, क्या निर्णय आता है। जरूर ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है, बहुत ही दिलचस्प ये मैच। गजब का ये संघर्ष, कोच वैशाली लक्ष्मण सूल नजर आ रही है। गजब का ये मुकाबला, धीरे धीरे वक्त निकल रहा है, मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग हो चला है इस समय। एक एक अटैक से, एक एक सेकंड से मुकाबले की दशा दिशा दोनों निर्धारित हो रही है। फिलहाल 2-1 की बढ़त यूपी के पास, 2-1 की लीड। पेनल्टी कॉर्नर दिया गया है अंपायर के द्वारा। यूपी के खिलाड़ी बात करने गई है वहां पे, ये वो प्रयास किया गया था और इस प्रयास में एक खिलाड़ी वहां चोटिल भी हुई है। देखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैच। ये प्रयास देखिए वापस इस तरीके से किया गया राइट फ्लैंक से। महाराष्ट्र की टीम ज्यादातर राइट फ्लैंक से अटैक करती है, राइट फ्लैंक से अटैक बिल्ड करके। यहाँ पे देखना होगा क्या डिसीजन आता है। इंतजार है इस क्षणों का, इंतजार है उस पलों का जब यहाँ से कौन सी टीम अपने पक्ष में इस मुकाबले को कर पाएगी। काफी इंटरेस्टिंग एक्शन की टीम, ब्रॉडकास्टिंग टीम के साथ आप सब 2-1 की लीड, 2-1 की लीड इस समय। मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग, खेल कुछ मैच, इंतजार है उस निर्णय का, देखना होगा। आई थिंक यहाँ पे देखें पेनल्टी कॉर्नर क्या दिया गया है, ये देखना बहुत अहम। बहुत ही शानदार तरीके से इस मुकाबले में वापस देख सकते हैं महाराष्ट्र के पास मौका। आई थिंक पेनल्टी कॉर्नर दे दिया गया है, महाराष्ट्र के खिलाड़ी ने पुश किया खूबसूरती के साथ। ये प्रयास उनके द्वारा, गोलकीपर ने राइट तरफ अपनी कोशिश की, शायद फ्रेम में नहीं रख पाए, खतरा टल गया इस बीच कुछ पलों के लिए। कोच का रिएक्शन ये साफ जाहिर करता हुआ मुकाबले में यूपी के लिए सुनहरा मौका है। अब ये मुकाबला पूरी तरीके से यूपी, क्योंकि प्रेशर में वहाँ पे महाराष्ट्र की टीम ठीक तरीके से बॉल को गोल पोस्ट के अंदर नहीं रख पाई और यकीनन तौर पर फ्रेम में गोलकीपर को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी था और वो खतरा टलता हुआ इस समय। बहुत ही शानदार तरीके से ये मुकाबला देखने को मिल रहा है, रोमांच बढ़ता हुआ। महाराष्ट्र वर्सेस का खेल शेष, वक्त धीरे धीरे निकल रहा है, मुकाबले की तस्वीर अब क्लियर होने वाली है। 1 मिनट 38 सेकंड्स के आसपास का खेल शेष। महाराष्ट्र लगातार राइट फ्लैंक से अटैक बिल्ड कर रही है। महाराष्ट्र की टीम जो निरंतरता इनके खेल की नजर आई है वो बहुत ही अहम। वहीं यूपी को अब डिफेंस में अपना बेहतर करना होगा पूरी तरीके से। यूपी की टीम अब डिफेंस में अपनी सशक्त इस बात करें इस समय प्रयास होता हुआ। अब आखिरी मिनट में आकर खेल अब सिमट चुका है। लास्ट मिनट में क्या यूपी गोल कंसीड करेगी या महाराष्ट्र यहाँ पे बराबरी का गोल देखी तरफ टीम आने लगी है और यूपी एक जीत की तरफ क्वार्टर फाइनल्स में जीत अर्जित करके सेमीफाइनल में अपनी दावेदारी अपनी सुनिश्चित करने की ओर अग्रसर है। सब शानदार तरीके से राइट फ्लैंक से यूपी के द्वारा अटैक होता हुआ खूबसूरती के साथ यहाँ पे दिलचस्पी मुकाबला। जीत की जश्न, जीत की खुशी यूपी के लिए, जीत की जश्न, जीत की खुशी यूपी के लिए, यूपी के लिए शालू और जिस तरीके से रश्मि पटेल के 2 जबरदस्त गोल के बदौलत यूपी ने यह मुकाबला अपने नाम किया है। क्या शानदार जीत अर्जित की है। यूपी की टीम सेमीफाइनल में चौथी टीम बन गई है। हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाद 4th टीम बनी है सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। और यूपी के लिए अगर बात करें इनके कोच और मैनेजर मोहम्मद अकरम, कोच और मैनेजर की भूमिका, सुषमा कुमारी कप्तान की भूमिका अगर बात करें
सुनीता ने गजब की अदा की और रश्मि पटेल के जबरदस्त गोल के बदौलत जिस तरीके से इस मुकाबले में ये टीम यहाँ पे बेहतरीन खेल दिखाई है। महाराष्ट्र 2 मैच जीत कर आई थी। यूपी ने अपनी लीग स्टेज के दोनों मुकाबले ड्रॉ खेले थे, लेकिन इतिहास रच दिया यहाँ पे और यूपी की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और के बाद बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत लाजवाब हॉकी खेली। महाराष्ट्र की भी तारीफ होनी चाहिए। महाराष्ट्र ने लास्ट तक फाइट किया, बहुत बढ़िया खेले महाराष्ट्र की टीम भी, लेकिन तारीफ यहाँ यूपी की जो क्रुशियल मिनट्स में गोल करके मुकाबले में जीत कर बाजी पलट दी इस टीम ने। गजब की हॉकी। कमेंट्री बॉक्स में विकास मेरे साथ थे, मयूर बरुआ जी और इस समय शमीम आलम सर हमारे सीनियर कमेंटेटर, पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ हमारे शानदार कवरेज सौरभ जी और पूरी टीम के साथ हम आप सभी व्यूअर्स से अनुमति लेते हैं और वापस आप तक ये एक्शन जारी रहेगा। हॉकी इंडिया मीडिया चैनल पर आप जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत थैंक्स सभी व्यूअर्स का। मैं विकास, मयूर बरुआ जी और शमीम सर के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ पूरी प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत थैंक्स। दोनों टीम हॉकी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हॉकी, आखिर में उत्तर प्रदेश हॉकी तो एक गोल के अंतर से इस बंद पे विजय जा रहा और कल सेमीफाइनल के लिए अपना स्थान भी बना चुके हैं। आज बहुत संख्या में स्पेक्टेटर, क्रीड़ा प्रेमी, क्रीड़ा अधिकारी और now shortly we are going to have player of the match award ceremony. We will be having player of the match award ceremony shortly. Player of the match will be awarded with a memento from the organizers from Hockey India. The memento will be given. We have P. Nagababu, guest of honor, to present the player of the match award. Player of the match has been adjudged as और वंदन एवं अभिनंदन और आप आकर समय निकालकर आज का बंद का पुष्प प्रशस्ति वंदना पटेल को देने के लिए आप आ चुके हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सबकी तरफ से और बधाई हो वंदना पटेल, आपका बेहतरीन